हेलो 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 जी उस पर नहीं है, पहले वाले में। ठीक है, ये 4 कौन से हैं?
यहीं रखो।
आप
আপনি একজন আর দুইজন আমাদের ইয়ে বানতে বাচ্চা না আপনি আরেকজন নিয়ে এখানে বসে ফোন করতে গেলে এখান থেকে করতে হবে हेलो ফোন তো কেটে গেছিলাম দুটাকার করে মাঝখানে हम आप दोनों को ले पापा हम बोल रहे हैं हम दोनों का लेते हैं कुछ भी चले keep it there okay no one okay not there हो जाए हम आप दोनों करें এখন তখন মজা আছে আর আপনি বলেন ঠিক আছে পরে বলবো
नहीं कोई बात
For your kind attention, आप सभी से निवेदन है अब आप सभी सेटल हो जाएं और अपने फ़ोन्स को साइलेंट मोड पे रख दें। हमारे लिए आज का कार्यक्रम शुरू करने का अब समय आ गया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सभी डेलीगेट से कि थैंक यू। Well, good morning everyone. Namaskar and very warm welcome to the Delhi National Capital Region Buddhist Conclave Issues, Interaction and Initiatives brought to you by the International Buddhist Confederation. We are all very grateful. It's a Saturday early morning, Sunday morning and winter for Delhi, and we are very grateful that you could all join us here on a Saturday morning. So thank you for doing that. And we promise you that the next few hours or today's conclave is going to be very eventful, and you'll all have a very nice day here at this conclave. So before I begin, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के बारे में. This confederation is a global umbrella Buddhist body, and it is headquartered in New Delhi, India. Established under the patronage of the supreme Buddhist religious hierarchy, it currently has a membership drawn from 39 countries, and this is over 320 organizations, both monastic and lay, and these are that include world bodies, national and regional federations, orders, temple bodies and monasteries, and international organizations, institutions, etc. And we are all united by the motto collective wisdom, united voice, that I'm sure everyone here knows. And IBC aims to make the Buddhist values and principles a part of the global discourse by presenting a united Buddhist voice in issues that concern all humankind. So इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम जो है अब शुरू करेंगे. शुरुआत में मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर द वेरी रिस्पेक्टेड वेनरेबल मंक्स फ्रॉम थेरावाडा ट्रेडिशन जो कि आए और मंगलाचरण परफॉर्म करें. आइए तालियों के साथ हम इन सभी का स्वागत करें. और अब मैं रिस्पेक्टेड वेनरेबल मंक्स फ्रॉम थेरावाडा ट्रेडिशन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आए और मंगलाचरण जो है वो परफॉर्म करें. Hello. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammaṃ saranang gacchāmi, Sanghaṃ saranang gacchāmi. Mahakaruniko hitaya sambhapaninaṃ pureto paramisambha patto sambudhimutamam evana sasavajena hotu te jayamangala. Jayanto buddhiya mule saikanang nadivadano evamehang
Sunakatang sumangalang supapatang suhititang suano sumohotosa suhititang brahmasarisu padakinang kaya kamang basa kamang padakinang manakamang panidite padakina nikatwana labantate padakine teya talata sukita birolaha bodhasasane aroga sukita honta sahasabheyativi etena sasabhajena satute hotu sambadam etena sasabhajena sambaduka vinasatu etena sasabhajena hotu te jayamangalani bhavato sabbamangalang rakanto sampadevata sabbabhutanubhavena sada sati bhavantu te bhavato sabbamangalaṃ rakanto sampadevata sabba dhammanubhavena sada sati bhavantu te bhavato sabbamangalaṃ rakanto sampadevata sabba sanghanubhavena sada sati bhavantu te. Thank you, Venerable monks from Theravada tradition for performing the Mangla Charan. आइए इसी के साथ अब हम the most respected venerable monks from Mahayana tradition को वेलकम करें और मैं उन्हें इनवाइट करूँगी कि अब वो आएँ और मंगला चरण परफॉर्म करें.
Dive Judan Dembara Jurje Dong Nanje Donga Da Donga Je Judan Dawara Jurje Sinje Danje Dewa Da Mindawara Jurje Sinje Danje Niri Jala Nila Ta Nyula Nebara Joje Dive Judan Dembara Jurje Sinje Danje Donga Da Donga Je Judan Dawara Jurje Sinje Danje Donga Mebe Dewa Da Mindawara Sinje Danje Niri Jala Nila Ta Nyula Nebara Joje Je je ba na jong ba yang da ba ra zo be san ye ri ba da ja zo de ma de wa she ba ji de shi bo no ye ka lo yo wa la na me ba la da mi na men je tum ba san ye chong be ja wa cha ja to ba la cha cho do je zo je 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 ba na jong ba yang da ba ra zo be san ye ja zo de ma de wa ra she ba je de jen be je bo no we ka lo yo wa la na la da mi no ye tum ba san ye chong den de be ja wa sha ja to sha za lo je zo je Jomden de je je ba na jom ba yang da ba ra zo be san ye sha zo de ma de wa ra she ba je de jen ba chi bo do we ka lo jo wa la na la da mi no ye tum ba san ye jomden de be ja wa sha ja to sha za lo che do je zo je Che dang je sa jen de la gong ba dun bo ne wan le je de de na cho je se se ke ba che la cha cha lo nam da kong a cho do zo za yi xie yi zhen na lang yi chen jo jo ni je la cha za lo sen do de wa tin ye da ye je sen do da wa che la cha cha lo du da che da su ba su ma je nya me chen chen che la cha gong bo du je che de ma tang je ken be de ma bo se na yen de ya zo yi je je la cha da lo la yen de za da wa nyu ge nge zo le do chi do deng da jiu ji ro be jin jiu che la cha cha lo zhong na zhou ye la ya de la ba xin ge dang ba yan de de gen de la ya cha cha lo sam ye san ye ren wo ye zhe ne me den je de la de zhe ne be ge ye ba sang je la jin do gen je da ye ji lu te ba ye lo cho do de be ja za lo yu ma je ba chu bo da mi na ma no da che vi che che na de da ra do tham je je ba ye go ba to ne jun je na de ga da na da je la do ne si be do wa yo Jiwang ge je re je ve jiang wa la gang je yo zo ya je me la gang je be de zang tin de re nyu chao wan je tin de jiang jiang ge be de zo dang de zo ne be ge je ne be ya je ne be do yo Well, thank you very much. इसी के साथ मैं दोनों वेनरेबल मंक्स फ्रॉम थेरावाडा ट्रेडिशन और वेनरेबल मंक्स फ्रॉम महायाना ट्रेडिशन को थैंक यू करना चाहूँगी इतना खूबसूरत मंगलाचरण परफॉर्म करने के लिए और इस पूरे माहौल में इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो है इन्फ्यूज़ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आइए आगे बढ़ते हैं और अब मैं इनवाइट करूंगी विशाखा ग्रुप को फॉर दी मंगला गाथा और इसी के साथ हम आइए इनका भी स्वागत करते हैं। महामंगल सूत्र बहुदेवा मनुसाच मंगलानि अचिन्त्यो अकङ्कामनसूत्राणं ब्रहि मङ्गलमुत्तमम् असीवानाजवालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च उक्ते च कथपुण्यता अत्तसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बहुसञ्चन्त्यसि पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुवासिता च याता च एतं मङ्गलमुत्तमं मातापितुपट्टानां उत्तदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्त एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च अर्थकाण्डं च सङ्गहो अनवद्यानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमं अरति विरति पापा मज्जपानं च संयमो अपमादो च धर्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गर्भो च निबतो च सन्तति च कथयता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमं तापो च ब्रह्मचर्या च अर्यसा च दर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं कूटस्थ लोकधम्मे हि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कथाना सर्वकामपराजिता सर्वत्र स्वस्तिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति साधु साधु साधु। Well, thank you very much to the Vishakha group for performing such a beautiful Mangla Gatha.
और आइए इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के अब अगले भाग पर बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वेनरेबल डॉक्टर धामा पियार, सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईबीसी, एंड वेनरेबल लामा चोसफिल जोत्पा, सेक्रेटरी आईबीसी, से कि आप वो स्टेज पर आएँ और फूल अर्पित करें लॉर्ड बुद्धा को, और दीप प्रज्वलन के साथ हमारे आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करें। द लैम्प ऑफ विजडम, द ऑस्पिशियस लैम्प, उसको प्रज्वलन उसका करके हमारे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उससे पहले लॉर्ड बुद्धा को फ्लावर पेटल्स ऑफर करें। Venerable Dr. Dhamapia, Secretary General of IBC, Venerable Lama Chosfil Zotpa, Secretary IBC. इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का अब शुभारंभ। तो आइए इस खूबसूरत और पॉजिटिव स्टार्ट के साथ ही हम आगे बढ़ें, और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी वेनरेबल डॉक्टर धामापिया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईबीसी, से कि वो वेलकम एड्रेस प्रस्तुत करें। Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. A very good morning, venerable members of Bhikkhu Sangha, esteemed upasakas, upasikas, brothers and sisters in Dhamma, and all present here today. आज जो दिल्ली एनसीआर बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव कर रहे हैं हम, इसमें आईबीसी की तरफ से एंड ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मैं आप लोगों को सबको स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
some of you may know and some of you may not know about IBC. In the beginning, our MC has given a little introduction about IBC in English. I feel maybe in Hindi a few words need to be spoken about IBC. जो IBC हैं, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, जो 39 कंट्रीज़ में, बाहर जो देश हैं 39, 39 हिंदी में कितना, हाँ 39 कंट्रीज़ में इनका मेंबर हैं। जो मेंबर्स जो हैं इंडिविजुअल एक एक आदमी नहीं है, इसका है ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस या मोनास्ट्रीज ऐसे हैं। और हमारे मेंबर्स मोर देन 360 ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है। IBC इसका जो मेन मोटो है ये है कलेक्टिव विजडम एंड यूनाइटेड वॉइस। सबके साथ बैठ के बात करके जो कलेक्टिवली जो विजडम, प्रज्ञा, नॉलेज, पन्या सो कलेक्ट करके सब मिलके दुनिया में जो आजकल चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, जो हमारे जिंदगी में बहुत सा डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, दुखदायक सिचुएशन खड़ा कर रहा है, उसको हम सब मिलके कैसे एक सॉल्यूशन दे सकता है बुद्ध का टीचिंग थ्रू से। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कलेक्टिव विजडम एंड यूनाइटेड वॉइस। यूनाइटेड वॉइस का जो अर्थ यह नहीं है कि हम सब मिलके हुआ करके इसे कुछ क्या बोल रहा है इसको डेमोन्स्ट्रेट या कुछ करेंगे, ऐसे बात नहीं है। यूनाइटेड वॉइस का मीनिंग यही है कि हम लोग बुद्ध भगवान का मार्ग में चलते हुए जो पीसफुल पाथ, हाउ कैन वी ब्रिंग पीस and harmonious coexistence in this world by sorting out all those challenges and issues which are global in nature. Like for example, now we are facing the coronavirus pandemic. There are many other issues that we as global citizens are confronted with. तो ये जो अभी दिल्ली NCR बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, ये फर्स्ट टाइम दिल्ली में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, दिल्ली या NCR में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, सबको लेके एक कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं। हमारा इच्छा थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ेंगे, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है SOPs, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस इन व्यू ऑफ द COVID-19 pandemic situation spread over the world and also in this country and in Delhi specifically, we had to limit to minimum possible. जो भी हैं शुरुआत तो कहीं से किया जाए। जब कहीं से शुरू नहीं होता है, आगे बढ़ने के लिए कोई उसका उम्मीद नहीं होता और होगा ही नहीं है। जैसे the famous Chinese proverb which goes, thousands of miles is traveled by the first step. तो फर्स्ट स्टेप हमको लेना है, यही हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग
सबको पता है इंडिया, भारत, जम्बूद्वीप, the land of the Buddha, the land of noble ones, Arya Puggala, Arya Desha, where the Buddha has lived and given his teachings for the welfare, benefit, and happiness of human and non-human alike. After 25 or 26 centuries, that is, after 2,500 or 2,600 years, the scenario, the situation in this Jambudvipa or Indian subcontinent in respect to the Buddhist culture, Buddhist practitioners, and Buddhist monasteries and other situations that we are all aware of. In this context, we thought it will be necessary to come together and know each other. हम लोग इंडिया में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, कहीं प्रांतों में, कहीं राज्यों में ऐसे फैला हुआ है, आपस में हमारे बीच में ऐसे कोई एक साथ में आके बुद्धिस्ट का इशू को लेके हमारा क्या तकलीफ है, क्या कठिनाई हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, हम क्या कर सकता है, ये समाज के लिए, देश के लिए, वर्ल्ड के लिए जो बुद्ध ने दिया है, बुद्ध ने रास्ता मार्ग दिखाया है, उसके ऊपर हम क्या कर सकता है, अपना के लिए क्या कर सकता है, समाज के लिए क्या कर सकता है, देश के लिए क्या कर सकता है, और इस वर्ल्ड के लिए क्या कर सकता है, यह हम लोग नहीं कर रहे थे। इसीलिए हमने सोचे कि हम दिल्ली एनसीआर से शुरू करें, तो कनेक्ट हमारा बुद्धिस्ट लोगों में जुड़ने का काम शुरू करें। दिस इज टू कनेक्ट। So I thought to use these 4 terms, 4 C's. C है ना, A, B, C. The first C is to contact. अभी हम लोग जो हैं किसी के साथ और किसी का ठीक से कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ पर जो हमारे वेनरेबल मॉन्क्स, उपासकास, उपासिकास, ले प्रैक्टिशनर्स आए हैं, इसमें ओनली अ फ्यू जिसको मैं पहचानता हूँ, बहुत लोगों को मैं नहीं पहचानता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप लोग भी मुझे नहीं पहचानते होंगे, है ना। All the Buddhists around Delhi NCR, then in other parts of India. Second C है connecting, है ना, connecting. अगर कांटेक्ट कर दिया, कांटेक्ट के बाद कांटेक्ट हो गया तो खत्म, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे. We cannot go ahead, move ahead. इसीलिए once the contact is established, कौन कहाँ पर हैं, हमें ये पता हो गया, मालूम हो गया, उसके बाद कनेक्टिंग करना पड़ेगा. कनेक्टिंग मीन्स नोइंग ईच अदर. आप क्या कर रहे हो, आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या डिफिकल्टी है, क्या कठिनाई है, एक दूसरे को जानना जो है, नोइंग ईच अदर इज कनेक्टिंग. सो वी हैव टू कनेक्ट टू ईच अदर. दिस इज सेकेंड सी. उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट में आ गया, कनेक्टिंग कर लिया, तो हम क्या करें अभी? ओनली नोइंग ईच अदर इज एनफ? नॉट एनफ. अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारा बीच में among ourselves we have to now collaborate, है ना. कोलैबोरेट.
आपका जो स्ट्रेंथ है वो मेरा पास नहीं हो सकता है, और मेरा पास जो स्ट्रेंथ है, जो स्किल्स हैं, जो एक्सपर्टाइज है, वो आपके पास नहीं हो सकता है. सो वी हैव टू बी म्यूचुअली फुलफिलिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. तो एक दूसरा को हम कोलैबोरेट करके क्या करना होगा. नेक्स्ट जो सी है ये है कोऑपरेशन. कोऑपरेट करना है, राइट. कोऑपरेट करके देन व्हाट विल हैपन इज व्हेन we know each other, we are in contact with each other, then we collaborate and we cooperate, then we can work together, we can grow together, we can be happy together, and also create collectively peace and happiness in the world. यही हमारे ऑब्जेक्टिव हैं. इसमें विचार सी चला गया. अभी वो 4 P का बात है. 4 P's, O, P, Q, P जो है. तो फर्स्ट P जो है, which is directly related to our today's conclave, issues, interaction and initiative. इसमें फर्स्ट P है preservation. हमारे अभी दिल्ली NCR के अंदर या भारत में और किसी राज्यों में, किसी स्थान में जो एंशियंट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स, ओल्ड कुछ मोन्यूमेंट्स, इसको प्रिजर्व करना हमारा सबका काम है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसलिए फर्स्ट P इज प्रिजर्वेशन. to preserve our heritage sites, monuments, everything which are available and which are required to be excavated and preserved, that we all have to work. ये है first P, preservation. Second P है protection. आप सब लोग को पता है, there are many ways, in many places. यहाँ का जो दिल्ली में बैठे हैं, आप लोगों को मालूम नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, आप लोग को मालूम है, लेकिन जो places like North East and other parts of India, so Mizoram, Arunachal, Tripura, Assam, Sikkim, इसी दार्जिलिंग इवन, आजकल अपना बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को रक्षा करने के लिए एक चैलेंज में हैं. यहाँ का सिचुएशन अलग हो सकता है, जैसे यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये गुजरात, राजस्थान, सदर्न इंडिया, यहाँ पर चैलेंज अलग हो सकता है कि उस साइड में अलग अलग चैलेंजेस हैं अपना बुद्धिस्ट आइडेंटिटी को या बुद्धिस्ट जो प्रैक्टिसेस को, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए. बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों को इन सम वे और द अदर दूसरा फोल्ड में, दूसरा फेट में, क्या बोलेंगे उसको, कन्वर्ट ना कुछ ऐसे किया गया है. ऐसे करते करते क्या हो रहा है, अभी जो बुद्धिस्ट अपना बुद्ध मंदिर में जाते थे, अपना को बुद्धिस्ट कहलाते थे, अपना बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस करते थे, अभी और नहीं रह गया बुद्धिस्ट, बुद्ध मंदिर में नहीं जा रहा है वो लोग, और दूसरा कुछ करके अपना आइडेंटिटी को बदल दिया है लोग, बाय फोर्स या बाय इन सम मीन्स और द अदर. तो ये जो चीज है, ये हमारा सबका जिम्मेदार है कि अपना आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपना प्रैक्टिसेस, इसको हम प्रोटेक्ट करें. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज व्हाई सेकंड P इज प्रोटेक्शन. देन थर्ड P ये है प्रमोशन. हमारे पास जो है, एक मंदिर है, विहार है, गुम्फा है, एक गुम्फा विहार में 4 वेनरेबल भिक्षु हैं या वेनरेबल लामा जी लोग हैं, जैसे हैं इसको तो हम सपोर्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे,
प्रोटेक्ट करेंगे, इसके साथ साथ प्रमोट भी करना पड़ेगा हमको। कल्चरली हमारा जो टीचिंग्स हैं इसका प्रमोट करना हमारा काम है। दिस इज नॉट नोन टू द पीपल दैट, आप देखिएगा पहले जमाने में, मतलब आज से 30-40 इयर्स बैक, मोनास्ट्रीज में, विहारा में, गुम्पा में मॉन्क्स लोग, नन्स लोग, पेरेंट्स लोग आनापाना सती मेडिटेशन, that is mindfulness meditation. I'd request everyone to sit on a chair straight. आप जो बैठे हैं, हम अभी फर्स्ट सेशन आनापाना सती मेडिटेशन से शुरू करेंगे। जो जहाँ पर बैठे हैं आप कृपया करके सीधे बैठें। और अभी जो वहाँ पर ये टेक्निकल सपोर्ट टीम में लोग हैं, बहुत बात हो रहा है, काइंडली बी कंप्लीट साइलेंट। आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे, जो भी है आप इशारा से बात करेंगे। अभी हमारे ध्यान मेडिटेशन होगा, वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। प्लीज कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट। आपका कोमर, गर्दन सीधे रखकर बैठें। कोमर और गर्दन सीधे रखकर बैठना बहुत जरूरी है। प्लीज कीप योर बैक एंड नेक स्ट्रेट। Close your eyes. Close your mouth. Just bring your entire attention and focus at the entrance of your nostrils, below the upper lips, and observe the breath. The natural breath, the normal breath, as it naturally goes in, as it naturally comes out. Just observe, be aware, be alert. Every breath that goes in naturally, just observe and notice at this moment. The breath is going in. Then the breath is coming out. Just be aware of the bare breath, the natural breath, the normal breath. Breathing in, breathing out. It is required to try to know every breath that is going in, every breath that is coming out. Just focus your mind on breath. And do nothing but observe every breath. आपके पूरी ध्यान
नासिका के नीचे ऊपर वाले थुत के ऊपर फोकस करें और श्वास के प्रति सजग रहें। श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। श्वास जैसे ही अंदर जाता है, जान लेना है श्वास अंदर जा रहा है, और श्वास जैसे ही बाहर आ रहा है, जान लेना है कि श्वास बाहर आ रहा है। हर पल, हर क्षण सिर्फ श्वास का आवागमन के प्रति ध्यान रखेंगे। श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है। ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट। आपका ध्यान आपका श्वास के ऊपर ही होगा। बाहर कुछ भी हो जाए, ये हमसे मतलब नहीं है, सोचना भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देना है। आपका काम आपका श्वास का ऊपर ही है, श्वास को देखना ही अपना काम है। Just observe your breath. Be aware, be alert. भवतु सभ्यमङ्गलं रक्षन्तु सभ्यदेवता सभ्यबुद्धानुभावेन सभ्यधम्मानुभावेन सभ्यसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। Take rest. Take rest. Take rest. Thank you so much.
अच्छा ठीक है, आप वीडियो ठीक है, आप then आप बोलिए वीडियो ये ओपनिंग एड्रेस देने के लिए. थैंक यू. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी वेनरेबल डॉक्टर धामापिया, सेक्रेटरी जनरल आईबीसीसी, कि वो ओपनिंग रिमार्क्स दें इस सेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली एनसीआर. बार बार मैं ही हो रहा हूँ आज का स्टेज में मेन वक्ता जैसे लग रहा है, राइट. मे बी यूल बी गेटिंग बोर्ड ऑफ माई टॉक्स, राइट, बट नो, nothing to worry. There will be some other scholars or venerable monks coming in after some time. आज का जो सेशन है, फर्स्ट सेशन, इसका टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली एनसीआर. दिल्ली एनसीआर इसी के अंदर पुराना ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स कहाँ कहाँ पर हैं, whether they are excavated or yet to be excavated, whether they are in very bad shape, neglected, or they are protected and preserved by Archaeological Survey of India. इसका ऊपर हम चर्चा करेंगे आज ये फर्स्ट सेशन में. इसका मेन उद्देश्य ये है कि पहले तो हम आइडेंटिफाई करें दिल्ली एनसीआर के अंदर में कहाँ कहाँ पर ऐसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट्स हैं. वंस इट इज आइडेंटिफाइड, देन इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, that we all have to work. And there are speakers to highlight on the theme today. That's what I thought, just to give opening remarks, not to take much long time. Thank you so much. Over to MC. थैंक यू वेनरेबल डॉक्टर धामापिया. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पास एक स्पेशल वीडियो एड्रेस है फ्रॉम मोस्ट वेनरेबल लामा लॉब्जांग, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ आईबीसी, हमारी एवी टीम से, कि वो उस स्पेशल मैसेज को प्ले करें. तस्य भगवतो अर्हतो सम्बुद्धस्य. Respected Bhikshu Sangha and the scholars from India who have participated in this conclave. As the founder and the first Secretary General of the IBC, I am very happy that IBC has embarked on an outreach program to collaborate with the Buddhist organization and communities in India. My main motivator for establishing IBC was to bring Buddhist communities across the world together to preserve and promote the rich spiritual and cultural heritage of Buddhism and apply Buddhist teachings for addressing some of the current global crises. I congratulate Venerable Dhammapaya for his sincerely carried forward my vision and mission. Under his able leadership, IBC has grown and reached new heights. In the last 8 years, IBC has organized numerous conferences, meetings, workshops, exhibitions, dialogue, and collaboration with India and foreign government, universal and foreign government and universities, and the Buddhist organization, bringing the international Buddhist community closer, strengthening
the cultural tie between India and neighboring Buddhist countries and enhance the relation between the Buddhist community and other religious communities. India is the land of Buddhism, homeland of Buddhism. The spiritual and historical importance of India's Buddhist heritage is enormous, not only for India, but for Buddhists all over the world. Most of the Buddhist heritage site is neglected today. I believe that we need to work for conserving this site and transforming into living heritage. Today we are also faced with many political, social and environmental problems, the latest of which is the COVID-19 pandemic, which has created havoc in the entire world. At this time, more than ever, we need to return to the teachings of Buddha to establish respect, environmental, communal harmony and world peace. I highly appreciate the organizer of the Buddhist Conclave in New Delhi for taking such a timely, important initiative. I give my blessing to all those who associated with this event for their safety and success. As I have not been kept in well for the first few months, I am not able to attend the conclave in person. Therefore, I am sending this video conference, my message for the event. Thank you. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba buddha anubhavene sabba dhamma anubhavene sabba sangha anubhavene sada sati bhavantu te. Well, thank you. Most Venerable Lama Lobsang may not be here, but we are very grateful that he could still send a video message and be a part of our today's program. और अब इसी के साथ हम अपने अगले स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं. मैं अब बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर P.L. Dhar को, who is the founder of Aranya Vihar Trust, and he's trying to bring the Thai forest tradition of Ajahn Chand to India, and he's also a Vipassana meditation practitioner for the last 35 years. Professor P.L. Dhar will be joining us live virtually. If there is any technical issue, then we can keep it. If there is any technical issue, let me know. Acha, I have been informed the technical team is trying to sort out and connect to the speaker. Just before, in between, I am to inform you about our most respected Venerable Lama Lobsang-ji, just who has given the message for those who do not know him. He has been the main key person in founding and establishing and taking forward the motto of IBC. The first, it was organized as Global Buddhist Congregation, GBC, where the people from around the world, the top strata of the Sangha members, that is, the Sangha Raja of different countries, chairman, Mahasangha Nayaka from different Nikayas, and also the Buddhist
premier leaders from different countries like Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Japan, South Korea, Vietnam, from many countries, they have participated, including Bhutan, Nepal. They have participated and had brainstorming sessions to work on the theme collective wisdom and united voice to address different challenges of global nature or even the local issues. Of course, when we talk about issues, it is not any political issue as such. We are concerned about the human life, human suffering, as Buddha has been saying. Whatever is happening, it is for the welfare of the human beings and also other living forms or life forms that coexist with human beings. So we, in that platform, Venerable Lama Lobsangji had given a very important guidance, able guidance, and we all are here today because of our Lama Lobsangji, which he has guided us due to his old age. And also he was not keeping well for last 3 months or more than that. He was in hospital for quite some time, and he's keeping in isolation now at Ashoka Mission, Vihara, Mehroli, New Delhi. He could not come to be with us physically, but as we have heard, he has sent his best wishes and blessing for the successful conduct of this program. We are very much thankful to our Venerable Lama Lobsangji. I hope now our speaker is getting connected. Or do I need to another story? So I should be now taking the role of from speaker to storyteller or something else. Is it okay now? साउंड नहीं आ रहा है ना? Good morning, Venerable Bhikkhu Sangha and other dignitaries and participants to this conference. I have been asked to share some thoughts on identification and preservation of the Buddhist sites in Delhi NCR. Well, my interest in this issue of sites began sometime in the 90s, when as a coordinator of the Vipassana meditation programs in the NCR region,
we were looking for a site to set up a meditation center for senior meditators, and we thought we should set up a center at Kamaspur, which the place which comes up in Satipatthana Sutta as the site of where the talk was, Satipatthana discourse was given. So we tried to find people, and we really realized that there wasn't much information available. So I asked one of my students of IIT to do some research, and we sent him to National Archives and tried to find out, collected books, collected a lot of data, and eventually came to a conclusion that it was somewhere in the region near Murthal in Haryana, which is about 65 kilometers, so just ahead of Sonipat, which is part of NCR actually. And there was some doubt. Somebody said it is, some researchers said it is in Murthal, others said it is in village Kamaspur, which we visited, and we tried to find the places there. And there is a village by the name Kamaspur, and we tried to figure out the authenticity of it to the extent it was possible, and we learned that some Buddha statues have been discovered there and taken to the museum in Kurukshetra, and then there are a lot of literature available, number of books, research papers, a PhD thesis submitted in Kurukshetra, and then we got convinced that this is the place, and that's how we eventually set up the meditation center there. And it was surprising that for me to know recently that the tourist guides, because we have been now for the last few years interacting with Thai forest tradition, and we came to know that tourist guides in Delhi have been telling them that the site of Satipatthana Sutta is where the east of Kailash, where we have the edict of the Ashoka, which obviously isn't verified by any amount of research. So why I'm mentioning it is that there's a need for proper identification of places, because otherwise you're in a way misleading the foreigners who are coming with great devotion to see the places where Buddha actually, there's a great importance of Satipatthana Sutta, and people are deeply interested in knowing where it exactly happened. And it would have been wonderful if the place where the Buddha statue was taken had been earmarked, and some place was identified that this is a place, and then more research was done. We went there in those times and found certain mounds were there. They had some broken clay potteries, but obviously nobody had really investigated that in any great detail. So the need for proper identification exists. My friend Dr. Lal Singh has done commendable work in trying to identify sites in Haryana. And then of course he's done it mostly on the basis of some reference in some books and the local information, and identified some places in Faridabad and Gurgaon. He says there's a place called Dhullakoti in Gurgaon, which may be Thullakotika, which is found in one of the important discourses of the Buddha. And so there's many places within NCR also, which were probably in Rohtak region there is some places, and Palwal, and where there's a possibility of genuine Buddhist sites being there, but nobody has really discovered them or identified them scientifically or archaeologically. And there's a great deal of need for doing that. And avoiding the kind of wrong information being given by people to devotees who come from, especially from abroad, to pay respects to those places. In the last few years, we have spent considerable time in going around Haryana sites, which is a part of, in some sense, extended NCR, you can say Sonipat and beyond. As we know, the Kuru land figures prominently in Buddha's discourses, and Kuru land is the present Haryana, part of Punjab and part of Delhi. And it's full of places where Buddha must have travelled. And we are in the process of searching for a land for our monastery, which we wish to set up. And they thought we'll again do it in Kuru land, and we tried to go around the places. And in that process, Mr. Siddharth Gauri, who set up a Buddhist forum in Yamunanagar,
It's very helpful, his work and the kind of information which is collected, put it in his website. So we went all the places which is mentioned in Asand, in Kurukshetra, in Thaneshwar, in Yamunanagar, and Sung, and found varying degrees of neglect of the places. Of course, archaeological survey has been wonderful. It has done identified some sites, cleared them up. For example, in opposite the Brahmakund in Kurukshetra, there is a stupa identified, some remnants of the stupa. It has been properly garden, properly taken status of places which were actually earmarked by ASI. They're not places which we are saying they are likely to be places of importance. So maybe I could show you some pictures if I can share my screen. So can the host enable screen sharing for a few minutes, please? Can you do that? Saying what? Sharing the screen or what he's saying? Screen sharing, who is the technical person? If it is Zoom, so he can share. Hello? Can you do this allow screen sharing? Allow screen sharing. Hello? Okay, I'll do that. Can you see that screen now? Can you see my screen? I'm not able to share the screen, please. Hello?
Anji. No, it says host has disabled the participant screen sharing. Yeah, I think it is. Okay. Is it visible? You can see? Can you see that? Okay, and then explain what is the issue. Okay, thank you. Thank you. See, friend, this is the approach to the, I think, in my opinion, one of the biggest finds of the last few years. There is a place called Adibadri where an ancient monastery has been found out. I'll tell you the significance of it. But see how we have to approach it. From here, we have to go through this river. It's called River Som. It's a small one. So you have to walk through that, and then only you can go to the next place. You see, then only you can approach the. So I'll show you the whole monastery quickly. This is the approach to the monastery, and then this is the ancient monastery, which I feel is the one which is described by Hunsang in his writing when he mentions about that whole area. There's a village called Shrung even now. Hunsang calls it Shrung at that time, and he mentioned there was a monastery with 1,000 mendicants there, and they were of Theravada tradition, and I suspect this is the place really. It has been identified by chance, or otherwise I would say by accident, because the archaeological department was searching for the source of the ancient river Saraswati, and in that process they hit upon this place. It has been done just 5 or 6 years ago, and you can see thanks to this is the way you can see the approach to that, and this is how this is a protected area. So it's a well earmarked area, identified, and still the access to that is so bad, and there's no protection. People can take away anything from there. This is the museum which is where the finds from that place have been kept. There are some statues of the Buddha and other terracottas and pottery. So the point I wanted to make was, this is the way you have to go through. You have to walk through this literally in order to approach that, and you can see how daunting it is. I'm a 71-year-old man, but I could somehow, with the help of others, cross through it and go. And I've gone there at least 3-4 times, 4 times or 5 times in the last 2 years, because of various reasons. Because that place is extremely powerful for a good meditator. And this is the overall plan of that, taken by Siddharth Gauri from the drone photography. You can see the outline of the monastery. And the tragedy is that nobody knows that there is some such thing exists. I don't think most of the people who are present in the conference today would be aware that such a wonderful thing exists, and it can be related directly to the Hunsang's writing, because he mentions that. Now, this is another sad story. This is a place called Asan, which is I think about 110 or 20 kilometers from here. This is supposed to be the biggest, this has been found out by Professor Handa and mentioned in his book. And this is well identified by ASI, and there is a small gate. I'll show you the state of the gate. And this is the state of the mound which is there. It was supposed to be the biggest mound, biggest stupa in India. This is the over there, the picture taken from the top. Another one. And this is the current state when we went there. You can see there's the gate. This is the gate. There are buffaloes here, and if you can see inside, there are buffaloes inside also, and there are holes and rats and just breaking away. People, whenever the people need any brick, they come and take it out from here. And this is the gate, and this is the lock. So you can see the state of preservation of such an ancient heritage site. Had it been in a place like Italy, there would have been a beeline of tourists to come here and visit it, and properly organized.
I mean, this is an ancient one place, 1,000-1,500 years old at least. Nobody has really done good work on it. This is the state of the affairs of that. And we went there and saw there are bricks coming out, and those are special bricks. Some of them are old, some are new. So this needs preservation. This needs really care. The reason I thought I should come here is to share it with the world body, and so that they know that there's a lot of work which could be done to help preserve these wonderful places. In contrast, this is the place there's another place in Yamunanagar area, Chennai Stupa, which is well developed and taken care of again. This is the picture from the top. These are other places which are well known, they are well demarcated, so I will not go through them. I wanted to draw your attention to another very important historical place called Shrung. If we study we did a lot of study of the Hyun-Sang's right travelogues, and we found the mention to this there. This is the place. You can see the top view. This whole thing, where you see this road, all this is a big mound. In fact, it was probably a part of the mound was much bigger, and the land has been cut off, because you notice that in that area there are a large number of mounds, and they are being dismantled. They are being cut off, planed, and people are occupying and building these plain farms and agricultural activity. And slowly this will also be demolished if appropriate care is not taken. I'm sure it will also get demolished. There's the site. You can see some ancient buildings. There are some Jain buildings. Also, these have some Jain pictures. So there have been. You can see the kind of small stupas or some such things. And when we went there, immediately the people from the neighboring areas came, and they said, "Yes, are you from ASI? Are you going to do some digging?" Then we learned from our friend that they have done already a digging. An exploratory hole was done, and a lot of things were taken out from there, including jewels and gold and ornaments and pottery. And it was dated back to the same, maybe 1,500 or 2,000 years old place. But subsequently, when we tried to talk to ASI people, they said there's no follow-up. We need money to excavate it. Then how do we excavate that? And they all seem to see that this is probably the place mentioned by Hyun-Sang. If you read the Hyun-Sang's travelogues, he mentioned that in this Shrung village there are 4 stupas in which the hair relics of the Buddha, the Sariputta and Moggallana and other elders were kept, probably Ananda also. And those stupas are nowhere there, but such mounds are there. A number of such mounds are there. This is one of the prominent mounds. And the curiosity of the people clearly shows. And of course, this land has been gradually encroached. It must have been a huge place, maybe spread over many acres. Now it is confined to hardly 1 acre, and there are residences and farms being set up. There's a graveyard being set up. So it's all going to get demolished if nobody really follows it up in a systematic manner. These are some of the things which are still there. How long they will be there, I don't know. And this is the monastery where we had visited along with the monks, and just a picture of it. It's not my intention to show that. So the reason I wish to draw the attention of this August gathering to this was this sort of sorry state of affairs, that we can't really approach that place. There's not even a proper road or even a pontoon bridge or something. This river is not very heavy at all, so one can easily, most of the time we can walk through. If you have a SUV, you can even drive through that, but that's not the way it should have been. It should be properly cared, and the entrance to the monastery that you have seen. So my submission is that something should be done. There are many sites which have been identified and not been taken care of. Many sites which have not been identified, as some of them I have shown. There are many other places. In the Adibadri area, this is the now called Adibadri area. There are 2 more mounds which are earmarked by ASI for exploration, but the exploration is stopped.
When we talked to them, they said there's nobody is interested, we want money for that. We in fact talked to one of the MPs of the area whom we knew, Shri Subhash Chandra, who was the Rajya Sabha MP from Haryana. And we requested him, he came, we took him to Adi Badri, took him to this places, Yamuna and showed him the state of affairs. He called the ASI people, called the local DC, and then tried to get a prize. And he also, I know for sure, he wrote a letter, he told me, he wrote a letter to the ministry also that appropriate action should be taken to preserve these places and before they are really vandalized completely. But I don't think anything has been, I haven't visited it for last 1 year, but my friend Siddharth, who's there, with whom I'm in constant touch, he tells us this, nothing has really happened, nothing much has happened. About 2 kilometers away from this, a bridge has been constructed, but that bridge is to the neighboring village. And to go through there and then come through there, there's no road to do that, so one has to go through the kind of a hilly terrain in that region. So there are so many sites in NCR itself, as Dr. Ral Singh has mentioned, which are potential sites. He has a hunch that they are genuine sites, but somebody, Archaeology Circle Survey or some other organization has to really get that done. And similarly, in the slightly far away places, for example, Asand is earmarked. There are also other places in near Punjab and border and between Delhi and Haryana border, other places which is mentioned in Rohtak, Palwal, Faridabad, all of which really need to be identified scientifically, properly by Archaeological Survey. And if the World Buddhist Council, International Buddhist Confederation, really because it's an international body, if it can request the government, request the Culture Ministry to do something about it, I think that would be wonderful, because otherwise these precious sites, which in my perception, to whatever extent I have studied the Hyung Sang's writings and other writings, they are genuine sites mentioned by Hyung Sang in his travelogues. We notice them. He mentions about the stupas, he mentions about monastery, he mentions about the Thaneshwar area, that was called Thaneshwar at that time, he mentioned that, now it is called Thaneshwar. You can see the similarity of the names also. And I really wish, there's another place in there, Thaneshwar, let me see if I can look at that picture, called Harshkatila. It is along the hello. Okay, I'll stop. 5 minutes and stop. There's a tomb called, okay, says the time is short, so I'll not go into detail. I just mentioned that there's a big tomb called Sheikh Chilika tomb, and along with that there is a place, mound, which is called Harshkatila. And when I see the pictures of it, it looks almost like the Agroha monastery, you know. And somebody has really, I mean, they say that there have been things found from there which belong to the ancient times and which are pottery elements, Buddha statue and other things. This is the place called Harshkatila in the Archaeological Survey. So there is a mound here and it needs to be really excavated properly. Some parts of it have been done. So these are some of the potent painful thing for me for last 20 years I have been seeing. 20 years ago I had gone in a conference there to the National Museum, and at that time there was the culture minister, the late Anand Kumar was there, DG of the archaeological was there, and I requested that the place where Buddha's relics are kept should be kept in a proper, dignified and respectable way. People should not go stroll around it in the shoes and not to pay respect to that. And it's kind of, even if you go to Gandhiji's Samadhi in Delhi, people have to take off shoes and go respectfully inside. And here you have relics of Lord Buddha, the greatest man humanity has ever seen, and people are just walking by without any idea what they are doing and not paying due courtesy, even showing them due courtesy. So I would request the IBC to clearly take up this issue with the government, and this should be properly
kept there. In fact, ideally we should have a stupa where they should be kept and nothing else should be kept there so that people can go and sit and meditate. We have gone in the last 2 years so many times, every time a monk comes, he would like to go there and meditate, and we go and meditate there. And people are going around and chatting and doing all kinds of things and walking around in shoes and trampling upon things. So it's not a really, people who are devotees, those who have great respect for Lord Buddha, who benefit from his teaching, they feel sad that we're not in a position to even do this much. That the proper respect should be shown to the relics. This is another thing which I think could be taken up by the IBC. Thank you very much. If there are any comments or questions, I'll be happy to respond if I can. We are very much thankful to Professor P.L. Dhar for presenting in such a way, providing us a scope to know, like in and around NCR, the extended NCR, as he was saying, Haryana, Punjab, Ghaziabad, and some other areas where many unexplored and unexcavated sites are also there. So after this, we are supposed to have open forum for discussion. But as we have started late, the lunch for Venerable Sangha members as well as lay practitioners is supposed to be at 11:30. We have around 10 minutes time, not much. So I would request the delegates, if you have anything to add or discuss on this theme, the identification of Buddhist heritage sites or preservation of Buddhist heritage sites in and around New Delhi, 10 minutes time is there to discuss. Kindly please, anybody. Yeah, that last. Mike. I wanted to request to Professor Dhar, I think his presentation was so wonderful and it is really on the ground. Two questions. One is... please your note. You note the question, please. Question for Professor Dhar. Yeah. He's live, it seems. Okay. Yeah, he's live, please. Yeah, please go ahead. Yeah, my question number one, could you kindly share the sources which authenticate the historical side in terms of their year? Because I have seen myself, like in Haryana, in the Kurukshetra University, there is a very big mount, today slightly dilapidated, but Faihan has given a very long description in his writings. Probably, I think, one of the most wonderful reading that I really found. So similarly, if you could really tell who were the authors who really put that these are the stupas built and during which year. That is one. And second is that since you have done such an intensive study, now they need to be really restored. That is what you're really saying. They are to be maintained. What are the possibilities? I think I'd also like to request that to put the IBC. I mean, if we identify, just identification is not enough. Just saying that it is there, to bring that in the functional shape, how that strategy can really be there. And third aspect of that is, it's not just enough to identify, just enough to restore. I think they are to be made living Dhamma center. In the sense that the discourses should go, the people should connect to the Buddha's teaching. So all this
sequence, I think needs to be seen holistically so that what has been lost, the Buddha's teaching, it becomes a living and the flowing teaching. I think I really would like to get input from Dr. Thar. I know that he has done a lot of studies, he has passion, and he is a practitioner. Thank you. Yes, Professor Dhar, please, if you are online. Professor Dhar, please, if you are online, you are having 2 questions from our honorable delegate. Oh. Okay, can you hear me now? Yeah, you have muted me. Okay, you can hear me now? Okay. As the questioner mentioned, I didn't know his name, but thank you very much for asking that question. It is very true that there is a large amount of, that even the Kurukshetra Mount is a huge one, only a small part. Once you go there, you can actually see. It is all sloping, and there is a small place there where it is said this looks like a small place where monks were staying. Now that place where monks are staying is about 3 meters below the ground. Obviously, it means that they wouldn't be staying inside the underground, so that means the whole area is a mount. That whole area, if earth is removed, there will be a discovery of a whole city probably there. But unfortunately, it has not been done. If you see the Asan pictures, it was such a heart-rending scene to see the pictures of Asan. When you see, I'll try to show you here again. The picture can be shown later. You see all this, can you see the screen? All these village houses which you see, we were told in confidence by the people that these houses, bricks of these houses were taken from this mound. That the whole of it was actually this, all this colony which has been set up, it was actually a part of the mound. There was whole sloping, as is everywhere, along with the stupa there will be sloping walls, and there was all part of it. It was removed, broken up, and these houses were constructed. And this is in the local legend, this is called Jarasan Ka Kila. They don't call it archaeologically stupa or this, they call it Jarasan Ka Kila. And they say Jarasan Ka Kila hai, and there are many gold and jewelry in it, because some people must have taken out from there. As we know, all stupas used to be, people used to put these precious items for their, as a respect and for future use in case of the need for renovation. So that's the kind of tragedy of these things, The same thing in Harshkatila is a huge mound. It's spread over a kilometer, I think. If it was to be excavated properly, you'll discover probably a city there. Similarly, Adibadri, there's only one part has been excavated. The archaeological survey has marked it ABD1, ABD2, but not done this, because it's a huge mound, almost like a mountain. And if it is excavated, there will be so many things found. In fact, in Delhi itself, you will find so many things. I remember in IIT, where I have been spent my whole life, we had a huge mound which was obstructing a pathway. So one of our engineers got it cut. And when I started walking that way, I used to live other side. I noticed that in the mound there are so many bricks around. It's actually an ancient house or something else, maybe a monastery. For all you know, nobody knew it. So such places are all around in the Delhi and NCR and in Haryana definitely, and in parts of Punjab. But there's no way that we are in a position to really do. So it is technically, it is all a part of government. I mean, our archaeological things have to be done by archaeological survey. So they often, whenever you talk to them informally, they say there's no money allocation, because when there is a budget cut, the first thing to be cut is the research work of that kind, because it is not seen as immediately productive. It is seen as a long-term investment.
In fact, we did some marketing with some of the senior officials and told them this: Haryana can also come in Buddhist pilgrimage circuit. You see, just as Bihar and UP have come, you can bring Haryana. There are so many sites, Haryana, Delhi and all that. You can get NCR in a whole Buddhist circuit. There will be a lot of tourists will come and then you will get monetary benefit. But please spend some money and get this done. But of course, our voice is just a lone voice. So if a world body like IBC joins in, I'm sure it will happen. And if it can provide some monetary help, I don't know whether there are some funds of that kind. If the funds are asked for, I'm sure many countries will be willing to offer funds for this purpose. And if IBC can take up that, in fact, in an informal chat with some of the people there, they told us that this Adi Badri, we actually want to set up a small monastery in the neighborhood of that monastery for exactly the same reason which the questioner asked, that it should become a live place. A place where 1500 monks lived, why should there not be a new monastery be set up somewhere near it as a tribute to those? So we're trying to do that, and they were saying, yeah, if you give it writing, you will take care of this, and we can move the papers to government and say, okay, this Saranyavihar Trust Delhi will take care of this and do maintenance of that and all that. I said, yeah, let us first get going and see if we can get a land and build a monastery, have the monks, then we can give. We can't undertake just offhand without having adequate preparations. So there's another thing which we can, IBC can think, whether it is willing to really go whole hog in creating a structure of that kind, which can take care of some of the things which have been already identified and which may actually fall in disuse. Hello? Thank you, sir. Hello? Hello? We're running out of time, sir. Thank you. Okay, so you can just close it. Fine, thank you. Okay. So, thank you very much for hearing me patiently. I hope it was useful in some extent. Thank you so much, Professor P.L. Dhar, for your input. We now understand what is our duty and the relevance of Buddha's word, the Attathipa Bhava. Now we understand that we only have to work for identification of these sites, the first step. And second is restoration. First identification, second is restoration, and third, as suggested by one of our esteemed delegates, is to make these historical heritage sites as living heritage sites. It should not be kept only some mounds of bricks and other things lying there, but it should be rejuvenated with the positive energy, prayers, and all those things by the practicing Buddhists visiting there, or whoever is going there, to bring to life to these kind of institutes or the monasteries which were established earlier. Now it is only a mount or brick pieces. So this we have to do ourselves. I'm sure it is our responsibility. We are all know. As Buddha said, Attathipa Bhava means what? It is we who have to do ourselves. For these things, nobody will come from outside and do unless there is something or somebody has requested. Definitely, IBC will take up this issue or this topic, this work, but IBC will need the cooperation and also support of all present here today, and also those who are there. Either you practice Buddhism or you practice something else, it doesn't matter. So long as we all have the feeling and interest in art, architecture, and also for preservation of the heritage sites in India belonging to any
religion or sect or creed, it doesn't matter. Preservation of heritage sites in India is our responsibility as well. And also, rejuvenating or restoring and putting them into like lively condition, lively status by keeping there or residing some monks or having regular chantings, prayers. I think these are the other aspects we have to work in sequence. Till we are to go for lunch by 11:30. Now it's 11:35. Should we take another one question or go for lunch? House? After lunch. Okay. If there is any question, then we can have it after lunch. After lunch, we'll have whole day. And for this, what we are proposing, that will be coming in the fourth session. We should have working group. So now, if we just come and discuss and disperse, if there is no concrete step taken in the direction of identifying and restoring and doing something concrete, then it will serve no purpose. So we have to create a working group specially to identify these sites. Then once it is identified, then for restoration, other things, we all have to work together with the support of the Minister of Culture or whoever is in the authority, and also with the global Buddhist community for restoration and making it a living heritage site. So thank you so much everyone for your time and hearing so patiently and also with pin drop silence. I hope you have had some idea how we should go ahead. Thank you so much everyone. So we'll be having lunch now. Lunch, Madam will please over to our MC. Thank you very much. Like he mentioned, we'll now be having lunch, and this is going to be for 1 hour, and let's all try and come back by 12:30. And I'd like to make a special mention that a special arrangement has been made for Sangha members in the basement. तो लंच का जो इंतज़ाम है संघ मेंबर्स के लिए वो बेसमेंट में है, और बाकी सभी मेंबर्स के लिए जो ले मेंबर्स हैं उनके लिए जो अरेंजमेंट है वो बाहर है, इस हॉल के बाहर. तो आइए हम सब लंच करें और 1 घंटे में वापस आ जाएं. थैंक यू. हम भिक्षु संघ सब नीचे जाएंगे, इसमें इसे हैं, वी हैव टू गो डाउन इन बेसमेंट, बाकी जो हैं बाहर हैं.
Attention everyone. हमारी सभी लोगों से दरखास्त है कि वो सब अब बैठ जाएं और मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग लंच के बाद वापस आ चुके हैं। जो बाहर हैं और अगर वो मुझे सुन सकते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अब दोबारा से हमें सेशन में ज्वाइन करें। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हम सभी से बहुत स्ट्रिक्टली ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने फ़ोन्स को साइलेंट मोड पे रखें। मेडिटेशन के दौरान और दूसरे सेशन के दौरान भी बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। अपने सब फ़ोन्स को आप प्लीज़ या तो स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट पे रख दें, और अगर कोई बहुत अर्जेंट कॉल है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसे प्लीज़ हॉल से बाहर ले लें, क्योंकि बाकी सब भी डिस्टर्ब होते हैं। तो स्ट्रिक्टली सभी से मेरा निवेदन है, यू कैन टेक 2-3 मिनट्स बट पुट इट ऑन साइलेंट मोड। एंड इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे हिस्से की तरफ आज के प्रोग्राम के। ये सेशन 2 है ऑन इश्यूज एंड चैलेंजेस बिफोर दी संघा एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ इन दिल्ली एंड एनसीआर। तो जिस भी तरह की परेशानियां हैं, इश्यूज़ हैं या जो भी चैलेंजेस हैं, हम इस पर अब एलैबोरेट करेंगे इस सेशन में पोस्ट लंच। लेकिन हम सेशन शुरू करने से पहले एक दोबारा से एक मेडिटेशन सेशन करेंगे 5 मिनट का, जो कि धर्माचार्य शांतम सेठ अहिंसा ट्रस्ट से हैं, और ही विल बी जॉइनिंग अस वर्चुअली लाइव। एंड वो इस मेडिटेशन सेशन को लीड करेंगे 5 मिनट, और उसके बाद फिर हम जो है अपने सेशन 2 को शुरू करेंगे। So, dear friends, welcome to your afternoon session. My name is Shantam, Brahmacharya Shantam from Ahimsa Trust, in the tradition of the Venerable Thich Nhat Hanh. And we were going to start with this short meditation. Sorry, Simon? Yes, Simon? Background noise. Some chanting, no, there's no sound here. No, there's no sound here. Should I start again? So, dear friends, I think I'll start again. There was some background noise. So, I'm going to invite the bell. The bell is, in some ways, we call it the voice of the Buddha. And the voice of the Buddha always calls us back to our true home, the present moment. And when we hear the sound of the bell, we come back to that sound that allows us to silence our mind. And then from that, we come to the breath. So I'll just guide you a little bit like the Venerable Dhammapiya was doing in the morning with the wonderful Anapana meditation. Well, and thank then you very much. I will also give you a short visualization, maybe a visualization of 2 parts. One is to see ourselves as a flower. The flower always reminds us of being fresh. So even when we are feeling a little low, a little down, we can always just remind ourselves of our freshness and see ourselves as a flower. And the second image would be of the mountain. The mountain being the image of solidity, of stability, and sometimes when a strong emotion arises, we can always see ourselves back in that state as a mountain. So always grounded, not letting the storm of emotions overcome us, overtake our mind, overtake our reactivity. So I'll just guide that through for a short time. So I'll start with the 3 sounds of the bell. Please listen to the sounds of the bell, and then you can slowly close your eyes to listen to the sound more clearly.
Listen, listen. The wonderful sound of the bell brings me back to my true home. And as our mind silences with the sound of the bell, we bring our awareness to our posture. Seated on the chair, feeling our feet on the ground, our back straight, and just feeling a sense of dignity and alertness in our posture. Adjusting our posture if we need to sit in comfort, in stability, and relaxing different parts of the body. Our shoulders, our arms, our hands, our back, our thighs, our lower legs. Feeling a sense of relaxedness and ease in our body. Our chest, our abdomen. Feeling a softness in our abdomen as we feel our in-breath and our out-breath. Now the abdomen involuntarily rises and falls with each in-breath and each out-breath. And enjoying each breath. Breath of life. And bringing that half smile to your lips, to your heart, knowing that we are alive and we have the opportunity to practice together. And that half smile will relax the muscles in your face and give you a sense of well-being. And as we sit in this posture of awareness, we see ourselves as a flower as we breathe in, and we feel the freshness of the flower as we breathe out. It is not imagining a flower outside of us, but seeing ourselves as a flower. We can see that flowerness and freshness in a child, the brightness, the fragrance. Just feel that freshness and flowerness in yourself. With the in-breath, you can say the word flower. And with the out-breath, you can say the word fresh. Just as a reminder. And whenever you're feeling tired, you're feeling a little low, you can always come back to this meditation any time of the day. And the next image is of a mountain. Imagine yourself as a mountain. Stable, solid, grounded. Knowing that even when the strong winds come, the rain comes, the mountain stays solid.
In the same way, when your strong emotions come, you just stay grounded, not being reactive. Like a tree. There's a big storm, the top of the tree is swaying everywhere, but the trunk of the tree is solid. So come back to your own trunk, to your abdomen, and just feel the rise and fall of the abdomen with each breath as that strong emotion, strong thought comes and goes like the clouds in the sky. And again, you can access this image any time of the day. When a strong emotion arises, just see yourself as a mountain, sitting solidly, sitting stably, sitting beautifully. Thank you very much, dear brothers and sisters. Continue with the rest of the program. And I think the chairman will take it from here. I hope you enjoy the meditation. And you can come back to this practice anytime you feel in the day. But the practice of meditation is the food of joy. Enjoy it. Thank you. Well, thank you very much, Dharmacharya Shantam Seth, for joining us for this session and for leading the meditation. Thank you once again. And we'll now move on to our session as promised on issues and challenges before the Sangha and Buddhist communities in Delhi NCR. This session will once again be chaired by Dr. Dhammapiya, Secretary General of IBC. And I'm going to request him to join us on the stage and start the session. Venerable Dr. Dhammapiya, Secretary General of IBC, to chair this session. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. A very good afternoon to all my venerable members of Mahasangha, brothers and sisters in Dhamma, esteemed Upasakas and Upasikas. Welcome back to post-lunch session. The second session, the theme of this session is issues and challenges before the Sangha and Buddhist communities. And I have been asked to chair again. I prefer to stand up and speak. But as I have been asked to chair, I think I have to sit on the chair and speak. When you stand up, you get energy.
because whole body is straight and energy can flow. But sitting, so energy will be flowing with some, maybe some gap. As you all know, the post-lunch session is a very important session where the speaker will keep speaking and the listeners will keep snoring. This is a very important aspect of post-lunch session. I hope we'll have something different from this. The session theme states, sorry, मुझे हिंदी में बोलना था. जो अभी सेशन जो हैं, तो हमारे संघ मेंबर्स और जो बुद्धिस्ट ले कम्युनिटी, उपासका उपासिका हमारे जो बुद्धिस्ट हैं, तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. यहाँ कहा गया है कि इन दिल्ली एंड एनसीआर, दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, इस यहाँ पर जो विहारा हैं, मोनास्ट्री हैं, हमारे आदरणीय पूज्य भिक्षु संघ रहते हैं, इन लोगों का क्या क्या कठिनाई हैं, तकलीफ हैं. और ऐसे बुद्धिस्ट कम्युनिटी क्या क्या कठिनाई हैं, इसका ऊपर चर्चा होगा. पहले may I request Venerable Lama Chuspel Jutpa ji, Secretary IBC, President Himalayan Buddhist Cultural Association, kindly आपका जो presentation है इस टॉपिक के ऊपर आप करें प्लीज. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा. 강계 투제 열존네 사와 탐제 방배지레 담배 춘예 던제 고담딜라 차체로 고담딜라 차살로 고담딜라 차체로. अभी इस सत्र के अध्यक्ष परम पूज्य डॉक्टर दमापिया सेक्रेटरी जनरल आईबीसी, परम पूज्य भिक्षु संघ, आज की इस ऐतिहासिक बौद्ध महोत्सव यानी कॉन्क्लेव में उपस्थित भाइयों बहनों, आज की इस जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के ओर से जो आज तक जो जिस ढंग से होना था अभी तक नहीं हुआ है, हमारे देश के राजधानी दिल्ली में जितना बुद्धिस्ट बौद्ध अनुयायी रहता है उनको इस संस्था में जोड़ने के लिए कोशिश काफ़ी शुरू से हुआ था, लेकिन आज के इस आयोजन के मुताबिक अभी तक हुआ नहीं. जिस ढंग से हमारे देश में, देश के राजधानी में यानी बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षु संघ काफ़ी संख्या में रहता है, तो आज के इस जो महोत्सव यानी कॉन्क्लेव के माध्यम से दिल्ली के लोगों को इस संस्था से जोड़ना है. आप सब जानते हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के
उद्देश्य ही आज से लगभग 2600 साल पहले तथागत बौद्ध बुद्ध ने देश और दुनिया में बौद्ध धर्म दर्शन परंपरा फैला है। तो हम लोग कोशिश करके जो 2600 साल पहले तथागत के यानी उद्देश्यों को जिस रंग से फैला है, बीच में थोड़ा खाली रह गया, उससे जोड़ना है हम लोग। जिस रंग से तथागत ने उद्देश्य दिया है, शिक्षा दिया है, उसी को पाने के लिए हम लोग वहाँ तक ले जाके हम लोग दुनिया को, देश और दुनिया के लोगों को जोड़ना है। तो इसलिए तो आज के इस सम्मेलन के विशेषता यानी विशेष करके दिल्ली के लोगों को जोड़ने के लिए उद्देश्य रखा है। ये मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देश और दुनिया में जो बौद्ध धर्म दर्शन है उसको कैसे हुआ, उसको सुधरना, बिगाड़ा हुआ सुधरना है, सुधरा हुआ अपने जीवन में उतरना है। तो ये सब के लिए दिल्ली जैसे राजधानी में इतना बहुत अनुयायी बहुत संख्या में रहता है, लेकिन आज तक ये हमारी ये संस्था IBC गठन करके लगभग 8 साल करीब हो चुका है, लेकिन दिल्ली के अधिक लोगों को मालूम नहीं है। फिर भी आप बंते जी के प्रयास से, IBC से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रयास से आज ये शुरू हुआ है। ये हमारे लिए ही नहीं है, पूरा देश और दुनिया के लिए खुशी की बात है। तो इसमें हम लोग के दिल से जोड़ना चाहिए। तो दिल्ली के बौद्धों का मुद्दा और चुनौतियाँ बहुत कठिन है। बौद्ध संघ हो, बौद्ध अनुयायी हो, एक जैसा ही है। सबसे पहले तो शिक्षा, दूसरा व्यवस्था, तीसरा संगठित यानी नेतृत्व ढंग से नहीं है। तो इसलिए चुनौतियाँ भी यही से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले तो अगर जितना यानी संघ रहता है, परम पूज्य भिक्षु संघ दिल्ली में रहता है, इनके व्यवस्था में भी आप सब जानते हैं। मैं लगभग 25 सालों से दिल्ली में हूँ। काफ़ी लोग जोड़ने के लिए कोशिश तो बहुत किया है, जितना बनते लोग पूज्य बनते लोगों ने भी किया है, जितना ये संगठन है लोगों ने भी काफ़ी कोशिश तो किया है। लेकिन एक तो आप सब जानते हैं, हम लोग दिल्ली में या दिल्ली में हो, देश के कहीं भी हो, जो बौद्ध अनुयायी, बौद्ध धर्म दर्शन में विश्वास रखने वाले लोग अधिकतर गरीब होता है, दूसरा अशिक्षित होता है। उसी के वजह से जो तथागत के ये महत्वपूर्ण धर्म दर्शन को हम लोग जिस रंग से बौद्ध बुद्ध ने जो उद्देश्य दिया है, हम सब ना तो हम खुद शिक्षा ले सकते, दूसरों को कर सकते। इसलिए आप समय आ गया कि हम सब मिल के एक तो शिक्षा जो पूज्य भिक्षु संघ रहता है, शिक्षा पाने के लिए संस्था नहीं है। सबसे पहले तो बौद्ध धर्म का यानी वो जो बुनियादी शिक्षा होना चाहिए वो नहीं मिलते हैं, जगह नहीं मिलते हैं, संस्था नहीं है। दूसरा यानी बौद्ध धर्म के जो भिक्षु संघ को शिक्षा के लिए केंद्रीय यानी बौद्ध विहार होना चाहिए, उस ढंग से भी नहीं है। छोटा छोटा सा है, वो कभी कोई कर देते, कोई तोड़ देते, कोई समझ इधर साथ देने वाला नहीं है। तो इसलिए तो एक तो ये है। दूसरा बौद्ध अनुयायी लोग हैं बहुत सारे बौद्ध, एक तो हर जहाँ भी हो, संस्था हो, इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, वहाँ तो बौद्ध धर्म दर्शन का पढ़ाई तो होता ही नहीं है। ऐसा संस्था हम लोग कोशिश करके स्कूल खोलने के लिए कोशिश करता तो ना तो ज़मीन मिलता है, व्यवस्था नहीं मिलता है। तो इस कारण हम लोग काफ़ी यानी जिस ढंग से बौद्ध धर्म दर्शन के शिक्षा पा के लोगों को जोड़ना चाहिए, लोगों को शांति से, करुणा से, मैत्री से, सुख शांति से जोड़ना चाहिए। लेकिन हम खुद को ये जो ज़्यादा जो साधन ना होने के कारण ये सारा है। तो इसलिए अभी
इस यानी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के ओर से, इस कॉन्क्लेव के ओर से अभी जो चर्चा किया जाएगा, इसके माध्यम से एक तो हमने कहा था अभी जो 3 मुद्दा हम लोगों के सामने है। एक तो शिक्षा व्यवस्था ना होने के कारण, एक नेतृत्व नहीं होने के कारण। अब ये सारा जोड़ने के लिए बहुत सारे संस्थाएं हैं, छोटा छोटा बहुत बिहार है, लेकिन एक के अंदर तो थोड़ा बहुत मुश्किल भी है। तो आप ये हमारे IBC के ओर से ये सब एक जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ के आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो पूज्य बनते संघ को यानी विनय का, शिक्षा का केंद्रीय सही ढंग से होना चाहिए। दूसरा यानी बुद्धिस्ट बौद्ध अनुयायी को, बच्चों को, युवा पीढ़ी को बौद्ध धर्म दर्शन के शिक्षा का केंद्रीय ढंग से होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए ये खासकर मुद्दे ये 3 बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, व्यवस्था, नेतृत्व जो एक दूसरे जोड़ने का है। दूसरा इधर एक टॉपिक अलग से भी है, ये सारा हम लोग चर्चा करना है। तो इसलिए मैं आप सभी के सामने यानी इस मुद्दों पर 2 यानी बातें आपने रखा है, आप दिल में रख के हम सब आगे एक दूसरे से जोड़ के जिस ढंग से इधर अगर देश की राजधानी दिल्ली में अगर बौद्ध धर्म दर्शन यानी विश्वास रखने वाला बौद्ध धर्म दर्शन के यानी भिक्षु संघ के शिक्षित ठीक हो, लोगों का ठीक हो, अब पूरा देश में भी ये फर्क रहेगा। दुनिया में भी बहुत यानी दुनिया में फैलाने के लिए, दुनिया के लोगों को जोड़ने के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसके साथ मैं आप सभी से सामने सच में ये आज के ये जो कॉन्क्लेव के ओर से यानी हम आप सबके सामने एक 2 शब्द कहने के मौका मिला। और भी ये देश और दुनिया में कोरोना है, इसको ख़त्म करने के दिशा में भी हम लोग चर्चा करना है, प्रार्थना करना है, पूजा करना है। धन्यवाद आप सबको। साधु साधु साधु। Okay, thank you so much. थैंक यू। अब हमारे अगले स्पीकर हैं वेनरेबल कच्चन भंते, प्रेसिडेंट ऑफ बुद्ध कुटीर, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके हम सभी से बात करें। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Respected Chairperson, Honorable Monk and Deputy from DELHI-NCR, आज इसी सेशन में मेरा नाम नहीं था कुछ कहने का, तो जो मौका मिला है तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो ऑर्गेनाइजर। सुबह से हम आज का विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो IBC का जनरल सेक्रेटरी धम्मप्रिय
भिक्षु महोदय, सुबह बताया क्या लक्ष्य में हम इसी प्रोग्राम में शामिल हुआ। तो मेरा हिंदी सही नहीं है, लेकिन मैं बांग्ला भाषी हूँ। हिंदी जो बात करता है लोकली जो बात करते हैं उसी माध्यम से मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव में पहले अटेंड किया था 2003 में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम में बहुत बड़ा धूमधाम से प्रोग्राम हुआ था। लगभग 500 से ज़्यादा डेलीगेट आया था बाहर से। बीच बीच में कभी कभी मौका मिलता है जाने के लिए, सुनने के लिए। ताज मौका मिला 2 शब्द कहने के लिए मेरा गौरव का बात है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के विषय पर लामा जोतपा जी आप लोग को सामने 3 बात रखा है, लेकिन ये बात 3 नहीं है और बहुत बात है। हम दिल्ली और एनसीआर का बुद्धि विहार, भिक्षु संघ जे सोसाइटी, इसी विषय पर बात बहुत करना ज़रूरत है। मैं जब 99 में यहाँ पे आया था, दिल्ली के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तब से अभी तक थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला है दिल्ली के बारे में, बुद्धि विहार के बारे में, भिक्षु संघ के बारे में। अब भिक्षु संघ का बात करने से पहले एक बात ये कहना ज़रूरत है, जितना बुद्धि विहार दिल्ली और एनसीआर में प्रतिष्ठित हुआ, उसी हिसाब से भिक्षु को बहुत बहुत काम है। जो भी है हम एक संगठित नहीं है। मैं खुशी का बात कहता हूँ, 2004 साल में जब मैं राहुल बुद्धि विहार बलजीत नगर में बसवास किया था, उसी टाइम में ये सोचा था संघ का जो ड्यूटी है, नित्य कर्म है, जो सांघिक जीवन धारा का जो जीवन शैली है, उसी में बहुत कुछ हम लोग को करना होता है भिक्षु संघ को। लेकिन बहुत कम विषय है, हम लोग जानकारी भी कम विषय पर है और चर्चा भी हम कम विषय पर करते हैं और फॉलोअप भी कम विषय पर करते हैं। जैसे उपनिषद, उदाहरण से हम बताता हूँ, भिक्षु उपनिषद। भिक्षु उपनिषद का बहुत महत्व है। क्यों? बुद्ध ने उपनिषद इसीलिए प्रवर्तन किया था, जो भिक्षु संघ को संगठित करने के लिए, भिक्षु संघ का जो ऑफेंस होता है उनसे ऑफेंस से बचने के लिए, और के साथ साथ संगठित होके भगवान बुद्ध को वाणी संघों के बीच में और उपासक लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए एक उपनिषद उन्होंने चालू किया था, प्रवर्तन किया था। तो उपनिषद का विषय जानकारी नहीं होने का कारण मैं पहले दिल्ली आने के बाद 4-5 साल कोई उपनिषद नहीं देखा था। तो मुझे ऐसा लगता था बिना उपनिषद करके हम संघ संगठित होने पाएंगे, संघ का रूल जो कानून ये क्या हम जानकारी नहीं मिलेगा तो हम फॉलोअप कर नहीं पाएंगे। तो उसी कारण से तो हम पहले 4-5 बनते लोग हम ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, मिनिमम वर्षावास 3 महीने के लिए। तो 2004 से अभी तक हमारा ये कार्यक्रम दिल्ली में चालू है, एनसीआर में चालू है। हम ऐसे रूप से करते हैं, 6 उपनिषद होते हैं वर्षावास के अंदर, और शुरुआत जो होता है आषाढ़ी पूर्णिमा से
इसके साथ 7 उपनिषद होता है। कम से कम 1 साल के अंदर हम 7 उपनिषद अभी तक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उपनिषद करने के बाद पातिमोक्ष पाठ होता है। भिक्षु संघ के नियम कानून विषय पर हम डिस्कशन करते हैं, शेयर करते हैं। तो बीच में हमारा बांधी जी धम्मानंद विवेचन जी लक्ष्मीनगर बिहार अध्यक्ष, तो उनका नेतृत्व में हम डिस्कशन किया, एक चिंतन किया, एक डिसीजन भी लिया। भिक्षु संघ को के लिए एक सोसाइटी बनाना बहुत ज़रूरत है संगठित होने के लिए। तो नामकरण भी हुआ, सब कुछ हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये है जितना बुद्ध विहार है, जो बुद्ध विहार में भिक्षु लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे बौद्ध शिक्षा का विस्तार नहीं हो रहा है। हम चाहता हूँ जो बुद्ध विहार में भिक्षु लोग नहीं है और भी जो बुद्ध विहार भिक्षु लोग है, हर बुद्ध विहार का साथ हम संपर्क करें। बुद्ध विहार जो संस्था का माध्यम से परिचालित होता है वो सोसाइटी से संपर्क करें। वो दोनों का माध्यम से, सोसाइटी और भिक्षु संघ के माध्यम से एक धार्मिक शिक्षा कैसा दे सकते हैं बच्चे लोगों के लिए, महिला लोगों के लिए, कोई जो सीखना चाहता है, ये हम एक प्रयास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि जो बुद्ध विहार में जो बौद्ध आचार, बौद्ध कल्चर, वो जब तक रेगुलरली प्रतिपालन नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा, अनुशीलन नहीं होगा, तब तक हम भिक्षु संघ का कोई मूल्यांकन हम कर नहीं पाएंगे। तो इसी कारण से भिक्षु संघ का संगठित करना पहले बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये है, कुछ दिन पहले जी ये कॉन्क्लेव का ऑर्गेनाइजर का एक मेंबर है गौरव जी मुझे फ़ोन किया था। तो फ़ोन करके उन्होंने एक दिल्ली का दिल्ली एनसीआर में जितना बुद्ध संस्था है, जो विशिष्ट उपासक लोग हैं, उनका एक नाम, फ़ोन नंबर वगैरह देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। इससे पहले आशीष बरुआ जी ने भी किया। तब मैं बहुत मुश्किल से फसाद संगठन का नाम कलेक्शन करके एक लिस्ट भेजा था। मुझे लगता है ये अशोक जी का पास भेजा था। तो बौद्ध संगठन बहुत है, बहुत उपासक है, एक्टिव उपासक बहुत है, लेकिन संगठन नहीं होने का कारण, कम्युनिकेशन नहीं होने का कारण, कोई प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट नहीं होने का कारण हम विच्छिन्न है। तो ये एक ज़रूरत है, जितना बौद्ध संगठन है पहले संगठन से संपर्क करना है। तीसरा बात ये है जी, हम जो बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव एज ए इंटरनेशनल एसोसिएशन सोसाइटी जो बनाया है, हर साल जो प्रोग्राम करते रहते, जानकारी मिलते हैं जी। ये सोसाइटी जो दिल्ली एनसीआर में जितना बुद्धिस्ट सोसाइटी है, भिक्षु संघ है, उनका विषय पर चिंतन मनन जो उन्होंने संस्था के माध्यम से कर रहा है, ये बहुत खुशी का बात है। आने वाला दिन में मैं आशा करता हूँ बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज आईबीसी के माध्यम से जो संगठित हो सकते हैं दिल्ली और एनसीआर जो बुद्ध सोसाइटी है, बुद्ध भिक्षु संघ है, मुझे लगता है हम अगला दिन, आने वाला दिन में कुछ न कुछ कम से कम हम कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, तो मैं फिर धन्यवाद देता हूँ जो आईबीसी का मेंबर, जो विशेष खास पर हमारा जो जोतपा जी है, मैं काफ़ी साल से उनकी जानकारी है। धर्मप्रिय जी है, उनके साथ काफ़ी दिन से हम जानकारी है। तो यहाँ पे 2 ट्रेडिशन का बौद्ध लोग हैं, लेकिन भाषा के अनुसार और 2-3 तरह का बौद्ध लोग दिल्ली में है। जैसे हिमालयन अंचल का बौद्ध लोग दिल्ली में है, जो नॉर्थ ईस्ट का सांगमा भाषा, जो सांगमाभाषी है, सांगमाभाषी वो ये भी बौद्ध लोग है। जो बंगाल का जो है, ईस्ट बंगाल का ओरिजिन जो बरुआ लोग है, और बाबा साहब को नहीं
जो बौद्ध लोग बहुत है, लेकिन संगठन नहीं होने के कारण कोई जानकारी हम अभी तक मिल नहीं पाया। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, 2003 में एक बार सेंसस हुआ था दिल्ली में, इंग्लिश अखबार में कुछ को रिकॉर्ड निकला था, तो सेंसस का माध्यम से बौद्ध, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन वो इंडिकेशन कुछ देखा था, लेकिन मेरा जानकारी से बौद्ध लोगों का संख्या बहुत कम देखा गया। तो मैं ये सोचा था, खास पर हम जो बौद्ध लोग हैं ठीक से हमको डाटा दे नहीं पाया, जो कलेक्शन किया वो डालेक्शन कर नहीं पाया। इसी जो कारण से मैं ये सोचा था, दिल्ली में जितना कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है और लोकल नगर निगम का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार परमानेंटली जो बौद्ध लोग दिल्ली में है, वन शहर में है, हम खुद एक सेंसस हम कर सकते। 5 साल बाद 2 साल बाद हम फिर सेंसस करके हम एक डाटा निकाल सकते हैं, कितना शिक्षित महिला है, कितना पुरुष है, कितना शिक्षित करना है। तो उस हिसाब से हम एक सेंसस अपना कर लेंगे तो हम ये सब सामने ले सकते हैं सरकार का सामने, हम इतना बौद्ध लोग है, इतना सोसाइटी है। जैसे हमारे जो दिल्ली का मिनिस्टर ये गौतम जी, तो उनसे पर मुलाकात हुआ था, मुझे बुद्ध विहार में गया था, तो उन्होंने एक बात कहा था मुझे, मैं कहा था जैसे एज ए माइनॉरिटी कमीशन, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माइनॉरिटी कमीशन है और स्टेट लेवल का माइनॉरिटी कमीशन होता है, लेकिन हर स्टेट में नहीं है। जो स्टेट में है तो उसी में पश्चिम बंगाल में देखा है बौद्ध एक प्रतिनिधि है, और दूसरा कंट्री में कहाँ पर है इतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली में मैं सुना है, दिल्ली में एक माइनॉरिटी कमीशन है दिल्ली सरकार का, लेकिन सिर्फ 2 मेंबर है, एक मुस्लिम संप्रदाय से है और एक सिख संप्रदाय से है। तो और जो संप्रदाय लोग है, बौद्ध है, जैन है, फारसी है, तो हर सोसाइटी से एक कम से कम माइनॉरिटी का कमीशन का मेंबर होना चाहिए। हम आईबीसी का माध्यम से ये जो दिल्ली सरकार का अंदर जो माइनॉरिटी कमीशन है, वो तो बौद्ध प्रतिनिधि रहना से हम और कुछ दिल्ली सरकार से भी हम जो फायदा जो मिलते हैं हम ले सकते हैं। तो ये विषय पर तो मुझे लगता है आप लोग भी थोड़ा चिंतन करेंगे, आप लोग के परामर्श देंगे, इसी विषय पर प्रस्ताव रखेंगे, तो हम दिल्ली और एनसीआर में जो बौद्ध लोग को, बौद्ध विहार को व बौद्ध संघ को संगठित करना चाहता है, तो इसी विषय पर हम फोकस डालना है, एक्टिवली कुछ कार्यक्रम हाथ में लेना है। मैं आईबीसी का आज का इसी प्रोग्राम में देखा है, यहाँ पे एक कमेटी बनेगा जो दिल्ली एनसीआर में जो बौद्ध लोग हैं उनको कैसा संगठित किया जाए, वो कमेटी के माध्यम से ये जो प्रस्ताव उन्होंने जो प्रस्ताव लिया है ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, मैं स्वागत करता हूँ। तो मेरा तरफ से मैं जितना दिल्ली में रहूँगा, तो मैं तो मुझे लगता है दिल्ली मुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आया था बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से आने के बाद मेरा जो स्टडी ख़त्म हुआ, मैं अप्लाई किया था इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे सिटीजनशिप दिया है दिल्ली के बेस पर, मेरा सारे कुछ दिल्ली का अंदर है। तो उसी हिसाब से मुझे एज ए इंडियन रूप से मैं दिल्ली का हूँ, तो मैं उम्मीद है हम आने वाला दिन में भी दिल्ली रहने के लिए कोशिश करूँगा। आप लोगों से और भी मुलाकात होगा और भी बातचीत होगा, आप लोग का सभी को सलाह से सब लोगों को परामर्श से हम जो विषय पर आज हम बात कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा, मैं उम्मीद है। फिर जो आईबीसी को सभी कर्मकर्ता को धन्यवाद देता हूँ। आपका सभी के मंगल हो। साधु साधु साधु।
थैंक यू वेनरेबल कचन बनते, आप यहाँ आए और हम सभी से इतने विस्तार से बातचीत की, हम सभी को बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू उसके लिए। और अब मैं मूव ऑन करूँगी हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो कि दोबारा से धर्माचार्य शांतनु सेठ हैं अहिंसा ट्रस्ट से, और अब वो हमें वर्चुअली दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं और हमसे बात करेंगे। आवाज़ नहीं आ रहा है ना? So, dear friends, dear respected Bhikshu Sangha, dear respected friends, you can hear me now? Is the voice coming? Yes, yes. Yeah, the voice is coming. So, friends, I thank you so much for giving me this opportunity. मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम हो रहा है। सब जो एनसीआर के जो बौद्ध धर्म के जुड़े हुए ग्रुप्स हैं, जो लोग हैं, हम एक साथ हुए हैं। तो मुझे तीन चीज कहने थे। द फर्स्ट इज हाउ इम्पोर्टेंट, जैसे लामा जोत्सपल ने भी कहा और अभी जो हमारे दूसरे भिक्षु ने कहा कि दिल्ली में काफी अलग अलग बुद्धिस्ट संप्रदाय के लोग रहते हैं, या थेरवाद हो या महायान हो या वज्रयान हो, और जो नए मूवमेंट्स भी शुरू हुए हैं जैसे नवयान, अशोका गकाय और अलग अलग ट्रेडिशंस, ज़ेन, हमारे जो परंपरा ज़ेन की ट्रेडिशन के, तो वी आर ऑल इन दिल्ली। और मुझे लगता है कि हम एक किस्म से बुद्धयाना बोलते हैं, हम मायाना, हिनयाना, थेरवादा ये नहीं कहते हैं, हम बुद्धयाना, हम सब भाई बहन हैं बुद्धयाना के। सो फर्स्ट थिंग आई थिंक इज टू अंडरस्टैंड कि वी आर ऑल वन कम्युनिटी। ऑल्सो दिल्ली में एम्बेसीज भी हैं, वो भी there are many countries which are Buddhist countries. They are also part of the NCR community. So to try and see how the NCR Buddhist community can come together, it's very important. और ये हो सकता है जब हम एक दूसरे के विहार या उनके जो मीटिंग्स हैं उसमें विजिट करें, क्योंकि हमें समझ आएगा कि उनके जो प्रैक्टिसेस है, उनके जो फिलॉसफी है क्या है। बुद्ध धर्म में कभी नहीं हुआ है कि हमारे पास एक पोप हुआ है। जब से बुद्ध भगवान आए काफी अलग अलग ग्रुप हैं और वो हमारी ताकत भी है। तो ये नहीं है कि एक ही बुद्धिज्म होना चाहिए, मगर ये है कि जैसे फ्रूट सैलेड होता है उसमें केला हो या एप्पल हो या संतरा हो, वी ऑल हैव आवर ओन फ्लेवर बट वी एंजॉय ईच अदर्स फ्लेवर टुगेदर, सो वी बिकम लाइक अ बुद्धयाना ग्रुप। और ये आईबीसी का काम इसमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आईबीसी जैसे ये मीटिंग कर रही है, वी आर ब्रिंगिंग अस टुगेदर। सो फर्स्ट इज टू लुक आवरसेल्व्स एज बुद्धयाना ग्रुप। दूसरा है कि जैसे सुबह भी मिस्टर धर ने कहा, तब अजीर विद्या जी ने कमेंट किया कि हमें वी हैव टू ब्रिंग बुद्धिज्म अलाइव अगेन इन इंडिया इन द 21st सेंचुरी। अब ये है कि हिस्टोरिकली हमारे परदादे सभी बुद्धिस्ट थे भारत में। This is the Buddha land. This is the mystery of history why Buddhism died in the country of its birth. But as we were seeing with Mr. Dhar's slides, Buddhism or Buddha Dharma is below the ground. जमीन के नीचे। We are trying to excavate it. वैसे ही वो जो बुद्ध धर्म का जो बीज है हमारे collective consciousness के अंदर है। As a collective Indian polity, we have the Buddha seed in us. जैसे जब मुझे हुए 35 साल पहले, मैं हिंदू धर्म में
मेरा जन्म हुआ था. But when I started hearing the Buddhist learning, Buddhist teaching, I said, wonderful, this is so obvious to me. और मुझे लगा कि जैसे this is just like water being put on a seed, जहाँ पर जो जमीन सूखी होती है, and you put the water, the whole seed will germinate. वैसे ही हुआ मुझे. मैंने कहा, what a wonderful philosophy, what a wonderful teaching. और हमारे देश से, हमारी जमीन से, हमारी धरती से. So I think to revive Buddhism is not only for Buddhists, पर हमें देखना है कि हमारे जो संस्कृति में, हमारे जो पूरे इतिहास में Buddhism has played such an important role. किस में? Democracy में, और democratization of education, universal education Buddhism से आया था. पहले तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए था. Trade, ecology, diet, vegetarianism, all different types of ideas जो Buddhism लाए हैं into compassion into the polity of India, which we know. हम लोग वैसे ही रहते हैं भारत में, हमें समझ नहीं आता कि हमारे बुद्धिस्ट हेरिटेज से आ रहा है. तो ये कैसे समझेंगे? पहले तो हमें अपने आप समझना है, और दूसरी बात है कि एजुकेशन में डालना है. एजुकेशन इज अ की एलिमेंट. कि हमारी जो संस्कृति है, बुद्ध धर्म की संस्कृति भारत में, हम अपने आप नहीं जानते हैं. मैं हर साल जाता हूँ तीर्थ पर, बौद्ध धर्म के तीर्थ पर, और कुशीनगर हो या वैशाली हो या श्रावस्ती हो, वहां के जो लोकल पीपल है वो तो कभी कभी सोचते हैं कि भगवान बुद्ध भी जापानी है या थाई है. उनको, क्योंकि वो टूरिस्ट आते हैं वहां से, भारत से तो कोई बहुत कम लोग आते हैं. तो ये हमारे दिमाग में रखना है कि हम लोग बुद्ध भगवान के बच्चे हैं. हम सभी, हम भारत में ऐसे ही हैं. एंड दैट्स, बट आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड फ्लाई ओनली बुद्धिस्ट फ्लैग. आजकल हम लोग जो हम पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, हम पढ़ा रहे हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस. अब माइंडफुलनेस प्रैक्टिस is a type of mind training that has been developed out of Buddhist teachings. Even in the Eightfold Path, बुद्ध भगवान कहते हैं right mindfulness, तो right ध्यान. तो this practice of mindfulness, you don't have to be Buddhist, you can be Hindu, Muslim, Christian, anyone. But this teaching is very important, this teaching of mind training. आजकल जो साइकोलॉजी चल रही है, जो साइंस चल रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स बहुत ही यूजफुल है फॉर स्ट्रेस रिडक्शन. तो पूरे वेस्ट में आ रहा है, अब भारत में क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने बुद्धिस्ट फ्लैग के साथ चलो हर जगह, मगर मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध धर्म, बुद्ध टीचिंग्स वो जरूरी है, और वो हमें अपने देश में फिर से फैलाना है ताकि सबका फायदा हो. ये नहीं कि सिर्फ बुद्धिस्ट का, सबका फायदा हो. अब तीसरी चीज थी जो मैं शेयर करना चाहता था, और वो है थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक किस्म से, मगर ये कि मैं सोचता हूं हमें जब संघ के बारे में बात करते हैं, हमें बात करना चाहिए 4-fold संघ, 4 अंग का संघ. भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक और उपासिका. और महापरिनिर्वाण सूत्र में भी ऐसे भगवान बुद्ध ने कहा है. क्योंकि क्या हुआ है इतिहास से, क्या हुआ है कि संघ ज्यादातर सिर्फ भिक्षु लोगों के लिए रहा है, और तब कभी कभी भिक्षु भिक्षुनी के लिए. मगर शुरुआत में ये था कि हम चार संघ एक साथ रहे. क्योंकि अगर आप मकान देखेंगे या कुछ भी छत होगा, उसमें 4 पूरा गिरा. और जो हमारे अभी भाई बांग्लादेश, जो पहले बांग्लादेश से आए थे, वो भी कह रहे हैं उनको सपोर्ट चाहिए, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें. ये जो छत है बुद्ध धर्म का, ये 4 पिलर्स का होगा, उपासक, उपासिका, भिक्षु, भिक्षुनी. नहीं तो ये चलेगा नहीं. और दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हाई बुद्धिज्म डाइड इन इंडिया. तो ये जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मगर मुझे कहना ही था, क्योंकि जब हम देखेंगे एनसीआर के जो बुद्ध धर्म ग्रुप है, कोई वेरी एक्टिव ग्रुप्स हैं, मगर वो भिक्षु भिक्षुनी नहीं है, मगर उनका सपोर्ट लेना ही है. और हमें समझना है और हमें सपोर्ट करना है जो भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है. मगर ये भी देखना है कि जो ले पीपल हैं, जो उपासक है, उपासिका, ले मैन, ले वुमेन, हमारा जो एक्सेस है, हमारा जो पेनिट्रेशन है सोसाइटी में, हमारा अलग पेनिट्रेशन है. हम लोग एजुकेशन में जा सकते हैं, हमें मीडिया में जा सकते हैं,
और हमें सिर्फ ये जैसे रोब नहीं पहनना होता है, तो आवर वर्क इज टुगेदर, तो ये संगठित रहना चाहिए कि, और हमें रहना भी चाहिए ऐसे भिक्षु भिक्षुनी मंक्स लेमैन एंड लेवरमैन। तो ये मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स कहने थे। एक था कि ये बुद्धयाना होना चाहिए और एनसीआर की तरफ से हमें ऐसे ही देखनी चाहिए, हमारे भाई बहन, और सिर्फ टीचिंग्स नहीं मगर ऑल्सो सपोर्ट। अगर किसी को सपोर्ट चाहिए, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें कंपैशन से, केयर से। तो एक है बुद्धियाना। दूसरा है कि हाउ टू ब्रिंग बुद्ध धर्म अलाइव इनटू 21st century, today's problems। और तीसरा है the fourfold sangha। I wish IBC all the blessings of the Buddha and the ancestral teachers, and I feel it is a very good initiative what you're taking. We need to do this together, and we are there with you in our small way, with the Ahimsa Trust, with our friends who are interested in Buddhism. But I think that India will benefit if the Buddha Dhamma comes alive in India. We are very practical, we live on this earth, and we know that there is suffering. Dukh hai zindagi mein, and we understand how to overcome that suffering, the suffering of the body and the suffering of the mind, in this world, not looking for some other world. So we are teaching for our time, in this time of COVID, in this time of confusion, in this time of poverty, in this time of mental stress. I feel Buddhism is wonderful. So thank you so much for listening to me and for listening to me virtually from Dehradun. मैं आ नहीं सका, it's my loss, but thank you for organizing this. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. वेल थैंक यू वेरी मच धर्माचार्य शांतम सेठ। अगर आप अभी भी हैं हमारे साथ, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, और मैं सभी के बिहाफ पे कह रही हूँ कि ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि वो हमें ज्वाइन कर सके वर्चुअली और हमसे बात कर सके। अब एक ओपन फोरम है डिस्कशन के लिए, जो कि वेनरेबल डॉक्टर दामापिया मॉडरेट करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी आपके कमेंट्स हों, कोई विचार हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ फील फ्री, अपना हाथ उठा सकते हैं। हम एक कॉर्डलेस माइक आप तक पहुंचाएंगे और वेनरेबल दामापिया जो हैं वो इसको मॉडरेट करेंगे। थैंक यू। ओके, माइक है ना? ठीक है, ये हाँ हाँ यहाँ दे दीजिए इनको। नहीं हाँ हाँ राइट। It is 1 second. It is for your information. अभी इस सेशन में हमारे physically 1 speaker was there, and virtually 1 speaker put together 2 speakers. और morning session में भी जो speakers थे, तो आपका question can be either for this session or even morning session. This discussion forum is now open. Please. Yeah, please. पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरे ख्याल से हर आदमी को अपना परिचय दे दूं, बोले कम से कम लोगों को पता लगे कौन लोग कहाँ से आए हैं। मुझे टीएम कुमार कहते हैं, मैं साउथ दिल्ली रहता हूँ। मेरा अपना एक अलग धंधा बुद्ध विहार है, उसकी मैं सेवा करता हूँ। अब आगे का डिस्कशन चल रहा हूँ। टीएम कुमार, सबसे पहले मैं पूज्य भिक्षु संघ, पूज्य वेनरेबल सेक्रेटरी जनरल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बहुत साथी जो हमारी एज के हैं, जवान लोग बहुत सारे हैं, उन सबको बात करके मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। ये बहुत जो टॉपिक दिया है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसको आप 1 मिनट में नहीं, 2 मिनट में नहीं, कई घंटे में भी ख़त्म नहीं कर सकते। वो टॉपिक है ये। कितनी समस्याएं हैं हमारे। देखिए, एक हमारे भिक्षु संघ है, भिक्खु लोग हैं। दूसरी बात उपासक और उपासिकाएं हैं। प्रॉब्लम, हम लोग 40-50 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली में पूरा काम कर रहे हैं, और दुनिया में मुझे जाने का मौका मिलता है। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या जो है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इतने साल में, कि हमारे यहाँ बुद्ध विहार है और कम से कम 6-7 मॉन्क बराबर रहते हैं। देश में, दिल्ली में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड के आपको
मिलेगा वो विजिटिंग कार्ड, वर्ल्ड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फला दिस। बट हमारे मॉन्क कैसे सेवा करेंगे मुझे बताइए आप। हमारे मॉन्क जब तक आप उनके लिए कोई हमारे पास चिकित्सा केंद्र नहीं है, देयर इज अ नो clinic in the Delhi where the monk can go and he can stay, he can go for the his उपचार। तो प्रॉब्लम क्या है, काम नहीं हो सकता। मेरे बिहार में कम से कम 4 मॉन्कों का निर्माण हुआ, तो मॉन्क काम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, संस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। हमने अभी शुरुआत की अपने बिहार में, और हमने धम्मा क्लिनिक करके स्टार्ट किया है। लेकिन आप जानते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। हमने कोई शिकागो से कोई डॉक्टर को पकड़ा है, और उसके बाद अभी धीमे धीमे हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ कम से कम मॉन्क के लिए उसमें जब तक वहाँ नहीं मेडिसिन हो, कम से कम 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में एक मॉन्क को कम से कम चेकिंग का तो कोई व्यवस्था हो। हमारे मॉन्क अस्पताल में जाते हैं, वहाँ ट्रीट को अच्छे से नहीं करते हैं, लाइन में जाके खड़े होते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारी जो संस्था है, जो ये जो संस्था है, उसको मैं प्रार्थना करूँगा कि अब दूसरी उसमें कैसे प्रार्थना करूँगा कि सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ मिनार्टी कमीशन है, हमारे जोता साहब भी वाइस चेयरमैन है, 2 बार मेंबर है, हमारे बीच में बैठे हैं। कोई भी संस्था इतनी बड़ी है लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है दिखाने का है कि ये माइनॉरिटी कमीशन है, ये चेयरमैन साहब हैं, ये मेंबर साहब हैं। दो दे आर हैविंग द पावर ऑफ द स्टेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, बट देयर इज नो पावर। तो उनको पावर दी जाए कम से कम जितने हमारे बिहार हैं उनका एक लिस्ट बने, इन लिस्ट हो कम से कम दिल्ली में नहीं पूरे भारत में। और उसके बाद जहाँ जो समस्या होती है, चाहे वो मॉन्क की समस्या हो, चाहे वो हमारे उपासक उपासकों को समस्या हो, उसके लिए काम किया जाए। वो नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी बात है। वो दिखाई मात्र है सिर्फ, उनको कोई पैसे का भी फाइनेंशियल भी कोई प्रोग्राम दिया जाए जिससे कि वहाँ का काम चल सके। सबसे बड़ी तीसरी जो बात है, जो मैं बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, भारत में कहीं पर भी, मेरा भारत में हर स्टेट में जाता हूँ, दुनिया में जाता हूँ, लेकिन आज तक कोई भी, ना तो कोई हमारा कोई ट्रेनिंग क्लास है, ना मॉन्क के लिए, ना उपासक के लिए, उपासका के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई इस तरह का कोई विधान नहीं जहाँ पर हमारे उपासक उपासिका मॉन्क जहाँ जाएं उनको ट्रेनिंग बनाई जाए। वो उस तरह का कोई इस तरह का कोई संस्थान नहीं है। नंबर 2, हमारे मॉन्क आते हैं, मुझे पता है, रेलवे स्टेशन पे आते हैं, पैंट कमीज पहन के आते हैं। मैं बहुत कड़वी बात आपको बीच में कह रहा हूँ। उसके बाद वहाँ वो चीवर पहन के बिहार में चले जाते हैं। आप उनसे पूछिए कहाँ से उन्होंने संपदा ली है, किसी ने उपसंपदा दी है, किस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। और पिछली बार हमने 3 मॉन्क नागपुर जाके पकड़ाए, जो बांग्लादेश से आए थे, वो मुस्लिम थे और वहाँ पे मॉन्क रह रहे थे, और 1-1 लाख रुपया किसी बरुआ भाई ने उनसे लिया और कहा चलो हम दोनों बना देंगे। इस तरह के काम हो रहे हैं क्या? और संस्थाएं क्या यहाँ पे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इसका डिटेल में आप कोई इस तरह का एक प्रोग्राम रखें जहाँ ये बातें की जा सकें। तो इस तरह से जब तक कि सब काम नहीं होंगे, हमारे दिल्ली में कम से कम 180 के 180 करीब विहार हैं, और सौभाग्य है जिसका हम लोग नाम नहीं ले रहे हैं कि रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द डॉक्टर अम्बेडकर। अदरवाइज देश में बुद्धिज्म खत्म हो जाता। और उसके लिए बिहार है हमारे, जितने भी आप बिहार दिल्ली में जाइए, भारत में जाइए, वो ज़्यादातर अम्बेडकर के बुनवाई लोग वहाँ पे वो जो विहार चला रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है। तो इस तरह से कम हमें इस तरह दूसरे चकमा लोग भी चल रहे हैं, चकमा लोग अपना चल रहे हैं, वो चकमा बुद्धिस्ट बने हुए हैं। कोई अम्बेडकर वाले न्यू बुद्धिस्ट लोग कहते हैं उनको। उसके बाद बरुआ लोग बने हुए थे, मैं बरुआ बुद्धिस्ट हूँ। मैं तो बांग्लादेश जाता हूँ, वहाँ उनको कहते हैं न्यू बुद्धिस्ट नहीं है। जो अम्बेडकर वाले जो बुद्धिस्ट उनको कहते हैं न्यू बुद्धिस्ट हैं। तो मैंने कहा भैया ये बता दो, ये तो बुद्धिस्ट वाला क्या चक्कर डाल रहे हो। तो ये सब बातों का हमें मनन करना है। दिस इज़ ए वेरी बिग सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। और मैं तो सेक्रेटरी जनरल साहब प्रार्थना कर दूंगा कि इसके लिए कोई विशेष सत्र आप बुलाएं, और उसमें डिफरेंट सेट के बरुआ लोग भी हों, बरुआ बुद्धिस्ट भी हों, चकमा बुद्धिस्ट भी हों, अरुणाचल के बुद्धिस्ट भी हों, और डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी वो बुद्धिस्ट हों, उस पर चर्चा करें। ये बहुत छोटी बातें हैं, इस पर हमें मनन करना चाहिए, क्योंकि ये जो संस्था है बहुत बड़ी संस्था है। उसके लिए कम से कम हमारे मॉन्क के लिए कोई न कोई, जब तक कि कोई क्लिनिक और इस तरह का कोई छोटी व्यवस्था नहीं होगी, हमारा काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोदय।
Okay, thank you so much, esteemed Upasaka. There are two, three points you have raised. एक तो क्लिनिक का बात है. Definitely, for the monks and nuns, जो भिक्षु भिक्षुनी हैं, इन लोगों का विनय रूल्स, ऑब्जर्वेशन सब कुछ अलग अलग होता है. जहाँ पे प्रतिरूप देश हैं, लाइक श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और इधर मंगोलिया, भूटान, जहाँ पर बुद्धिस्ट पीपल और गवर्नमेंट दोनों साथ में हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे ये भिक्षु भिक्षुनी के लिए जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स अलग सा वहाँ पे होता है, बिकॉज इट इज़ सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट और द पीपल ऑफ द लैंड. तो हमारे इंडिया में सब कुछ जनरलाइज्ड हैं. यहाँ पर आप रेलवे स्टेशन में टिकट खरीदने के लिए हो या हॉस्पिटल में हो या जहाँ पर भी हो, everybody is equal kind of thing. तो सबको जाके लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, सबको सेम जगह पर जाके ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा. ऐसे कुछ हमारे इंडिया में डेफिनेटली अभी हो रहा है. इसको एक क्लिनिक जो है, इट इज़ if we are to set up clinic, so we have to have actually the clinic at different regions and different places. क्योंकि हमारा जो मोनास्ट्रिक कम्युनिटीज़ हैं, monks, venerable monks and nuns, they spread all over the country. I think this is a topic we have to work on and see how it is feasible and possible to set up this kind of clinic that needs financial implication also. We need to have finance, main is the finance part that need to be worked out. और जो ट्रेनिंग का बात जो कर रहे हैं आप, ट्रेनिंग सेंटर्स, भिक्षु भिक्षुनी के लिए मॉन्क्स ट्रेनिंग सेंटर्स और बुद्धिस्ट लोगों के लिए जिस चिल्ड्रेन, बॉयज़, गर्ल्स या उपासक उपासिका लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर जो हैं अभी नहीं है, वो सही है. लेकिन अभी कौन तैयार करेगा इसके लिए, बात वही है ना. इसलिए मैं सुबह वही बोल रहा था, आत्मदीप भव जो बात है, आत्म शरणं अन्य न शरणं जो बात है, ये यहाँ पर एप्लीकेबल है एंड रिलेवेंट है. ये सब चीज़ आई कैन नॉट से, मैं नहीं बोल पाऊँगा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा है और ये फलाना ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वो क्यों नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है बोलने से होने वाला नहीं है. ये हमें अपना खुद को ही करना पड़ेगा. दिस इज़ द पॉइंट. इसीलिए हम लोग अभी सब लोग साथ में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या हमारे कठिनाई हैं, समस्या हैं, चुनौती हैं, इसको हम कलेक्टिव रिसोर्सेस, कलेक्टिव विजडम यूज़ करके हम कैसे इसको ठीक ठाक कर सकता है. यही हमारा मेन उद्देश्य है. और आई अंडरस्टैंड द ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स एकदम नहीं है, वो बात भी नहीं है. कुछ सेंटर्स हैं बट लिमिटेड हैं, जिससे हमारा ज़रूरी है उस हिसाब से अभी नहीं है, इसको कर लेना पड़ेगा. आप देखिएगा, अगर इफ वी आर टू सी the educational policy of the land, it is not proper for me to speak, लेकिन this is the fact and the truth. आप अगर माद्रासा का बात करते हो, तो ये एक सिस्टेमेटिक एजुकेशनल बोर्ड है जहाँ पर आप सेकुलर एजुकेशन या जो फॉर्मल एजुकेशन वो भी ले सकता है. सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, लैंग्वेज, ज्योग्राफी एट्सेट्रा. और उसके साथ साथ
जो इस्लामिक स्टडी और कुरान के ऊपर स्टडी वो भी वहाँ पर हो सकता है. There's already government approved board called Madrasa Board. The certificate is also valid and financial support is also given by the government. Either it is central government or the state government. But when we are to talk about the Buddhist education, Buddhist studies, हम लोग के पास जो हैं वो प्राइवेट एफर्ट हैं, जिसका जितना पॉसिबिलिटी है, जितना ताकत है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, अपना से ऑर्गेनाइज करके अरेंज करके कुछ ट्रेनिंग सेंटर समहाउ चला रहे हैं. वी आर नॉट हैविंग सच सिस्टम अप्रूव्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट. तो यही हमको सोचना पड़ेगा अभी कि something like that. There should be some system where Buddhist education can be imparted, monastic as well as the normal teachings of the Buddha, along with other subjects. Then I think it can work. Otherwise, it will be our individual effort. जो हम जितना हो सकता है हम लोग कर सकते हैं. But we have to think in this line. With the support of the government or international Buddhist community, ऐसे कुछ हमको करना पड़ेगा जहाँ पर रीजन वाइज कम से कम रीजन वाइज कुछ सेंटर्स हमारे पास रहें. इट शुड बी रिकॉग्नाइज एजुकेशन सेंटर्स. अभी टू रिफर फॉर एग्जांपल ये नालंदा ट्रेडिशन या महायाना ट्रेडिशन या आप इनको और इसको ये कहते हैं कि तिब्बतन ट्रेडिशन जो भी कहेंगे, जो साउदर्न इंडिया में है, कर्नाटक स्टेट या दूसरा स्टेट में, वहाँ पर बिग सेटअप है जहाँ पर एक एक मोनास्ट्री में 1-2 वेनरेबल मॉन्क्स लोग रहते हैं, नॉन्स लोग रहते हैं, 3-4 हज़ार तक हैं एक एक मोनास्ट्री में. बिग सेटअप हैं. तो वहाँ पर जो मोनास्टिक एजुकेशन दिया जाता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू ऑलमोस्ट आचार्य डिग्री लेवल, that is master degree, PhD degree level वहाँ दिया जाता है. But that certificate is not recognized by the established universities and educational institutions in India, which comes under UGC. तो ये एक समस्या है वहाँ का जो है. But they are having this proper training centers and setups. लेकिन हमारा जो यहाँ का थेरावादा बुद्धिस्ट कम्युनिटी में जो है, आप इसको चकमा बुद्धिस्ट बोलिएगा या बरुआ बुद्धिस्ट बोलिएगा या अम्बेडकर बुद्धिस्ट बोलिएगा और जो नाम से बोलिएगा, बट वी आर बुद्धिस्ट डेफिनेटली. तो हमारा जो थेरावादा ट्रेडिशन का जो कम्युनिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, उसी तरह इस्टेब्लिश सेंटर हमारे पास अभी नहीं है. ओनली 1 or 2 सेंटर्स. एक है बेंगलोर, महाबोधि सोसाइटी बेंगलोर, इन लोग कुछ चला रहे हैं. उनका कैपेसिटी भी कम है कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट, राइट. तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी नॉट रिकॉग्नाइज्ड. दे आर रनिंग ऑन प्राइवेट बेसिस. कुछ धम्मा कोर्सेज चला रहे हैं. दैट इज़ वेरी गुड. पालित सिखा रहे हैं. monks and the samniras are getting trained there. और ओपन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कुछ चालू कर रहे थे लोग, पता नहीं इसका क्या स्टेटस है. और इन कोलैबोरेशन विद अदर यूनिवर्सिटी कुछ डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स ऐसे कुछ कर रहे थे इन लोग. बट वी डू नॉट हैव प्रॉपर सिस्टम येट. इन लोग अपना तरह से इट्स ट्राइंग टू वर्क एंड डू समथिंग. आई थिंक now this is a time that we have to come together and place a demand to concerned authority, but this has to start with our own initiative. पहले अपना खुद को करना है. करने के बाद हम जहाँ से सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट लेके आगे बढ़ेंगे. वही इसको करना पड़ेगा. I think that we will have to do, and I again assert we only have to do. Nobody will do that for us. Only people may support. और जो तीसरा जो पॉइंट आपने रखे हैं इसमें, दिल्ली एनसीआर में अभी ऑलमोस्ट 180 बुद्ध विहारास हैं. मुझे मालूम नहीं है. आई थिंक
Venerable Dr. Kachayana Bhante and our Lama Jutpa ji, आप लोग बोल पाएंगे यहाँ पर है ना, दिल्ली एनसीआर में 180 छोटा बड़ा बुद्ध विहार हैं बोल रहे हैं, लेकिन मॉन्क्स लोग कम हैं या नहीं हैं या एक हैं या दो हैं ऐसे हैं। आप बोल रहे थे आपका वहाँ पर 7 हैं, मे भी मैक्सिमम ऐसे हो सकता है इन थेरावादा ट्रेडिशन, लेकिन यहाँ पर दूसरा ट्रेडिशन में तो है, हमारे लामा लोग जहाँ पर मंदिर है तो बहुत है लग रहा है यहाँ पर भी। तो आई अंडरस्टैंड ये भी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, मॉन्क्स लोग नहीं है इसका मतलब बाहर का कोई हिंदू या मुस्लिम या कोई रिस्पॉन्सिबल ऐसे बात नहीं है। मॉन्क्स नहीं है तो कहाँ से मॉन्क्स आएगा? मॉन्क्स आना है तो हमारा बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ना आएगा। तो हमारा जो बुद्धिस्ट उपासक उपासिका लोग हैं, उपासक संघ है, उपासिका संघ है, आपका जिम्मेदार है ये। मॉन्क्स कहाँ से बनता है? शांतम सीट जी ने बोल रहे थे कि ये 4 जो संघ हैं इसमें मोस्टली स्पोकन अबाउट भिक्षु संघ और भिक्षुनी संघ, वहाँ पर जो इम्पोर्टेंस ऑफ उपासका संघ और उपासिका संघ उतना नहीं आता था। ऐसा नहीं है। आप देखिएगा इसमें कोई संघ नहीं होगा जब तक यहाँ पर ये मेल फीमेल नहीं होगा। देखिएगा नहीं क्या? अगर मेल नहीं है, मैन नहीं है, तो भिक्षु कहाँ से बनेगा? भिक्षु तो अनदर फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैन। भिक्षु भी वैसे ही है, तो फीमेल से तो भिक्षु नहीं बनता है। तो अगर आप लोग अपना लड़का या लड़की को भिक्षु या भिक्षुनी बनने के लिए परमिशन नहीं देंगे या रेडी तैयार नहीं करेंगे तो भिक्षु या भिक्षुनी कहाँ से बनेगा? इट इज नॉट दैट द भिक्षु एंड भिक्षुनीज आर available somewhere we can just request and bring or make. It's not like that. So we only have to reflect, introspect ourselves. हमारा कहाँ कमी है और हमें क्या करना है. It's very important. और दूसरा बात आप जो बोले हैं, there are some cases where बाहर में पैंट शर्ट पहन के जाते हैं monks लोग और बिहार में आने से चिबर पहन लेते हैं, ये बोल रहे हैं। ये तो बिटर ट्रूथ एंड फैक्ट देखे हम लोग है ना। तो इसका होम टू ब्लेम और एट्रीब्यूट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देख के या सुन के बहुत दुख लगता है एक्चुअली। आप देखिएगा बोध गया एंड सराउंडिंग प्लेसेस में जब टूरिस्ट का सीजन आता है, मेनली फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मे बी टिल मार्च, आप देखेंगे वहाँ पर सीजनल मॉन्क्स, उसका नाम दिया गया, किसी ने दिया पता नहीं, हमको बोल रहे हैं कि सीजनल मॉन्क्स। हाँ, और सीजनल मॉन्क्स इतना है और इन लोगों का संगठन जो है इतना ताकत वाला है, एकदम हंड्रेड्स ऑफ हैं। दे आर लिटरली द बेगर्स। चिवर पीना है, कहाँ से मिला, उपासमोद हुआ नहीं हुआ या प्रबज्जा हुआ नहीं हुआ, किसको मालूम नहीं है। लेकिन उसके साथ सिर्फ मेल नहीं है, फीमेल है, अपना बाल बच्चा है, अपना लड़का है या लड़के, सब जैसे वैसे करे कहाँ चिवर लेके पीना पता नहीं, एकदम लाइन करके खा रहे हैं, आप सबको पता होगा ये, है ना। दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव। लेकिन उन लोगों के साथ जाके कौन बात करेगा? वही हो रहा है ना। हम एक बार जाके बात करने के लिए कोशिश किया तो क्वाइट टफ। दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड, वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। आप कुछ बोलोगे ना जाके आपको खा लेगा, जैसे कुछ है। तो इसीलिए ये सब चीज़ हमारा ये बिटर ट्रूथ है, फैक्ट है। हाउ टू एड्रेस इट, दैट वी ऑल हैव टू वर्क, राइट। और जो तीसरा बात जो आप बोले हैं, देयर आर सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपनिंग। जैसे आपने रिफर किया नागपुर में कुछ मॉन्क्स लोग को पकड़ क्या बोला, गॉट caught, arrested and deported, something like that, है ना। वहाँ पर जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स ड्रेस में थे, ओरिजिनली दे वर नॉट फ्रॉम बुद्धिस्ट बैकग्राउंड, एंड इट हैज़ बीन फाउंड some of them or most of them were Muslims from Muslim background. They took the chivara given by some people. You have said some community, I don't want to mention any community, but might be some people might have done it. But the fact is such things had happened. तो उसको कैसे करेगा?
ये जो है, आई थिंक वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल. जहाँ जहाँ जब जब ऐसे कुछ चीज़ देखते हैं, वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड वर्क. आई अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, प्लीज वहाँ पर उनको दीजिए. हेलो. पूज्य बिच्छू सिंह और श्रद्धेय डॉक्टर धमप्री जी, हमारे आज के महासचिव. जैसा कि पहले मैं परिचय दे दूं, अभय रतन बौद्ध, नेशनल ऑर्गेनाइजर, बौद्ध संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति भारत, हेडक्वार्टर बुद्ध गया. जैसा कि भाई टीएम कुमार जी ने बताया कि बौद्धों की समस्याएं बहुत हैं और उस पर काफ़ी समय चाहिए, ये हकीकत है. बौद्धों की 100 से भी अधिक समस्याएं हैं और कई दर्जन नेशनल प्रॉब्लम्स है. मैं आईबीसी के महासचिव पूज्य बनते डॉक्टर धमप्री को बताना चाहूँगा कि जिस भाषा में हम धम्पद और त्रिपिटक और तमाम जो है सूत्र पाठ करते हैं, वो भाषा पाली ही भारत में अभी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं है. पाली भाषा को यूपीएससी से निकाल दिया. लास्ट ईयर हमने उसको जजमेंट कराया नागपुर हाई कोर्ट से. उसको मार्टी कमीशन में हेयरिंग में आया, सेक्रेटरी जनरल को बुलाया पब्लिक सर्विस कमीशन से, लेकिन पाली भाषा को अभी तक सबमिट नहीं किया गया. भले ही 55 यूनिवर्सिटी में पाली से एमफिल और पीएचडी भारत में कराया जाता है, लेकिन पाली जो बुद्ध काल की, अशोक काल की मातृभाषा है, इंडिया की मातृभाषा है, उसको पीछे कर दिया, संस्कृत को आगे किया जा रहा है. ये बौद्धों के साथ बहुत ही एक तरह से साजिश हो रही है. नंबर 2, जिस धर्म को हम लोग मानते हैं बौद्ध धर्म, उसको भारत में संवैधानिक दर्जा नहीं है. ये बहुत कम लोग जानते हैं. आर्टिकल 25 सब क्लास 2B में अभी वो सेपरेट रिलीजन नहीं है. सिख, जैन, बौद्ध तीनों हिंदू धर्म के साथ है. वीरेंद्र कौर ने लास्ट ईयर 2012 में सिखों की ओर से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया. बौद्धों की तरफ से मैंने भी फाइल किया. मामला पिछले लास्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग में था, लेकिन डेट पड़ गया. अभी तक बुद्धिस्ट जो है वो भारत में एज ए स्वतंत्र नहीं है, एज ए गुलाम, उसको गुलामी की पोजीशन में रखा गया है. इसी तरह से दिल्ली में 180 है, 200 जो भी बुद्ध विहार है, लेकिन बुद्ध विहारों का कोई एक्ट नहीं है. सिख गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट है. गुरुद्वारा में अगर एक क्राइम हो जाए, एक गुरुद्वारा तोड़ दिया जाए, तो पूरी दुनिया में तहलका मचता है. लेकिन भारत में बुद्ध और अशोक कालीन 90 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पर आज भी कब्जा है दूसरे धर्मों का. आज भी कब्जा है. बहुत सारे केस चल रहे हैं और बहुत सारे अभी भी उन पर प्रॉब्लम चल रहा है. और जो न्यू बन रहे हैं उनका भी कोई जिम्मेदारी आने वाले 50 सालों में उन मोनेस्ट्री पर भी दूसरे लोग कब्जा कर लें. जब बुद्ध गया, कुशीनगर, दिल्ली, सारनाथ, कोई जिम्मेदार नहीं है. तो हमको बुद्ध विहारा मोनेस्ट्री एक्ट भी बनाना है, बहुत जरूरी है. उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था, सारा फंड आता है, हज कमेटी मुस्लिम वालों को ले जाता है, मदरसा एक्ट, मदरसों के लिए पैसा जा रहा है, लेकिन किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए डिस्ट्रीब्यूट दिल्ली में नहीं हो रहा है कि चलो हम यहाँ पर 100 मोनेस्ट्रीज को 10-10 हज़ार रुपये भेज रहे हैं. कुछ सिस्टम होना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो बना है वह फंड होता है, फंड बुद्धिस्ट को नहीं जा रहा है, सारा फंड मुस्लिम ले रहा है. मैंने जब हज कमेटी को और मिनिस्टर्स को आईटीआई किया तो जवाब नहीं दिया कि बुद्धिस्ट को कितना पैसा पाकिस्तान के लिए या नेपाल लुम्बिनी के लिए या बुद्ध गया के लिए एयर का टिकट या रेल टिकट मिलता है. जवाब नहीं दे रहा है. इसी तरह से बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट नहीं है. बुद्धिस्ट की शादियां जो होती हैं किसी भी स्टेट में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इनवैलिड, सुप्रीम कोर्ट तक शादियां इनवैलिड हो गई. सिख गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट 7 जून 2012 को मनमोहन सिंह और सलमान खुर्शीद की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन भारत के किसी भी बुद्धिस्ट मेंबर ने, किसी भी बुद्धिस्ट एमपी ने या किसी भी बुद्धिस्ट संगठन ने सरकार के सामने अभी तक नहीं रखा कि बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट पास होना चाहिए. आज भी राज्यसभा में पेंडिंग है. 1990 में केवी उमरे साहब एडवोकेट थे और एसडब्ल्यू दावे एमपी थे नागपुर के. मामला स्टार क्वेश्चन लगा था राज्यसभा में, लेकिन आज तक वो बिल पेंडिंग है. हमारे किसी भी अम्बेडकरी सांसद ने या बुद्धिस्ट सांसद ने अभी तक इस बात को नहीं रखा कि बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट भी वैलिड हो, चाहे शादी बुद्ध विहार के अंदर हो, चाहे इस हाल के अंदर हो, चाहे हमारी शादी और कहीं हो, लेकिन वो शादी चाहे बौद्धाचार्य कराए, चाहे बुद्ध मोंक्स कराए, लेकिन शादी वैलिड होनी चाहिए. ये एक प्रॉब्लम्स है, नेशनल प्रॉब्लम्स. दिल्ली में अभी अशोका पहाड़ी का जो मंडी जहाँ भगवान बुद्ध आए थे, वहाँ पर रात शाम को जो है गुंडे बदमाश दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है. ये बगल में नेहरू पैलेस के बगल में है. हमने पुलिस अधिकारी को, पुलिस कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को कहा कि उसके गेट पर जो है कूड़ाघर बना दिया गया.
इतना बड़ा स्मारक है जहां पूरी दुनिया के लोग दर्शन करने आते हैं, गेट पर कूड़ाकर बना दिया दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने। कितना बड़ा प्रॉब्लम, जहां हम मीटिंग कर रहे हैं इससे चंद कदम दूरी पर है ये। तो सवाल यह है कि काम करने वाले लोगों को जरूरत है, जो भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको सोचने समझने आंखें खुली होनी चाहिए, लिखने पढ़ने की होना चाहिए। मैं अभी वैशाली था, 3 दिन पहले वैशाली में था। वैशाली के अंदर बीचों बीच में बुद्धिस्ट हिंदू मंदिर बना हुआ है, सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है केसरिया बौद्ध स्तूप, उसके बिल्कुल बगल में माता मंदिर बना दिया है। और वहां पर देसी विदेशी आने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए, पर्यटकों के लिए कोई पेशाब का टॉयलेट नहीं है, कोई गेस्ट हाउस नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स है। इसी तरह कुशीनगर का प्रॉब्लम्स है, इसी तरह बुद्ध गया में प्रॉब्लम्स है। हम लोगों को अपनी जितने भी भिक्षु संघ हैं, जितने भी बुद्धिस्ट संगठन हैं, आईबीसी हैं, सब लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। और पूरे भारत में जितना भी बुद्ध विहार है चैनलाइज करना है, सबका सर्वे करके बुद्ध विहार में भिक्षु है कि नहीं है, उसमें कितना बना है, उसमें प्रार्थना धम्म दीक्षा होता है कि नहीं होता है, उसमें कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर या बुकलेट निकलता है कि नहीं निकलता है, पूरा एक होना चाहिए। क्लिक करें, पूरा कंप्यूटर में आना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का नहीं है इंडिया में कि दिल्ली में कितना बुद्ध विहार रन कर रहा है, कितना बंद पड़ा है, नागपुर में कितना मोनेस्ट्रीज है, कितना काम कर रहा है, बुद्धगया में कितना मोनेस्ट्रीज है, कितना मोनेस्ट्रीज नहीं है। ये सब पर काम करना है। हमारा जो हेडक्वार्टर है बुद्धगया में, हमने बुद्धिस्ट पार्लियामेंट बनाया है। जैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्लियामेंट है, ऐसे बौद्धों का भी पार्लियामेंट गया में है। जो क्या नाम, महाबोधि मेडिटेशन सेंटर बुद्धगया बनते संधा मुनि जी, वहाँ पर करीब 200 छोटा छोटा बच्चा बिच्छू लोग ट्रेनिंग करता है। वहाँ पर पढ़ाई होता है, छोटा छोटा 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का भिक्षु वहाँ पर पढ़ाई करता है। और संधा मुनि जी जो उसके डॉक्टर संधा मुनि जी हैं, उसके चेयरपर्सन हैं। और हमने अभी 7वां राष्ट्रीय धम्म संसद उसमें किया था। उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। रेडियो टेलीविजन पर सभी धर्मों का आता है, लेकिन बुद्ध धम्म का, धम्म पद का 10 मिनट भी भारत सरकार जो है रेडियो टेलीविजन पर प्रोग्राम नहीं चलाती है। इस पर भी हमने कहा, कुशीनगर में जिला बना दिया गया, लेकिन वहाँ पर ना 2 बस अड्डा है, ना रेलवे स्टेशन है। बहुत मुश्किल से, जब 3 साल से लिखा पड़ी का अब एयरपोर्ट चालू होने वाला है, अभी एयर फ्लाइट नहीं आया है। आगामी महीनों में बर्मा देश का फ्लाइट आने की संभावना है। अभी वहाँ ट्रेन का काम शुरू हुआ, 1500 करोड़ रुपए अब जाके पास हुआ। तो वहाँ रेलवे लाइन, हमने इतना प्रयास किया, इतना संघर्ष किया पिछले 5 सालों में, तब रेलवे ट्रैक वहाँ पर कुशीनगर में जा रहा है और वहाँ बनेगा। 20 किलोमीटर गया से बुद्ध गया कर, 20-25 किलोमीटर एक टेम्पो में 20-20, 15-15 भिक्षु बिल्कुल भूसे की तरह भर करके वो ले जाता है, और कई बार लूट लिया जाता है। गया से बुद्ध गया तक कोई भी अच्छी एसी नॉन एसी बड़ी बस नहीं चलती, केवल वो चलते हैं, ये टेम्पो चलते हैं। हमने सरकार के सामने रखा। ठीक है, आपका समराइज कीजिएगा आपका, और भी तो ये सारी प्रॉब्लम्स है बनते जी। हम चाहेंगे आईबीसी 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का दिल्ली में जहां भी अच्छा से रखे। और बौद्धों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है 1 by 1 जिन पर काम करने की जरूरत है। हम सब मिलकर के काम करें। नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली बौद्ध का सामने इसे बहुत सारे चुनौती हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज हैं। कुछ सोशल्स हैं, कुछ कल्चरल हैं, और कुछ दूसरा है। जो डिस्कशन है ना, ये तो चलते रहेगा, क्योंकि ये आप जो बोले हैं इतना समस्या है लिस्ट करने के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट, तो हम लोग तो इसका ऊपर अभी एक वर्किंग ग्रुप करेंगे टुमारो इन दी लास्ट सेशन। तो उसमें वर्किंग ग्रुप जो रहेगा ऑन दिस टॉपिक, स्पेशली द चैलेंजेस ऑफ बुद्धिस्ट संघा एंड द ले बुद्धिस्ट कम्युनिटी, इसमें वो जो वर्किंग ग्रुप है, लगता है वो वर्किंग ग्रुप को आप लोग क्या क्या बुद्धिस्ट का जो प्रॉब्लम्स हैं लिस्ट करके दे सकते हैं, तब उसको हम लोग स्टडी करके कहाँ कहाँ तक इसका सोल्यूशन निकल सकता है। डेफिनेटली वी हैव टू एक्ट कलेक्टिवली। आप जैसे यूपीएससी का जो पालिका बात कर रहे हैं, और इसका आर्टिकल क्या 25 में सेपरेट रिलीजन बुद्धिज्म का अभी तक स्टेटस नहीं है, और बहुत सारे आप बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट के जरूरी आपने बोले हैं। तो उसके बाद और बुद्धिस्ट मैरिज एक्ट जो जरूरी है, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव सेड, आप जो बोले हैं। डेफिनेटली ये सब पॉइंट ऑफ हमने नोट किया है जो आपने बोले हैं, और जो भी होगा आपके पास और जिसी के पास भी हो, काइंडली यू make a list, and when working group will be formed or created, you can
hand over to that group, we'll definitely go through and collectively we have to act. आप और जो बोल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा स्टेट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना बुद्ध विहार है, कितना बुद्धिस्ट लोग हैं, कौन सा क्या कर रहा है, ऑल इंडिया में ये एक डेटाबेस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए है ना, मैं तो IBC में मैं जब से आया हूँ, फ्रॉम डे 1 से मैं ये बोल के आ रहा था कि इसे होना चाहिए. काम भी शुरू हो गया है डेफिनेटली. ये इट विल टेक सम मोर टाइम. काम हो रहा है अभी. जब हमारे पास डेटाबेस आ जाएगा, डेफिनेटली वी कैन हैव बेटर डिस्कशंस एंड आल्सो प्लानिंग. कहाँ पर कौन है, क्या तकलीफ है, ये सब चीज़ है. ये पहले बार हम कर रहे हैं दिल्ली NCR में, ये बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव जो है. इसके बाद हमारा प्लानिंग में है to cover the whole India. Maybe like we will have Northeast region में एक या दो कॉन्क्लेव करना पड़ेगा, या साउदर्न स्टेट में एक या दो, देन महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान मिलके ऐसे, देन इधर उड़ीसा बिहार मिलके एक, या यूपी बिहार ऐसे करके ऐसे करके हमको करना पड़ेगा to cover whole states, all states in India, whole country. तब क्या होगा, हमारे पास एक कनेक्ट भी होगा, कांटेक्ट भी होगा, then we can work in a better way. ये हमारा प्लान में है. That's we are now moving forward. I hope with the cooperation of all of you, we can move ahead and get success. Okay, please last उदाहरण जो है. महाकरुणा तथागत भगवान बुद्ध एवं सभी धर्मगुरुओं को मेरी तरफ से आपका नाम तो बोलिए पहले. नहीं सर, बोलता हूँ. मैं संगदर्शी बौद्ध विहार देवली पहाड़ी से हूँ, मैं दिल्ली से. हेलो 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 हेलो. मैं संगदर्शी बौद्ध विहार देवली पहाड़ी से हूँ. और जैसे अभी हमारे साथियों ने बताया कि हमारे बौद्ध विहारों में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, अभी मैं एक ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका. हमारा संगदर्शी बौद्ध विहार देवली पहाड़ी 1976 से 75 से हम अपना संगठन चला रहे हैं. लेकिन वो उस टाइम पे जब ज़मीन हमें अलॉट की गई थी ग्राम पंचायत के द्वारा, वो 75 बीघा ज़मीन थी. लेकिन हमारी जो सरकारें, जो भी सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की हों या है भाजपा की हों, उन्होंने हमें उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि हमारे पास ज़मीन, जो आज की डेट में जो ज़मीन है वो केवल 200 की ज़मीन रह गई. और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो स्टैचू थी वो पूरी पहाड़ी पे थी, 75 बीघा ज़मीन थी. उसको बना करके अभी 11/10/2020 को अलॉटमेंट किया केवल 50 गज ज़मीन का. ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है. और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस बारे में हमारा कोई संगठन हो तो हम उस बारे में लड़ाई लड़ सकते हैं. लेकिन हमारा कोई संगठन ही नहीं है तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे सब. तो मेरे तो आप सभी से यही गुजारिश है, इस हमारे जो बौद्ध विहार हैं उनका एक संगठन बनाया जाए ताकि हम अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बता सकें. ओके, थैंक यू सो मच. आप बोलिए, मैं बोल गया, ठीक से सुनाई नहीं पाया. क्या बोले थे नाम आपका, जो एरिया का नाम? संगदर्शी बौद्ध विहार देवली पहाड़ी सर. देवली. अच्छा, देवली. और आपका 75 बीघा जमीन दिया है कौन से साल में? ये सर 75 बीघा जमीन थी, अलॉट की गई थी हमारे ग्राम पंचायत देवली पहाड़ी द्वारा. कब है ये ईयर? ये 1965 में. 1965, ठीक है. और आज इस आम आदमी पार्टी ने उस तोड़ा भी गया था. और आज की डेट में उसको अभी अलॉटमेंट नहीं किया है. लेकिन हैंडओवर टेक ओवर की बात कल हम मंत्री साहब से ही मिले थे. उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन देते ही रहते हैं, लेकिन हम जमीन पे कुछ हमारे लिए कोई काम नहीं करते वो लोग. ओके, ठीक है, प्लीज नोट. ठीक है, हम ओके. देखिए, अभी हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए अभी मालूम हो रहा है कहाँ क्या प्रॉब्लम है. नहीं तो हमें पता नहीं होता कि आपका इतना 1965 से 75 बीघास लैंड अलॉटेड थे, इसको अभी सब लेके गया, कुछ भी कुछ हो गया है ना. डेफिनेटली वी हैव टू वर्क ऑन दिस. ठीक, हम आएंगे आपके पास कॉन्टेक्ट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट जो
हाँ यहाँ का इनको अच्छा नहीं 1 सेकंड इनके बाद आप बोलिएगा अभी बोलो हाँ प्लीज. Well, I am Dr. Arvind Kumar Yadav, Assistant Professor of Political Science in Dr. Bhimrao Ambedkar College, University of Delhi. And first of all, I would like to give thanks to the organizer who have also invited me to participate in this conclave for interaction with you all dignitaries. I have also observed and हिंदी अभी जो मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन देखा और सुना उससे यह उभर करके आ रहा है कि जो हमारा जो संस्थान है ऑर्गेनाइजेशन उसमें प्रॉपर लीडरशिप की आवश्यकता है. और आप वहाँ से स्वयं भी बोल रहे थे कि इंडिविजुअल एफर्ट से आएगा, ये बात सही है. जब तक कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं लेगा वो कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता. लेकिन इंडिविजुअल से बड़ा इंस्टीट्यूशंस होता है और इंस्टीट्यूशंस को जो शेप देता है वो लीडर होता है. तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जो भी हमारे इस ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर हैं नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर टू कंट्रोल एंड टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. दैट इज नंबर 1. उसके बाद ये लीडरशिप देखिए. उसके बाद माइनॉरिटी की बात आप सर स्वयं कर रहे थे. इंडिया में अभी भी माइनॉरिटी का सम्मान है. अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पर, संस्थागत लेवल पर यह प्रयास करिए, इंडिविजुअल से नहीं होगा. 1 लोग जाएगा, 2 लोग जाएगा, 3 लोग जाएगा, नहीं होगा. जब तक आप प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे थ्रू इंस्टीट्यूशंस विद प्रॉपर लीडरशिप, तब तक वहाँ पे आप सही स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं. उसके बाद देखिए टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म जो है बहुत सिग्निफिकेंट है. पूरी दुनिया उनको मानती है, हम लोग भी इनको मानते हैं. और मैं तो अंबेडकर थॉट्स और बुद्धिज्म पढ़ाता हूँ. मैं इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ. डॉक्टर टीएम कुमार साहब के साथ जुड़ा हूँ. मैं भी इनके साथ कई बार बौद्ध विहार में जाता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ. तो मैंने भी कुछ अनुभव ये किया है. तो ये जो आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, जो रिकॉग्नाइज है, कई जगह रिकॉग्नाइज नहीं है, पाली को हटा दिया गया, पाली को डिग्री भी दिया जा रहा है. तो फिर मैं यहाँ दोबारा आप ये एक ऑब्जर्वेशन रख रहा हूँ आपके सामने कि सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज करवाने का काम इंडिविजुअल नहीं हो सकता. ये अगेन इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी of the leader or administrator of the organization to get certified. यहाँ पर एक तगड़ा स्टेप लेने की आवश्यकता है जिससे इस बुद्धिज्म की फिलॉसफी का प्रचार होगा, प्रसार होगा, लोग उसके तरफ मुड़ेंगे. जहाँ तक मुझे लग रहा है तो यहाँ पर लीडरशिप को एफर्ट्स लेना चाहिए. उसके बाद सर कई जगह ये बता रहे हैं कि दिल्ली में 180 बौद्ध विहार होंगे. लेकिन डाउट ये भी आ रहा है कि है भी कि नहीं. कुछ बंद है, कुछ खुला है भी कि नहीं. वहाँ कितने मेंबर्स हैं, वहाँ क्या समस्याएं हैं. आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है. ये चीज़ फिर मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होगा. इंडिविजुअल केवल इन्फॉर्म करेगा. ये इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होगा कि दिल्ली में, एनसीआर में या अन्य जगहों पे जहाँ पर भी ये हमारे बुद्ध विहार हैं या बुद्धिस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए. और वो तभी पता चलेगा. इसी से जो है हमारा एक स्मार्ट फंक्शंस हो सकता है, एक प्रॉपर गवर्नेंस हो सकता है, गुड गवर्नेंस हो सकता है. और इससे एक जो है ना एक जो पारदर्शिता, सोचिता ये आ जाती है और फिर लोग उसमें बहुत ही बढ़िया से पार्टिसिपेट ये करते हैं. तो ये जो मैं एक लास्ट पॉइंट अपनी बात कर दूं,
ये सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण है सर। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कुछ बच्चे भी आते हैं और उस अर्ली एज में जब उनको शिक्षा मिलती है तो वो शिक्षा बहुत देर तक उसको प्रभावित करता है और वो जुड़ता है और वो मैसेज को फैलाता है। तो मेरे ख्याल में जो ये जो सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है बोर्ड के माध्यम से, या बोर्ड स्थापित करवाना हो या यूजीसी के द्वारा रिकग्नाइजेशन करवाना हो, तो ये वहाँ से करवाया जाए, इंडिविजुअल लेवल से नहीं हो सकता। ये केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होगा, लीडरशिप से होगा, जिससे इस धर्म को, हमारे इस धर्म को बहुत ही फायदा होगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। आप जो बोले हैं डेफिनेटली इट इज़ वेरी मच रिलेवेंट, बट एक बात ये है, आप देखिएगा, हम जो बोल रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन से होगा, इंडिविजुअल से नहीं होगा, राइट? इसका क्या अर्थ हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब तो वी आर थिंकिंग दैट कोई तो करेगा हमारे लिए, कोई तो करे। कौन करेगा? अभी आप बोल रहे हैं लीडरशिप करेगा, लीडर कहाँ पर हैं? लीडर तो हमारा अंदर से ना निकल के आएगा। दिस इज द पॉइंट। तो अभी हम लोग जब तक सोचते रहेंगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगा, कोई करेगा, तो हु विल डू दैट? तो ऐसे रह जाएगा। और ये लीडर करेगा, वो लीडर करेगा। अभी हमारे पास कहाँ लीडर हैं? हम लीडर जब बोलते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? मोस्टली तो पॉलिटिकल लीडर है ना। तो ये सब चीज़ करने के लिए हमें पॉलिटिकल पावर भी जरूरी है, पॉलिटिकल विल भी जरूरी है। तो ये सब डेफिनेटली हम लोग सब मिलके ही इसको काम करना पड़ेगा। इंडिविजुअल ऐसे नहीं बोल रहे कि इंडिविजुअल सब कुछ कर पाएगा, बट डेफिनेटली इंडिविजुअल पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। बिना इंडिविजुअल आप सोसाइटी नहीं हो सकता है। बिना इंडिविजुअल यू कैन नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स, राइट? सो लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडी का पार्ट्स हैं, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इफ डजंट वर्क as a whole, it will not function properly. That is why I'm emphasizing to have a collective effort. We all have to come together as individual, but our voice will be collective. तब संस्थान हो जाएगा, है ना? तो हम लोग इस संस्था ढूंढते रहेंगे तो मिलेगा नहीं है जब तक हम साथ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। डेफिनेटली इसका ऊपर काम करना डेफिनेटली जरूरी है, हम करेंगे। या ओके, नेक्स्ट प्लीज। सभी धम्म बंधुओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। थोड़ी सी आवाज़ मुझे लग रहा है कम है इसकी। आ रहा है। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, और मैं चाहूँगा कि आप सभी जय भीम नमो बुद्धाय एक बार जरूर। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय जी, थैंक यू सो मच। सर, मैं कोई स्पीच नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपसे कुछ मांग करूँगा, और वो मांग हमारे बुद्ध धम्म के लिए होगी। मेरा नाम मिलेंद्र गौतम है, लाइव लॉर्ड बुद्धा का अध्यक्ष और संस्थापक हूँ, और यूटीवी पोर्टल चैनल है एक, उसका एडिटर इन चीफ हूँ। शादरा में रहता हूँ, नियर बाय मेरा संगाराम बौद्ध विहार है, वहाँ से 3 बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आए हुए हैं। मेरी सबसे पहली एक आपसे दरख्वास्त है कि आप उस पर ध्यान दें प्लीज़। आपने एक बात बोली थी कि सबसे पहले बौद्ध विहार दिल्ली में कौन सा था। आज़ादी के बाद पिछले 70 साल के बाद अगर कोई बुद्ध विहार बना था तो वो चांदनी चौक में बना था। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ इस बात पे कि वो 4 मई 1955 में बना था। और हमारे लिए गौरव की बात ये है कि बाग दीवार बुद्ध विहार के नाम से उसका नाम दिया गया, और पहला राष्ट्रपति हमारे देश के माननीय पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री और कई देशों के राजदूत उसमें मूर्ति शिलान्यास में आए थे जो उस बुद्ध विहार का निर्माण किया था। आज की डेट में ये हो रहा है कि वहाँ एनडीएमसी जो है वो अपनी पार्किंग बना रही है और उस बुद्ध विहार को नष्ट करने के पूरा प्लान बना चुकी है। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुनील बौद्ध जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो पिछले कई सालों से उसकी फाइट लड़ रहे हैं। हाथापाई हो चुकी है, प्रशासन से बातचीत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, और कुछ एरिया इन्होंने तकरीबन 200 गज का एरिया जो है वो घेर लिया है, जिसमें मूर्ति आज भी रखी हुई है। फोटोग्राफ्स मैं आपको दे दूंगा। मेरा सेकंड आपसे ध्यान देने का एक बात यह है कि जितने भी बौद्ध भिक्षु हमारे दिल्ली में आते हैं, दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ, भारत की तो नहीं करूँगा मैं पूरे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे लिए, पूरे भारत में ज़रूर घूमता हूँ।
जितने भी बौद्ध भिक्षु बनते हैं क्या उनकी कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ हैं, ज़्यादातरों को हिंदी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, पाली बोलनी नहीं आती, धम्म जो है वो नहीं आता उन्हें। और वो लोग कभी भी किसी भी बुद्ध विहार में, मैं 50% से ज़्यादा बुद्ध विहारों की बात कर रहा हूँ दिल्ली की, कि वहाँ पर वंदना नहीं होती, ना सुबह ना शाम। और चीवर पहन के, जैसे अभी आपने कहा था कि एक अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक एक रैला सा निकलता है कि हम भी बौद्ध भिक्षु, तो सीजनल, राइट, तो वो सीजनल जो है वो हमारे यहाँ 12 महीने के लिए होता है। कृपया आप उस पर बाउंडेशन लगाएं, एक रोक लगाएं उस पर कि भिक्खु बनने की कोई कैटेगरी होनी चाहिए और वो चारिका करे और बुद्ध वंदना जरूर करे। सर थर्ड मेरा ये है, मेरे सर 3-4 ही सवाल होंगे, मैं स्पीच नहीं दूंगा, फिर से कह रहा हूं, आप प्लीज मेरी तरफ एक बार और ध्यान दें। मैं तीसरी बात ये कह रहा हूं कि भारत जब आजाद हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बुद्ध धम्म जो है अपना करके और हमारे भारत के लोगों को दिया, जो कि लुप्त हो चुका था। हम अपने इस प्रोग्राम की भी अगर मैं बात करूं तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का आपने एक बार जरूर नाम लिया, कि चाहे वो अम्बेडकर बुद्धिज्म वाले हों, चाहे वो और अदर्स वाले हों, पर यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कोई फोटो नहीं है और ना ही कोई पंचशील लगा हुआ है। कृपया आप इस पे ध्यान दीजिए कि हमें पंचशील जरूर लगाना चाहिए। ये मेरा अपना वो है। मेरा एक सवाल और है कि हम लोग बुद्ध विहार की बात कर रहे थे, तो बुद्ध विहार में किसी बुद्ध विहार में तो 4-4, 5-5, 6-6 बौद्ध भिक्षु हैं और किसी बुद्ध विहार में एक भी नहीं है। तो कृपया आप इसको इस तरीके से क्रमांक में लगाएं कि शायद एक बुद्ध विहार में एक बौद्ध भिक्षु हो, क्योंकि जैसे कि आपने अभी कहा कि 180 बौद्ध विहार यहाँ पर हैं हमारे, पर वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की संख्या कम है। संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि संगाराम बुद्ध विहार पे जब कोई प्रोग्राम होता है तो 200-250 के आसपास से भी ज़्यादा बौद्ध भिक्षु वहाँ पर मौजूद होते हैं उस कार्यक्रम में। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी जितनी भी बातें हैं आप इन पे ध्यान दें और कृपया इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा बेस बनाए जो हम बुद्धिज्म मानने वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जैसे कुछ संस्था चलाते हैं, है ना, कोई तो टीबी संस्था, कोई कुछ संस्था, डेफिनेटली यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सम और द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी से जो हैं उसी तरीके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्टिव विजडम यूनाइटेड वॉइस बुद्धिस्ट इशू को लेके एड्रेस करेंगे, इस मोटो से शुरू किया गया है। अभी हमारा जितना चैलेंजेस हैं, जितना प्रॉब्लम्स हैं और जो चीज़ ज़रूरी है हमें करने के लिए, ये IVC एज एन ऑर्गेनाइजेशन definitely can try, but anything to be successful we need to have collective or the united voice, सबको साथ में रहना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो बोले हैं यहाँ पर, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन एंड अराउंड दिल्ली 4 मई 1955 में इसका इस्टेब्लिश किया गया, वो हमें आज ही पता चला, पता नहीं, आई डोंट हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस। चांदनी चौक में जो यहाँ बोल रहे थे, पुराने दिल्ली पर, हमें पता नहीं है, पता नहीं था ये। मुझे किसी ने बोला है कि ये रेलवे स्टेशन, ओल्ड रेलवे स्टेशन का बाजू में वही है, उसमें मैं गया था। एक मॉन्ग है ना त्रिपुरा से करके, अच्छा हाँ, वो अच्छा, मुझे ऐसा बोला नहीं गया। वो क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन का बाजू में एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसको गवर्नमेंट ने पार्किंग प्लेस बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, हम जैसे भी करके इसको अभी मैनेज कर रहा है समहाउ टू स्टॉप इट। तो आप लोग थोड़ा जाकर देखिएगा। मुझे बोल रहे थे कि मैं तब ऑलमोस्ट मैं भी 10-15 साल का पहले का बात था ये।
मैं आके एक बार देखा भी था, छोटा सा करके उसमें ऐसे पार्किंग हो गया था, ये सब है। पर बोल रहे थे पहले तो बहुत बड़ा जाएगा थे, अभी नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। हाँ ओके, दैट इज द प्लेस। तो अभी तो बहुत छोटा है, हमने देखा है ना। हाँ अभी राइट, तो अभी अभी ऑलरेडी कार पार्किंग तो बना चुका है ये, राइट। हाँ अच्छा, ओके, सो आई डिड नॉट नो द बैकग्राउंड, है ना। अभी अभी देखते हैं, एक दिन तो जा। हाँ 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 ठीक है, अभी पता चला तो हम भी देखेंगे कि इसका आईबीसी कहाँ तो क्या कर सकता है। डेफिनेटली ये सब लोग मिलके करना पड़ेगा। जब सब लोग साथ में मिलता है ना तो एक ताकत बन जाता है। डेफिनेटली वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर। डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर समथिंग एग्रेसिव और समथिंग नेगेटिव, बट फॉर आवर ओन आइडेंटिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ओके, और क्वालिफिकेशन फॉर मंक्स जो बात कर रहे हैं, ये जो है ना क्वालिफिकेशन, मंक बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर बुद्ध का द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बुद्ध नया हिसाब से हम चलते हैं तो इसमें आपका ये एमए, बीए, बीएससी, एमकॉम, ये सब इट इज़ नॉट कमिंग इनटू पिक्चर। जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ये जरूरी है आपको, यू शुड बी इन ए sound mind, or you should be fully a human being, and you should have a sense of responsibility that you are going to lead as a monk life. ये basic requirement है। But with the changing time, and अभी जो आप बोले हैं डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल एज, इसमें जो है, इसमें कुछ कंट्रीज या कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर कुछ भिक्षु जो संगठन ने रूल किया है लोग कि भिक्षु बनने के लिए कम से कम आपको, इफ यू आर टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, ये भी मंक्स बनने के लिए इसमें हम होता है फॉर 15 days टेम्पररी मंक। बर्मा, थाईलैंड हमारा ट्रेडिशन है, जस्ट वंस इन ए लाइफ टाइम आप बन सकते हैं टेम्पररी मंकहुड। जो है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप अनपढ़ हो जो भी हो, फॉर 15 days यू कम एंड मेडिटेट बस। लेकिन अगर आप मॉन्ग बन के वर्षावास पकड़ना है, वर्षावास पकड़ के आपको मॉन्ग्स बन के रहना है, तो बेसिक आपको क्या क्लास 10 पास या ऐसे कुछ, या दमाचर्या पास ये जरूरी है करके कहीं कहीं ऐसे किया कुछ लोग ने। तो बाद में इसका भी चैलेंज हुआ, बोल रहे बुद्ध ने तो बोला नहीं ऐसे, आप कैसे कर सकता है, देन यू आर गोइंग अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध। तो उस समय वो लोग बोल रहे थे कि हमें तो बुद्ध का चैलेंज नहीं कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट टू फिट एंड गेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। अभी जो जरूरी है वही हम बोल रहे थे। आप लोग कोई भी बन सकता है मॉन्क्स फॉर 15 days, 1 month टेम्पररी के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मॉन्क्स बन के रहना है तो आपको तो कुछ जानना पड़ेगा ना, आपको क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा। आप क्या आपका ड्यूटी है, इफ यू आर नॉट एबल टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी एज अ मंक, तो यू आर नॉट फिट टू बी अ मंक और टू रिमेन ए मंक लॉन्ग टाइम। ऐसे कुछ हो रहा है। डेफिनेटली ये सब जो चीज़ हमारा अंडर के बात है, तो वी हैव टू सिट एंड वर्क। हम कैसे बोलेंगे अभी जो मंक बंदे जो बने हैं वो अनपढ़ है, उसको निकाल जाओ, हम लोग कैसे कपड़ा खोलेंगे उसका, नहीं हो सकता है। तो बात ये है कि जिसको इतना ठीक से नहीं आता है धम्म प्रवचन देने के लिए या चांटिंग करने के लिए, कम से कम तो वंदना तो आएगा, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना तो आएगा, कुछ चांटिंग तो आएगा। आने से अगर ध्यान करता है, इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमता है तो ठीक है। अगर ये सब ये सीजनल जैसे होता है तो प्रॉब्लम है डेफिनेटली, है ना, उसे नहीं होना चाहिए डेफिनेटली, वो एक बात है। और डेफिनेटली आप जो बोले हैं हमारे बुद्धिस्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बात जो है, हिज रूल, ये तो कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता है और डिसएग्री नहीं हो सकता है। हमारे इंडिया में द रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म आफ्टर डिसअपियरेंस,
By the 18th century AD, the name of Buddha had been removed from the mainland of India, बोलने से उसको रिवाइव जो नाम आया है उसमें डेफिनेटली हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम है, और उस जो कंटेम्प्ररी जो था अनागारिका धम्मपाला, दोनों नाम हमको लेना ही पड़ेगा, इम्पोर्टेंट। और जहाँ तक बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टैचू या फोटो या जो पंच बात कर रहे हैं आपने रखने के लिए, ये नहीं है कि हम नहीं रख रहे हैं, इससे बात नहीं है। ये आईबीसी जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत सारे देशों का जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, सब लोग हैं, तो ये सब बात ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। यहाँ पर हमारे गुरु पद्म संभव का भी है, और बहुत सारे ट्रेडिशन का अपना अपना गुरु होता है, तो सब लोग चाह रहे थे कि जब प्रोग्राम होगा अपना अपना गुरु का भी वहाँ फोटो लगाए, है ना। तो हाँ जी, हाँ जी, यस, हम बोल रहे हैं इसका भी, हम बोल रहे हैं इसके लिए। तो उसी में ये डिसीजन किया गया कि जब हमारा इवेंट होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के इवेंट जब होगा, वहाँ पर डेफिनेटली हम जो भी करना है धूमधाम करेंगे, फोटो लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। और जब हम गुरु पद्म संभव का प्रोग्राम करेंगे तब गुरु पद्म संभव का पूरा करेंगे। जब हिज होलीनेस दलाई लामा का प्रोग्राम करेंगे तब उनका इसको करेंगे। पर जब हमारा मेन प्रोग्राम होगा तब हमारा मेन मास्टर तो हमारा बुद्ध है ना, मेन मास्टर हमारा बुद्ध है, तो बुद्ध का स्टेचू लगा जाएगा। दिस इज द थिंग दैट वी आर now working on and we are practicing. When we have program on Dr. B.R. Ambedkar, definitely इसलिए अभी third point कल वही चर्चा होगा, we'll be definitely having all the things that you need. और ये देखिए हम भी ना महाराष्ट्र में थे, हम टोटल महाराष्ट्र और जो साइड कर्नाटका, ये तो हम वहाँ पर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो लोग हैं, जो वहाँ पर अनुयायी हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके साथ हम बहुत काफ़ी साल काम किए हैं। आई नो एवरीथिंग, क्योंकि हमारा जो हाफ ऑफ द लाइफ इज़ ऑल्सो विद देम, वहाँ पर हमने बहुत काम किए हैं। आई नो एवरीथिंग। तो जब हम सबके साथ काम करते हैं, देख के काम करना पड़ रहा है, डेफिनेटली इट इज़ नॉट टू नेग्लेक्ट एनीबॉडी बट जस्ट टू एकोमोडेट एवरीबॉडी, एंड विल बी डूइंग दैट। उसके बाद जो वन मॉन्क इन ईच बुद्ध विहार का बात जो आपने बोले हैं, ये कितना बुद्ध विहार है, कौन सा विहार में कौन रहेगा, जो चीज़ होता है, आई थिंक सपोज एक बुद्धिस्ट भिक्षु का संघ होता है, तो उन लोग डिसाइड करता है कि उनका अंदर में कितना मोनास्ट्रीज हैं, कितना बुद्ध विहार हैं, और कौन सा विहार में कौन रहेगा। लेकिन अभी आईबीसी जो है, आईबीसी इज नॉट वर्किंग विथ भिक्षु संघ और समथिंग लाइक दैट सिलेक्ट करने के लिए, कि वो एक जिम्मेदार होता है, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी तो हम शुरू किए हैं कि कितना कौन से एरिया में कितना मोनास्ट्रीज हैं, कितना विहार हैं, जस्ट जानने के लिए। वंस इट इज डन देन मे बी वी कैन वर्क विद द भिक्षु संघ इन दिल्ली एनसीआर। तो उसके बाद कहाँ कौन क्या, ये आईबीसी नहीं करेगा डेफिनेटली। IBC can coordinate or collaborate with the local organizations and vihara or monasteries to help, लेकिन अपना को करना पड़ेगा ये, तो कौन सा मोनास्ट्री में कौन रहेगा। ओके, ये वहाँ से और एक, हाँ प्लीज, अच्छा हाँ, वहाँ से कब से हाथ उठा रहे थे, कॉर्नर में प्लीज, हम आएंगे। अच्छा टी ब्रेक भी है ना। तथागत भगवान बुद्ध के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए सम्मानित सभी भिक्षु संघ, इस सभा के सेक्रेटरी साहब, सभी सम्मानित साथियों, सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रणाम। मैं देवली गांव संघदर्शी बुद्ध विहार देवली पहाड़ी से हूं, कैशियर के पद पर वहां पर कार्यरत हूं। देखिए समस्या तो सर हमारे पास बहुत सारी बुद्ध विहार हो गई। मेरा नाम है सुरेश गौतम, मैं पार्लियामेंट के अंदर
लोकसभा में काम करता हूँ, टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। समस्या तो देखिए हमारे सामने सर बहुत सारे हैं, हर बुद्ध विहारों की समस्याओं से जूझते जूझते हमें तो 40-50 साल तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी बुद्ध विहार को हम मेंटेन करके रखे हुए हैं। अभी 4.5-5 बीघे में हमारा बुद्ध विहार है अभी, जिसको हम चलाते हैं। सर बात आती है बुद्धिज़्म की और एक बुद्ध की। मैं बुद्ध के बारे में 2 शब्द रखूँगा, अपने ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हम नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध सब बोलते हैं और बुद्ध वंदना भी करते हैं बुद्ध विहार में जाकर, उपासक लोग जैसे भी हमसे बनता है। लेकिन हमने बौद्ध धर्म बना के रख दिया और बुद्धिज़्म बना के रख दिया और हम बुद्धिस्ट बन गए, लेकिन बुद्ध के साथ हम जुड़े ही नहीं अभी तक। मैं कहना नहीं चाहता कि हमारे भिक्षुगण भी बुद्ध के साथ नहीं जुड़े हुए। चीवर लिया है, हमने भी चीवर लिया था कभी एक बार और इस रास्ते से गुजरे। जिन्होंने हमें चीवर दिया था उन्हें खुद बुद्ध से नहीं जुड़े हुए थे वो, लेकिन फिर भी हमारी एक श्रद्धा थी, हमने चीवर लिया कुछ दिन के लिए और इस मार्ग पर चलने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध को हम जानने की कोशिश तो करें कम से कम। हम भगवान बुद्ध का संदेश क्या है हमारे जीवन में, हम भगवान बुद्ध को कैसे अपनाएं, क्यों अपनाएं, किस लिए अपनाएं, कोई उद्देश्य तो होना चाहिए हमारा। हमें उद्देश्य ही नहीं पता और हम नमो तस्से करे जा रहे हैं बुद्ध विहार पे जा जाके। हम भंते जी को भी नहीं समझा पा रहे कि भंते जी हमें आपसे क्या चाहिए, और भंते जी को भी नहीं पता भिक्षुकों के मैं अपने इन उपासकों को मैं क्या देना चाहता हूँ और क्या दूँ। हम बड़ी गंभीरता से मैं इस बात को कहूँगा कि हमने ना साधना सीखी ना विपश्यना सीखी, और भगवान बुद्ध का जो असली जो हमें जीवन का जो सरल और आसान और अच्छा तरीका समझाने का तरीका था वो यही था कि हम किसी तरह से, जैसे अभी आपने आनापान हमें सिखाई और हम विपश्यना सीखें, साधना करनी सीखें, आनापान सीखें और अपने जीवन को सरल और आसान बनाएं, अपने परिवार का कल्याण साधें, अपने उपासकों का कल्याण साधें, हम अपना कल्याण साधें, हम अपना सभी के स्वस्थ मुक्ति की कामना करें। वो तभी कर पाएंगे जब पहले हम अपना खुद भला करें, आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करें। समस्या तो सर चलती आई है, चलती रहेंगी, बस इतने मेरा कहना था। यही संदेश दीजिए आप भी सर कि किसी तरह से भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलें, बौद्ध धर्म को कम अपनाएं और बुद्ध को ज़्यादा अपनाएं जीवन में, तभी घर के अंदर अच्छे संस्कार पैदा होंगे और तभी हमारा आचरण सुधरेगा, तभी हमारा चरित्र भी सुधरेगा और तभी हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारे मंगल कामनाएं होती रहेंगी, अगर हमारे परिवार के भी और समाज के भी। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप देखिए अभी जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, यहाँ पर फैन भी है, लाइट भी है, वॉल भी है, चेयर भी है, टेबल भी है। दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। अभी जो हम लोग यहाँ पर हैं, जैसे बाहर आप जब निकलेंगे देखेंगे पेड़ हैं, पत्ते हैं, क्या है, सब कुछ है, राइट। कौन सा चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से चीज़ आपके लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो आप वही करेंगे। कुछ लोगों को पसंद है कि पैर का नीचे बैठ के ध्यान करने के लिए और रहने के लिए, कुछ लोगों को पसंद है कि बिल्डिंग के अंदर रहने के लिए, कुछ लोगों को पसंद है और दूसरा कोच के लिए जो है, बट दिस आर अवेलेबल एवरीवेयर। तो उसी तरह बुद्ध अपीयर्ड अराउंड 2500 ईयर्स एगो। उस समय जो टीचिंग दिया है डेफिनेटली उस समय दिया है। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है, whether we like or we don't like, whether we accept or we don't accept, whether we agree or we disagree, but that is the fact. बुद्ध ने बुद्धिज्म नहीं सिखाई है, वो तो है, लेकिन बुद्धिज्म तो हो चुका है। हाउ कैन यू नेगेट? और बुद्ध ने ये जाके बुद्ध मंदिर में चांटिंग करते रहो, नमो तस्सा बोलते रहो, ये करते रहो,
वो भी तो बुद्ध ने बोला नहीं इसे डायरेक्टली। बुद्ध कहना तो एकदम क्लियर है कि आप मुक्ति का मार्ग में चलो, जो भी करो ये आपके लिए मुक्ति के लिए एक सपोर्ट होना चाहिए। अदरवाइज आप जितना भी बात करो, जितना भी चिंतन करो, जितना भी चांटिंग करो, कुछ भी करो, इफ इट डजंट हेल्प यू फॉर freeing yourself from the kilesas or the negativities, defilements, then there is no use. ये तो बुद्ध ने बोले हैं। बट जो हुआ है अभी, इसको तो we cannot negate, we cannot disagree. We have to accept the reality. आप देखिएगा, बुद्ध ने हर इंसान के लिए, हर आदमी के लिए एक ही शिक्षा नहीं दिया है। Depending upon the state of the mind, level of the maturity, Buddha has given the teachings in different ways. Sometimes directly, sometimes with simile. Example देखिए. Sometimes only few words, sometimes with some sign language. All depend on the level of maturity. अभी आप बोल रहे हैं कि monks लोग सिर्फ नमस्कार बोल रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो बुद्ध से नहीं जोड़ रहे हैं। तो बुद्ध से जोड़ना कैसा है ना? ये तो आपका डेफिनेशन है। नमस्कार करने से बुद्ध से नहीं जुड़ता है तो आप कैसे बोलेंगे? क्योंकि लोगों के पास पहले क्या होना जरूरी है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स यू हैव टू हैव फेथ। इट इज नॉट ब्लाइंड फेथ, बट लव एंड लाइकिंग एंड रिस्पेक्ट ऑल टुगेदर बिकेम श्रद्धा। जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगा, आप हाउ विल यू कनेक्ट टू बुद्ध? तो इसीलिए जब हम चांटिंग करते हैं, कुछ लोगों के लिए जरूरी है ये चांटिंग, डिवोशन, जो प्रेयर्स जरूरी है। जब चांटिंग करता है तो मन में बहुत एक अच्छा फील आता है कि श्रद्धा जागता है बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति। और कोई कैसा है, कुछ किताब पढ़ने से बुद्ध का गुण, धम्म का गुण, संघ का गुण के ऊपर जब ये जो पढ़ता है तब एक फीलिंग आ जाता है, श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। ये इंजन का चाबी है ये। इसलिए हम नहीं बोल सकता है कि आप चांटिंग करने से, नमस्कार बोलने से ये बुद्ध फल जो है वो मिल जाएगा। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी इसमें है ना हमारा टी का भी टाइम आया। लास्ट क्वेश्चन, देन विल गो फॉर टी ब्रेक, प्लीज। भिक्षु संघ को नमन। प्रबुद्ध भाषक को सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम विजय बोध है और हंसदो इंडिया का मैं फाउंडर हूं। और पिछले 16 साल से जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी आखिरी सांस ली है, हम लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंटर है, मैं वहाँ का भी फाउंडर हूँ जो है। इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने माइनॉरिटी अभी एक शेल बनाया है, पहले शेल नहीं था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तमाम कॉलेज में जो है यूनियंस, जो हम लोगों ने माइनॉरिटी सेशन डाला है, उसमें जो सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, हम बौद्धों के उस पे समस्याओं पर बात कर रहे हैं। IBC का सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगा, और परम श्रद्धेय डॉक्टर धम्मप्रिय जी का जो सेक्रेटरी जी हैं हमारे, जो है पहले हम लोग बाई फेस नहीं हुए, हम लोग वैसे मुलाकात कर चुके हैं आपसे। जो पुनः साधुवाद आप सभी का, सौरभ भाई का जिन्होंने हमें इनवाइट किया, बंते जी का। भारत में धम्म बड़े पैमाने पर फैल रहा है, लेकिन समस्या क्या है? जापान का बुद्धिस्ट है वो बुद्धिस्ट है, श्रीलंका का बुद्धिस्ट है वो बुद्धिस्ट है, लेकिन इंडिया का जो बुद्धिस्ट है वो ST है, शेड्यूल ट्राइब्ड है, वो SC है। ऐसा क्यों है? IBC से मेरा निवेदन है कि भारत सरकार जो है गजट नोटिफिकेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रही है। मेरे 2 क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन पे ही जो है, जब बाबा साहब के मेथड के अकॉर्डिंग या दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग जो लोग बुद्धिज्म में आते हैं, उनका जो गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है, उनकी फीस इतनी ज़्यादा है, उनकी कोरस्पोंडेंस के लिए जो है प्रशासन जो है वो इधर उधर घुमाता रहता है। लास्ट में घूमकर जो है उपासक जो है भंते जी को अभी
वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ऑफिस वाले, गजट नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिकेशन डिवीजन वाले, मेरे भाई मेरे साथ टीएम कुमार जी बैठे हैं, अभरतन जी बैठे हैं, भंते अशोक घोष जी बैठे हैं, हमारे बड़े भंते जी बैठे हैं, मैं लामा जी भंते कंचाय लामा कच्चायन जी से जो है हम लोग जो है प्रॉपर संपर्क में रहते हैं। समस्या ये है कि हम लोग धर्म को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। संघ भी इस समस्या से वाकिफ है, लेकिन हम लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हर क्षेत्र में संगठन है, मैं पूरे भारत में हिंदी जितने भी हिंदी प्रदेश हैं हम लोग वहाँ पर काम करते हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि भी चाहे हमारे लामा जी हैं, हमारे लामा की कुछ हमारे जो लामा हैं उनकी समस्या ये है कि वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं। आप पंजाब में जाएंगे वो पंजाबी नहीं बोल पाएंगे, हमें उनकी जो मदर टंग में समझाना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है, जैसे हमारे बनते अशोक घोष जी हैं, लामा जोसफल जी भी हमें बूटी भाषा नहीं आती है, लेकिन लामा जी को जो हिंदी बोलने में पहले बहुत परेशानी आती थी। बनते विश्वबंधु जी के हम लोग सानिध्य में जब लामा जी के पास जाते तो अब हम लोग जो थोड़ा काम कर रहे हैं। जो है समस्या ये है कि जब तक हमारे गजट नोटिफिकेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं होगा। जो बौद्धों की समस्या उठा रहे हैं वो खुद बौद्ध नहीं है, वो बौद्ध तो हैं, अपने आप को बौद्ध तो कह रहे हैं। क्या उनके पास कोई प्रूफ है, प्रमाणिक प्रूफ है? नहीं है। सिर्फ वो बात करते हैं धर्म की, लेकिन वो जो है धर्म को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा कि छोटे भाई में बड़े भाई मिलेंद्र बोध जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग काफी दिन से चिंतित हैं, भाई सुनील बोध जी लगे हुए हैं, उससे पहले अभयरतन जी और साथी जो है हम लोग गए। ये सबसे बड़ी जो है शर्मनाक घटना है बौद्धों के लिए, जो है दिल्ली के रेलवे स्टेशन के अपोजिट जो है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के अपोजिट जो है, आप देखिए सरकार ने सुनियोजित तरीके से जो है, मैं प्रेजेंट सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूं, मैं सीधे आक्षेप लगाता हूं। जयप्रकाश जी ने जो है इसका जो एमसीडी पे बौद्ध विहार के ऊपर कब्जा करवाया था। माननीय पहले प्रधानमंत्री जो है उन्होंने जो इसका बर्मा के जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने जो है तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगाई थी। आज वो प्रतिमा जो है 6 फीट गड्ढे में है। ये हमारे लिए बड़े शर्म करने वाली घटना है। हम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी किया, हमारे महासंघ रतन जी बैठे हुए हैं, लामा जी, भंते जी, सभी लोग बैठे हुए हैं। आईबीसी एक बड़ा मंच है और इंटरनेशनल लेवल पर ये बात जो है उठा सकता है और उठाता रहा है बहुत से मुद्दों के ऊपर। जो है रही आईबीसी की बात, हंस दो इंडिया संगठन पूरे हिंदी भाषा में काम करता है और हम लोग आपके साथ जो है तन मन धन से जो है काम करने के लिए तैयार हैं। आप पंजाब में जाएंगे, पंजाब में काम करेंगे साथ, आप बिहार में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे। हरियाणा में तो मोस्टली हम लोग जो है 4 बार जो है स्टेट जो है बौद्ध सम्मेलन कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा परिणाम भी आ रहा है। समस्या यही है कि पीछे हम लोगों ने धर्मांतरण करवाया था, बनते अशोक घोष जी यहाँ पर बैठे हैं, लद्दाख बौद्ध विहार में आज तक उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं होने दिया जा रहा है। हम लोग जिस धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या हम लोग अपने बच्चों को उस धर्म में लेके आ सकते हैं विदाउट गजट नोटिफिकेशन? अगर जब तक हमारे पास गजट नोटिफिकेशन नहीं है हम लोग शुद्र अति शुद्र हैं, जो जैसे बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में कहा। जो तो मेरा आईबीसी से और परम सरदे भंते धम्प्रिय जी से निवेदन है कि ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि गजट नोटिफिकेशन में पारदर्शिता लाई जाए और आम उपासक के बीच में जो है उसकी जो मदर टंग है, मोस्टली जो है हिंदी भाषी प्रदेशों में जो हमारे हम लोग सभी जानते हैं कि जितने लोग उपासक बनते हैं वो इंग्लिश नहीं जानते हैं। हमें हिंदी भाषा में जो है या पंजाबी में जो है गजट नोटिफिकेशन की कोरस्पोंडेंस को जो ना हम लोगों को आईबीसी के माध्यम से जो है आईबीसी पहल करे और बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन लाइव लॉर्ड बुद्धा है, भंते जी हैं, अभयरतन जी हैं, हंस दो इंडिया है, बहन हैं, तो हम सब लोग जो है आईबीसी के साथ मिलकर ना बहुत बड़े प्लेटफार्म पर जो है आने वाले समय में मुझे लगता है कि मई तक जो है ना हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। आप लोगों ने आज दिल्ली में ये बड़ा काम किया, ये बहुत स्वागत योग्य है और आप लोगों को जो है मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि भी हम लोग ऐसा कर पाए और हम लोग तन मन धन से जो ना आप लोगों के साथ हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं भी एक नया हूँ इसी क्षेत्र में। जो लीगल एस्पेक्ट देखते हैं आप लोग को पता है, आई वॉज देयर विथ द पीपल
the Buddhist people in Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. तो उन लोग के साथ मैंने काम किया हूँ. I went so villages. एक्चुअली ये सब बात करना अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं है. मुझे पता है ये इन लोगों का दुख क्या है. आंध्र प्रदेश में कोई एक श्रीकाकुलम उसके बाजू में क्या एक गया था इंटीरियर प्लेस में. मैं अपना आंख से देखा. आई हैड एक्सपीरियंस दैट. तो हमारा जो बोलते हैं ना कि कौन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तो कास्ट सिस्टम नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं है, ये सब तो हम बोल रहे हैं. पर देर आप देखिएगा, आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ लाइक दैट. एक शॉप दुकान में गया मैंने देखने के लिए, इसे कुछ खरीदने के लिए. वहाँ देखा वो जो काप होता है ना, मिट्टी का जो काप ना, क्या बोलता है इसको, वो अलग सा है रखा हुआ है. हाँ, उसका ओनली फॉर दी वन पर्टिकुलर कम्युनिटी बोल रहा है ये सब चीज़ है. और उसमें कुछ बैरिकेड है, तो यहाँ तो उसको आना है, उससे उससे नहीं आना है, ऐसे करके. तो ये सब जो चीज़ हम देखे हैं, तो एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है या जो पेपर में है वो एक चीज़ है. डेफिनेटली मे बी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड देन बिग टाउन्स ये सब प्रैक्टिस नहीं होता होगा. लेकिन जो इंटीरियर प्लेस में है ये सब चीज़ तो अभी भी हो रहा है. डेफिनेटली दैट वी डू नॉट डिनाई. उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना और हमारे जो साथी जो होगा, जो भी हमारे साथ में हैं, तो एक दूसरा को एज ए ह्यूमन बीइंग एज ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब तक हम अपना बीच में, इफ वी डू नॉट ट्रीट आवर सेल्फ एज ह्यूमन बीइंग एज ह्यूमन बीइंग, देन ऑल दिस इश्यूज विल कीप ऑन गोइंग ऑन और कीप ऑन जस्ट perpetuating. So this is very important that we need to come together and create awareness, and wherever there is that kind of injustice or atrocities, definitely we have to protect the interests of those feeble and the weak section of people. ये तो definitely हमारा काम है. लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप जो बोल रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन बुद्धिस्ट जो हैं, they are treated as ST SC. ये is it part of the Indian Constitution? ना आप बोल रहे थे गैजेट नोटिफिकेशन करना है, क्या है? I'm not. दरअसल इंडिया में जो बुद्धिस्ट है वो माइनॉरिटी में आता है, लेकिन सरकार उसको जो है वो हिंदू बनाना चाहती है, वो कास्ट में लेके आना चाहती है, क्लास में लेके आना चाहती है जो. लेकिन हम लोग कास्ट से बाहर के लोग हैं, हम लोग माइनॉरिटी में आते हैं. जो हमारा जो काउंट है वो माइनॉरिटी में नहीं हो रहा है. अभयरतन जी ने काफ़ी संक्षिप्त में इस बात पे रखा है, लेकिन मैंने 2004 में दीक्षा ली थी और 2018 में जो है मेरा गजट नोटिफिकेशन हुआ. मुझे 14 साल लग गए बुद्धिस्ट बनने के लिए जो है. भंते जी ने तो मुझे 3 बार मैंने चीवर लिया है, 3 बार चीवर लेने के बाद मैंने धम को समझा अच्छे तरीके से. लेकिन सरकार ने मुझे जो है ऑन पेपर जो 14 साल लगा लिए. और ये तो मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा अभयरतन जी का कि वो अच्छा काम करे और हम लोग सारे लोग मिलकर जो ना उसको काम को आगे बढ़ा. अच्छा, अभी ओके, अंडरस्टूड. मतलब ये बुद्धिस्ट बनेगा विथ सर्टिफिकेट पेपर, ऐसे है ना आपका जो कहना है. अच्छा, ये चीज़ हमारा दिमाग में नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो साइट में है वो तो बुद्धिस्ट बन गया, मंदिर में गया, गांधी जी के पास चला गया, बुद्धंग शरण पंडित से ले लिया, तो वो ये तो बुद्धिस्ट है एंड वहाँ पे सर्टिफिकेट देना वो सब रिवाज नहीं है. वी डू नॉट नो दिस थिंग्स. हाँ, मे बी इट इज़ रिलेवेंट कि हमारा जो सिस्टम अभी है यहाँ पर कहीं कहीं ऐसे हो रहा है कि कुछ माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम करने के लिए वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ऐसा है ना. तो आपका कहना है कि जब तक ये बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट गैजेट में नहीं आएगा, राइट, गैजेट में नहीं आएगा तब तक ये एक्सेप्ट नहीं होता, ऐसे कुछ है क्या? अच्छा, लीगलाइज नहीं होता है तो गैजेट जो है कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करेगा. अभी तो किया नहीं है. हाँ, अच्छा लामा जी, मैं दरअसल
ये भारत सरकार से मैंने गजट नोटिफिकेशन करवाया अभी जो है, मुझे 14 साल लग गए इन पेपर को लेने के लिए जो है। इट विल बी गुड। ये आपका जेरोक्स कॉपी है, हमारा ऑफिस स्टाफ को दे देने से कम हमारा मैं आपको कॉपी एक रेफरेंस रहेगा। वी आर नॉट इन्फॉर्म अबाउट दिस, पता नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था आपको। अभी हम लोग जो है एक शेल भी तैयार किया है कि भी कोरस्पोंडेंस करने के लिए सरकार के साथ जो है, और मैं थैंक्स इंटरनेशनल IBC का करूँगा कि उन लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग आपके माध्यम से ना इस बात को जो ना आगे भेज सकते हैं। अच्छा, सपोज जैसे फॉर एग्जांपल है ना, त्रिपुरा फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो बोरुआ बुद्धिस्ट लोग हैं, दे आर ट्रीटेड एज माइनॉरिटी बुद्धिस्ट। लेकिन बोरुआ बोलने से नहीं होगा। क्या करता है, बोल रहे हैं कि आप बोरुआ जो बुद्धिस्ट है, ये आप कोई एक रिकॉग्नाइज बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट लेके आ जाओ, इसे बोलता है। तो क्या करता है उस समय, हमारा जो ऑल त्रिपुरा भिक्षु संघ है, उनका इसका सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हमारे अक्षरानंद बांती हैं, तो अपना लेटर पैड में लिख के देता है, सो एंड सो daughter of so and so, son of so and so is a Borua, belongs to Buddhist community. I wish him success in his her life to finish. ये एक्सेप्ट हो जाता है वहाँ पर। तो दिस इज लाइक दैट इज गोइंग ऑन। तो आप लोगों का स्टेट में जो है ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन देने से नहीं होगा एक्सेप्टेड? हाँ जी, अच्छा अच्छा ओके ना, डॉक्टर हिरोहितो प्लीज वेट कर रहे थे। हाँ प्लीज डॉक्टर हिरोहितो, आपके पास आएंगे। Actually, I just wanted to add, UP में होता क्या है, if you are a Buddhist by birth, you need to give a affidavit कि मैं जन्म से बुद्धिस्ट हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन माइनॉरिटी में किया जाए। तो उसमें क्या होगा, DM के यहाँ अप्लाई करेंगे आप, DM उसको भेजेगा माइनॉरिटी ऑफिसर को, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर अभी हर डिस्ट्रिक्ट में UP में है। जैसे मैंने अपना बनाया, आई एम बुद्धिस्ट बाय बर्थ, मैंने बनाया तो मेरे से भी उन्होंने एफिडेविट लिया। बट इन केस कन्वर्टेड बुद्धिज्म, जिनकी ये वाली पीढ़ी बुद्धिस्ट है, पिछली पीढ़ी बुद्धिस्ट नहीं थी, या कह दो कि अभी बुद्धिस्ट बने या कुछ भी XYZ, उनके लिए वो कहते हैं बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट किसी भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, जरूरी नहीं है सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है, नहीं है, एक किसी बनते के या मॉन्ग के भिक्षु के साइन होने चाहिए। बट उसका प्रोसेस बड़ा लेंथी है। और उसमें भी एक इशू होता है कि प्रोसेस इतना लेंथी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माइनॉरिटी ऑफिसर को भेजेगा, वो पार्टिकुलर SDM को भेजेगा, SDM तहसीलदार को, तहसीलदार नायब तहसीलदार को, नायब तहसीलदार कानूगो को, पटवारी को, फिर वो सेम रूटीन वापस होगा, सब जगह पैसे देगा, किसी को 100 रुपये, फिर 500, फिर 1000, 2000, तब जाके माइनॉरिटी ऑफिसर उसमें अपनी रिपोर्ट लगाएगा, DM अलाउ करेगा, माइनॉरिटी ऑफिसर इशू करेगा। तो इसको थोड़ा लेंदी प्रोसेस को कम किया जा सकता है। वेरी लेंदी प्रोसेस। अभी है ना, अभी ये समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस जो है वेरी लेंदी है, और बीच में अगर कहीं खो गया तो है ना। तो अच्छा, दिस इज वेरी न्यू टू मी एक्चुअली। तो आई थिंक you want these things to be put into some kind of formal system recognized by the government of India and given direction to all the state governments, so that ये system में जाने से it should be done something like that, right? हाँ प्लीज यहाँ पर दे दीजिएगा माइक वाला ना, एक इधर रहिए, एक उधर रहिए। नामी भंते जी और भिक्षु संघ, मेरी तरफ से सजेशन ये है कि जिस तरह से आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, हमारी जितनी भी खाता खतौनी और ज़मीन के कागजात, इवन हम लोगों का जो सेंसस है वो भी डिजिटलाइज हो रहा है। अब मैंने तो कभी सर्टिफिकेट लिया नहीं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ नहीं हूँ। हमारे परिवार में पूरी तरह से लोग बुद्धिस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं,
और हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के तहत लोगों को फॉलो कराते हैं, बट कन्वर्जन नहीं कराते। कन्वर्जन हम लोग नहीं कराते और ना कहीं सर्टिफिकेट वगैरह कुछ इस तरह का नहीं करते। इस विषय में एक समस्या आई थी, हमारे एक फ्रेंड हैं दिल्ली में ही, जब उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन करवाया तो उन्होंने धर्म के कॉलम में बुद्धिस्ट लिख दिया। अब बुद्धिस्ट लिख दिया तो प्रिंसिपल ने उनका फॉर्म जो है रिटर्न कर दिया वापस। जब वापस किया तो अब उन्होंने, वो गए स्कूल में और प्रिंसिपल से मिले, बोले कि आपने वापस क्यों किया? जब हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमें स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उसमें हम शामिल हो सकते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है? तो उन्होंने एक बात बोले कि अगर आप इसमें अगर आप कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं, जैसे माइनॉरिटी का जो फैसिलिटी है, कोई रिजर्वेशन है माइनॉरिटी के लिए या उस तरह की चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं, तो वो लेने के लिए आपको सर्टिफिकेट देना जरूरी है। तब उन्होंने ये प्रश्न रखा कि अगर हम फैसिलिटी नहीं लेना चाहते हैं तब क्या होगा? तो कह रहे हैं तब कोई बात नहीं, हम आपका नाम दर्ज कर लेते हैं। अब यहाँ बात ये आ गई है कि दोनों तरह की फैसिलिटी कोई व्यक्ति ना ले संवैधानिक तरीके से। जैसे कोई व्यक्ति अपनी जाति की फैसिलिटी, हिंदू धर्म में है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जिसमें भी है उसमें फैसिलिटी ले रहा है। अब वो जैसे ही धर्म परिवर्तन करता है, वो अब बुद्धिस्ट बन जाएगा तो वो एक माइनॉरिटी में काउंट होगा। अब माइनॉरिटी के भी फैसिलिटी लेगा, उधर की भी फैसिलिटी लेगा। मुझे लग रहा है कुछ दिस इज लीगल इशू कुछ इस तरह का हो सकता है कि मतलब मुझे लग रहा है कि जो लीगल एडवाइजर्स हैं और जो लीगल चीज़ों को जानते हैं वो लोग ज़्यादा इसको ठीक से बता पाएंगे। तो हम लोगों ने तो एक अभियान चलाया है कि जो अब सेंसस, जैसे 2021 में सेंसस होने जा रहा है, तो मैक्सिमम लोग अपने नाम और अपने परिवार के बच्चों के नाम के आगे जो सेंसस में कॉलम आएगा धर्म का, तो उसमें बुद्धिस्ट लिखें। ये मेरा एडवाइस है। उसमें भाषा जो है अपनी, अब ये एक छोटा सा सजेशन है। मतलब देखिए, मैं ये समझ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। मैं ये समझ रहा हूं कि हमारे सेक्रेटरी जनरल भंते धम्पी बैठे हुए हैं, तो जितने भी हम लोग उपासक यहाँ पे बैठे हुए हैं या भिक्षु संघ बैठा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही उम्मीद आपसे ये लोग कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र में या आपके अधिकार क्षेत्र में शायद नहीं है। मुझे ये जो समझ में आ रहा है, तो हम लोग देखिए, जो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कलेक्टिव जो एक एफर्ट्स लगाने की जो ज़रूरत है, वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग अपने धर्म के कॉलम में कहीं भी, चाहे बैंक में हम फॉर्म भरते हैं या आधार कार्ड में या कहीं भी अगर हम भर रहे हैं, तो वहाँ हम सबसे पहले तो अपना कॉलम में बुद्धिस्ट शब्द लिखना शुरू करें, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपना सबका। उसके बाद जैसे ही अब अगली पीढ़ी आएगी, जैसे मान लीजिए अगर मैं बुद्धिस्ट हूँ और मेरे कॉलम में बुद्धिस्ट लिखा हुआ है और मेरे बच्चे के कॉलम में जैसे बुद्धिस्ट आएगा, अब वो बच्चे से शायद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पूछेगा कि आप बुद्धिस्ट हैं कि नहीं है। मेरा अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा कि भाई इनके पिताजी बुद्धिस्ट थे, देन बच्चा अपने आप बुद्धिस्ट होगा। ये मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और 1-2 पीढ़ियां लगती है कल्चर को बदलने में और सिस्टम में बदलाव लाने में। भारत देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लागू नहीं है। लागू करने वाले लोगों की नीयत शायद ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नीतियां तो बहुत अच्छी हैं। तो इस विषय में हम लोग भंते जी से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की बजाय एक कलेक्टिव एक एफर्ट्स और कलेक्टिव एक फाइटिंग फोर्स तैयार करें, जिससे कि हम लोग इस पे काम कर सकें। थैंक यू भंते। थैंक यू सो मच। अभी फाइटिंग फोर्स बोल रहा है, धम्मा सेना ना क्या सेना? नहीं, इसमें हमारा फाइटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि हम टोटल ये करेंगे। हमारा ये होगा, हमारा जो
जो अधिकार है ना, राइट्स, राइट्स के लिए हम जैसे जैसे जरूर है करके इसको करना है। ओके, अभी ये टाइम हुआ है एक्चुअली फॉर टी, 3 o'clock। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आया अभी, वाई इन सम गवर्नमेंट ऑफिसेस the word Buddhism or Buddhist is not accepted because there is some kind of confusion. Confusion यही है कि one person cannot avail to different facilities from the government, है ना, ये confusion हो सकता है, इसीलिए होगा। जो बोल रहे हैं हमारे उपासक कि if you write as Buddhist, उन लोग सोचता है कि बुद्धिस्ट मतलब SC ना ST, है ना, बुद्धिस्ट मतलब SC या ST। तो अब अगर SC है तो आप SC फैसिलिटी ले लीजिए, अगर आप ST है तो ST फैसिलिटी ले लीजिए। तो आप ST फैसिलिटी भी लेंगे, SC फैसिलिटी भी लेंगे, और साथ साथ आप बुद्धिस्ट बन के माइनॉरिटी फैसिलिटी भी लेंगे, तो कैसे होगा? आप जो बोल रहे हैं ना, तो अगर आपको फैसिलिटी लेना है तो एक ले लो, नहीं लेना है तो आप यू विल बी एक्सेप्टेड। आई थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग्स माइट बी क्रिएटिंग सम कन्फ्यूजन। तो हमको उसको क्लियर करना पड़ेगा कि बुद्धिस्ट जो बुद्धिस्ट ही है, माइनॉरिटी है डेफिनेटली, है ना, वो बाकी जो है दिस इज कास्ट में आ गया, वी आर बियॉन्ड कास्ट, अबव द कास्ट, वी हैव नो कास्ट, राइट? ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, वेनरेबल कचैन बांती, प्लीज माइक। लास्ट क्वेश्चन बिफोर टी ब्रेक, देन वी कैन हैव आफ्टर टी ब्रेक। मेरा से एक क्वेश्चन नहीं है, मैं पूरा कार्यक्रम शुरुआत की है वो थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। पहला बात, एक बात कहूँगा, भिक्षु लोगों का बात ज़्यादा आ गया, एडुकेटेड और नॉन एडुकेटेड। हम देखता हूँ दो तरीका मानते लोग होते हैं, एक बाल्यकालीन बचपन से बनते श्रमणेर बनता है, और दूसरा तरीका एजेड आदमी आता है, जो बाल्यकाल से जो बनता है यो मुझे लगता है लगभग एडुकेटेड है। जैसे हमारा दमप्रिय जी, ये बचपन से बना है, हाईली एडुकेटेड है। इसी रूप से बचपन से बहुत बनते लोग हैं, हाईली एडुकेटेड है, जो एडुकेटेड बनते दिल्ली में नहीं है। एक बात तो दमप्रिय जी को हम दिल्ली में मिला है, हम बुद्ध विहार में उनको बुला के हम उनसे डायरेक्शन ले सकते हैं। तो ये शिक्षा का बारे में मैं एक शब्द दो शब्द कहना ये चाहता हूँ। मैं एक बुद्ध शासन ट्रस्ट ऑफ इंडिया नाम से एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन किया दिल्ली से। मेरा दिमाग में ये काम कर रहा था, मैं इंडिया का आने का बाद देखा है जो बनते लोग एडुकेटेड बनते चाहिए, तो बनते लोग कैसा होगा। जैसे आपका जो एडुकेटेड लड़का को मुँह बुलाने से बनते हो नहीं पाएगा, आपका नॉन एडुकेटेड लड़का लेंगे तो बनते बनने से कोई फायदा नहीं है। तो बीच में हम एक रास्ता निकलना पड़ेगा। हम बनते बनाना चाहता हो खुद उनको हमको बनाना पड़ेगा, एडुकेशन देकर बनाना पड़ेगा। ट्रस्टी बोर्ड ने ये एक प्रोजेक्ट लिया, 6 to 12 क्लास तक हम बच्चे लेके श्रमणेर बना के, तो एकेडमिक एडुकेशन हम देंगे, साथ साथ मोनेस्टिक एडुकेशन। आफ्टर 12 पास करने के बाद वो मैच्योर हो जाएगा, कॉलेज में जाने वाला है, तो उसी टाइम में हम दो ऑप्शन सामने रखेंगे, होम लाइफ, मॉन्ग लाइफ। जो होम लाइफ जाना चाहते हैं हम छोड़ देंगे, जो मॉन्ग लाइफ रहना चाहते हैं 50 आदमी से 5 आदमी रहना चाहते हैं, हम उनको हायर एडुकेटेड देंगे ऑन बुद्धिज्म। उसी हिसाब से जो हम कुछ प्रयास करें भविष्य में आने वाला 50 साल का बाद भी थोड़ा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कम से कम बुद्ध विहार, बौद्ध धर्म, बुद्ध वाणी जो थोड़ा से रक्षा होगा। ये हमारा एक प्रयास चल रहा है, लैंड के लिए अप्लाई भी किया। नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में हमारा प्रोजेक्ट है, काम चल रहा है। और दूसरा बात है, हम उसके बाद भिक्षु जो दिल्ली में बताया था, हम दिल्ली में भिक्षु संघ गठित इसलिए करना चाहता हूँ। हमारा प्रयास ये है, जितना बौद्ध सोसाइटी है बुद्ध विहार का अंडर में, और तो बुद्ध विहार सोसाइटी के अंडर बुद्ध विहार है, हम एक कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन करके जो बुद्ध विहार बनते लोग आ रहे हैं वो हम जानकारी नहीं है, एक हम कम्युनिकेशन बनाएंगे, भिक्षु संघ का जानकारी में बनते लोग रहेगा। तब तक पता चलेगा कौन असली बनते कौन नकली बनते। हम पूछेंगे, उपसंपदा सर्टिफिकेट मांगेंगे, उनके एडुकेशन हम मांगेंगे, क्यों यहाँ आना चाह रहा है, अब जो चला जा रहा है क्यों जा रहा है भाई,
जाना आना का टाइम इन्फॉर्मेशन करो भिक्षु संघ के पास, जाना का टाइम में इन्फॉर्मेशन करो, सोसाइटी और मॉन्क्स दोनों। उसी एक हमारा प्रोजेक्ट है, हम भिक्षु संघ मजबूत होंगे और उपासक सोसाइटी जो है हमसे कम्युनिकेशन होगा तो काम आसान होगा। टीएम कुमार जी ने बातें, उनका पास 7 बांधते लोग है, हम कोई जानकारी नहीं है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कौन दे रहा है, क्या खिला रहा है, क्यों रह रहा है, कोई पता नहीं क्या काम है। नहीं बनाना चाह रहा हूँ, हम प्रयास कर रहे हैं ना। तो इसी रूप से और बुद्ध विहार में ऐसा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई कुछ जानकारी नहीं है। हम सिर्फ जानते हैं कपड़ा पहन लिया बांते जी है। मैं ऐसा भी देखा है, बांते जी के ऊपर कूस आने से हम पुलिस को भी पकड़ता है, दावा करता है उनको। अच्छा, ये बात है। जो भिक्षु संघ चाहे तो दिल्ली में कौन भिक्षु कैसा एडुकेटेड है, कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है, भिक्षु है कि नहीं, ये भिक्षु संघ के अंडर में आएगा तो हम जो समस्या बात आ रहा है बहुत, ये मुझे लगता है थोड़ा ठीक हो जाएगा। दूसरा बात है, हम जो भिक्षु संघ के अंडर में है, बुद्धगया में हमारे हेडक्वार्टर है भारतीय संघ भिक्षु महासभा। महासभा का अंडर में जितना भिक्षु लोग है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड हम इशू कर रहे हैं। उनका गुरुजी का नाम, उपसंपदा नाम, ये जरूर है। उनका हम आइडेंटिटी कार्ड का माध्यम से दे रहे हैं, हम एक संस्था का जुड़ा हुआ है, हम उमुक गुरु उमुक का शिष्य है। ये आइडेंटिफिकेशन का हम चालू किया, ये हम चल रहा है। तो हम दिल्ली भिक्षु संघ में ऐसा हम कर सकते हैं। और बौद्ध परिचय पत्र, अब ये बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट जो बात आया, निब्बाना नाम से एक सामान्य, तो उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट भेजाया। क्या सर्टिफिकेट? एक यूपी का एक उपासक, वो माइनॉरिटी में आना चाहता था, वो माइनॉरिटी में वो रिक्वायरमेंट था। अब बौद्ध जो दीक्षा लिया वो सर्टिफिकेट चाहिए, तो उन्होंने आया लक्ष्मी नगर बुद्ध विहार में, लक्ष्मी नगर बुद्ध विहार का बनते एक उनके दीक्षा दे के एक सर्टिफिकेट दे दिया। वो वहाँ का जाकर ऑफिशियल जमा किया, उनका बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट मिल गया। यूपी का बात है। ये जो कानून यूपी में हो रहा है, क्यों राजस्थान में नहीं होगा, क्यों हरियाणा में नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा? यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है। उसी विषय पर हम ध्यान देंगे तो हम जो विजय बौद्ध जी ने जो बताया, इतना दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगा। और एक बात है, दिल्ली में एक गोविंदपुरी में बुद्ध विहार है। बुद्ध विहार के अंडर में एक स्कूल है, वहाँ पे एक बरुआ फैमिली से लेडी, वहाँ पे टीचिंग स्टाफ है। उनसे मुझे सुना है वहाँ पे ज़रूर धार्मिक सर्टिफिकेट देना पड़ता है एडमिशन का टाइम में। तो उन्होंने क्या करता है, जो बुद्धिस्ट है बौद्ध विहार से लेके आता है, जो दूसरा कास्ट है वो मंदिर से गुरुजी से लेके आता है, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। मतलब रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरा एक सोच है, जानकारी हो के, तो उनके लड़की का एडमिशन होना था कोई स्कूल में आर्किटेक्ट में, तो बुद्धिस्ट लिख दिया कलम में, तो सर्टिफिकेट मंगाया, सर्टिफिकेट दे नहीं पाया, वो एडमिशन नहीं हुआ, बाद में दूसरा जगह में हुआ। और एक लड़का का जानकारी मुझे मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी के लिए अप्लाई किया, बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट मांगा था, वो दे नहीं पाया, इसलिए हो नहीं पाया। हम ये सोच के भारतीय संघ भिक्षु महासभा बुद्धगया का तरफ से हम एक बौद्ध परिचय पत्र रूप से एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो माइनॉरिटी पे हम दे नहीं सकते हैं, ST/SC सर्टिफिकेट हमें दे नहीं सकता है, लेकिन जरूर ये कह सकता है जो बौद्ध है माइनॉरिटी है, मैं कह सकता है। क्योंकि 2007 साल में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स में एक प्रोस्पेक्टा निकाला, स्कॉलरशिप स्कीम निकाला था, मेरा पास अभी भी कॉपी पड़ा हुआ है। बौद्ध के लिए बहुत स्कॉलरशिप है, लेकिन कोई बौद्ध लोग स्कॉलरशिप एंजॉय नहीं कर रहा है। मैं कभी कभी जब क्या कहते हैं विज्ञान भवन में प्रोग्राम में जाता है, माइनॉरिटी कमीशन का प्रोग्राम में जाता है, मुझे बात सुन के ऐसा आता है माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम है, मुस्लिम मतलब माइनॉरिटी, ऐसा सोच आता है। क्यों? बौद्ध का तरफ से कोई दूसरा तरफ से कोई सवाल यहाँ पे नहीं उठाता है। अब कोई स्कॉलरशिप दे रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर, हम लेना नहीं चाहता है। तो इसी कारण से हम बौद्ध बन नहीं पा रहा है। हम वो स्कॉलरशिप हम ले लेंगे तो आप सर्टिफिकेट हो जाएगा ना, गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मुझे मिला बौद्ध रूप से, बिलोंग टू माइनॉरिटी। ये हम जानकारी लेंगे तो माइनॉरिटी अफेयर्स में 2007 में जो निकाला था, वो उसी में बौद्ध नाम से पहला बार आया था, मुझे लगता है माइनॉरिटी का ग्रुप में बौद्ध पहला बार। उसी टाइम में जैन लोग को नहीं था,
बाद में जॉइन लोगों ने खरबाई करके उनको नाम भी बाद में घुसाया। जो माइनॉरिटी का अंतर्गत बौद्ध है, हम बुद्ध वो लेंगे तो हम ऑटोमेटिकली बौद्ध बन जाएंगे। तब भी हम एक बौद्ध सर्टिफिकेट भारतीय भिक्षु महासंघ से दे रहे हैं। हम दो तरीके सर्टिफिकेट बनाया, फॉर्म बनाया, फॉर्म ए, फॉर्म बी। फॉर्म ए जो बाई बर्थ बुद्धिस्ट उनको दे रहे हैं, वो जो फॉर्म बी वो दो तरीके बुद्धिस्ट को दे रहा है, जो दीक्षा लेने वाला है ओके बाई मैरिज। तो बी वाला अभी तक चालू नहीं कि हम करने वाला है, लेकिन जो बौद्ध साहब ने जो बताया तो वो सर्टिफिकेट देने से यूपी खुद बताया, यूपी में जो दे रहा है तो बौद्ध संस्था से, एक रजिस्टर्ड भिक्षु संस्था से सर्टिफिकेट देना चाहिए। बौद्ध है, हमारा भक्त है, मुझे लगता है गवर्नमेंट यूँ मान्यता देगा, मुझे लगता है। तो इसी रूप से हम ये काम अभी चालू किया। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम जब मुलाकात होते हैं तो जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ, ये हम सभी कहता हो, तो कहना भी ज़रूरत भी है। तो मेरे एक सजेशन है, बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का पाद दीक्षा लिया, धर्म में दीक्षा लिया, मुझे लगता है नमो बुद्धाय जय भीम कहने से और भी अच्छा होगा, बुद्ध का सम्मान गौरव गरिमा बढ़ेगा, मुझे लगता है। मैं विनीत निवेदन है, नमो बुद्धाय जय भीम इसे हमारा आवेदन है। ऐसे भी कहने वाला है, ऐसे बात नहीं है, ऐसे कहने वाला भी है। हाँ ऐसे कहते, कोई बात नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक मिनट बोल रहा है, ठीक है। अभी ये टी ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ जी, मैं भिक्खुनी पूर्णिमा, आप सभी जानते हैं मैं महाराष्ट्र से हूँ और पहले भिक्खुनियाँ पढ़ी नहीं थी, शिलाचारा और विशाखा। शिलाचारा की लगभग 62-64 में बनी भिक्खुनी है और विशाखा, ये शिलाचारा 72 में बनी, विशाखा 64 में बनी। तो वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने, हमारे उपासक के बच्चे आते थे, उन्होंने लिखना पढ़ना सीखा। आज उन्होंने नागपुर के अंदर भिक्खुनी निवास इतना बड़ा बनाया, उन्होंने रसीदें काटना पढ़ना। ऐसी ही मैं वहाँ मराठी थी, हिंदी टूटी फूटी आती, हिंदी आती थी क्योंकि मुझे उपन्यास पढ़ने की वगैरह आदत थी। तो मेरे फादर मिलिट्री में थे तो थोड़ा हिंदी का हमारा भाव भी था। बाद में मैं पंजाब में गई, मुझे पंजाबी नहीं आती थी तो मैं वहाँ पंजाबी सीखी। बस में जाती थी, मुझे बोर्ड पूछती थी, वो लोग हिंदी नहीं समझते थे पंजाब के, तो मुझे पंजाबी पढ़ना भी सीखना पड़ा और पंजाबी बोलना भी पड़ा। तो ये अगर अपने में जुनून है और भिक्खु अनपढ़ आए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, पर धम्म की शिक्षा सीखनी और धम्म पे आचरण में लाना। आपका ये थिरोज्योति आज घूम रहा है, वो पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल नहीं गया था। मैं उस बुद्ध विहार में रहती थी, ये छोटा था, मेरा आना जाना लगातार था। उसको मैंने पढ़ना लिखना सिखाया, बाद में उसने ट्यूशन लिया। मैंने कहा भैया अपना शोषण होता, वो बाद में मेरा शोषण करने लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग धम्म को धम्म की तरह समझे, विपස්සना करे और विपස්සना के साथ साथ मिलेंद्र ने कहा वंदना होनी चाहिए, मैं भी ये विश्वास करती हूँ, क्योंकि हम भिक्खु का काम है वंदना करना। बुद्ध विहार में नहीं तो कम से कम लाउड स्पीकर लगाकर कुछ वंदना जनता तक जाए। जब मुल्ला वज़ान देता है, हिंदुओं की आरतियाँ चलती हैं, तो हमारे विहारों में भी बुद्ध वंदना होनी चाहिए। और बौद्ध बनना स्वार्थ के लिए नहीं, अगर हमें लालच के लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि हम माइनॉरिटी में आए, शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा हो गए और इसीलिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, जहाँ है वही लालच में रहे। यहाँ बौद्ध बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर जगह त्याग, बुद्ध के धम्म में त्याग है और त्याग के साथ आए। यहाँ बुद्ध के धम्म में बहुत सारा मिलता है, इसीलिए मैं इसी के साथ मैं विराम देती हूँ। संघ बैठा है, संघ के लिए वंदन। आज की कॉन्फ्रेंस के लिए मैं बुना इनवाइट हुए, व्हाट्सएप में देख कर आई, तो इसीलिए मैं उपासकों का भी धन्यवाद देती जिन्होंने भेजा है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। ओके, जय भीम। अच्छा, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट इसीलिए ज़रूरी है, लालच से बात नहीं है। जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरी है हमको करना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है हमारा। त्याग डेफिनेटली हम त्याग कर सकता है, लेकिन त्याग का भी एक लिमिट है जो हम, क्योंकि हम लोग बुद्ध जैसा बोधिसत्व तो नहीं है ना कि टोटल त्याग कर दें। अगर हम टोटल त्याग कर सकते हैं तो सब लोग आज भिक्षु नहीं बांधते हैं यहाँ पर।
तो जो सर्टिफिकेट हमारा एज बुद्धिस्ट या माइनॉरिटी वगैरह जो है, डेफिनेटली इसका अपना रीज़न है. Just before I hand over to the MC for announcement, एक just from my side, there is an information. जैसे हमारे बंटी जी बोल रहे हैं ना अभी कि कुछ प्रोजेक्ट हैं जो क्लास कितना 6 से 12 तक कुछ बॉयज़ लोगों को ये शिक्षा देने के लिए, उसके बाद आफ्टर क्लास 12 आप या ये भिक्षु लाइन में होने से आप दिया जाएगा भिक्षु लाइन का ट्रेनिंग, नहीं तो आप यू कैन गो टू अदर स्ट्रीम. ऐसे हैं. हाँ, राइट. हाँ, वो एक सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है. तो उस हिसाब से और एक प्रोजेक्ट आर्या संघा प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट जिसने ये इसका प्रपोज किया है, वो आप लोगों को मालूम हुआ लग रहा है. बोध गया में जो एनुअल इंटरनेशनल त्रिपिटका चांटिंग होता है ना, हाँ, बोध गया में जो दिसंबर में, उनका जो मेन हमारे स्पॉन्सर या ऑर्गेनाइजर हैं वाग्मो दीक्षी है ना. वाग्मो दीक्षी का एक प्रोजेक्ट है कि कम से कम इंडिया से 100 सामनीरस या मॉन्क्स, यंग होना होगा बोल रहे थे कि 100 इसको फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स लोगों को हम भेजेंगे उधर म्यांमार, थाईलैंड और ये श्रीलंका जहाँ पर भी ज़रूरी है, भेज के इन लोगों को वहाँ पर बुद्धिज़्म के ऊपर ट्रेनिंग करवाएंगे, टीचिंग करवाएंगे. ये प्रोजेक्ट होगा फॉर 5 years. एवरी ईयर इनको लाया जाएगा अपना स्टेट में या अपना विलेज में जो भी होगा और उसको वहाँ भेजा जाएगा. टोटल एक्सपेंडिचर ये वाग्मोदिशी का जो फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बियर करेगा. लेकिन हमको बोलें कि आप अच्छा वाला जो मॉन्क्स बांध के रहेगा है ना, जो मॉन्क्स बांध के रहेगा वैसे हमको दीजिए बोल रहे थे. तो बात ये कि अभी मॉन्क्स बांध के रहेगा, हम गारंटी कैसे देंगे? वही प्रॉब्लम हो गया ना हमारा. तो अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई, हाँ, अगर आप लोग के पास ऐसे कोई लड़का है जो मॉन्क बन के रहेगा, ऐसे होने से कम से गारंटी दे के आप लोग बेच सकते हैं. ये आर्या संघा प्रोजेक्ट फॉर 100 मॉन्क्स प्रोजेक्ट है हमारे वो वाग्मोदिशी के पास. ओके, नाउ ओवर टू एमसी प्लीज फॉर अनाउंसमेंट जो भी है. Well, thank you. With that, we'll now break for tea for half an hour, and let's try and reassemble by 4 o'clock because it's a half an hour tea break from 3:30 to 4 o'clock. And we have the tea arrangement in the garden, जो बाहर जहाँ पर सभी ने खाना खाया था वहाँ पर है, और अरेंजमेंट और इस हॉल के बाहर भी है. मैं क्लियर करूँगी कि संघा मेंबर्स के लिए जो है गार्डन में है और बाकी सब जो डेलीगेट्स हैं उनके लिए इस रूम के बाहर ही है. तो आइए प्लीज़ हमें एक कप चाय के लिए ज्वाइन करिए और 4 बजे हम वापस आके इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.
वेलकम बैक। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सभी डेलीगेट्स से कि वो अब दोबारा से जल्दी सेटल हो जाएं और एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने फ़ोन्स को साइलेंट मोड पे कर दें और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है तो प्लीज़ उसे इस हॉल से बाहर अगर ले सकते हैं तो प्लीज़ उसे बाहर लें बिकॉज़ बाकी सब लोग जो हैं डिस्टर्ब होते हैं। तो प्लीज़ अपने फ़ोन्स को साइलेंट मोड पे याद से कर दें। और इसी के साथ मैं दोबारा से वेनरेबल डॉक्टर धामापिया सेक्रेटरी जनरल आईबीसी को स्टेज पे इनवाइट करूंगी और उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो डिस्कशन को कंटिन्यू करें जहां पर हमने उसे छोड़ा था चाय से पहले। आई होप सब ने अपनी अपनी चाय ली है और ज़्यादा रिफ़्रेश्ड फील कर रहे हैं। तो आइए हम डिस्कशन को आगे ले जाते हैं और उसके बाद हम आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। बट उससे पहले डिस्कशन के लिए आई विल हैंड इट ओवर टू वेनरेबल डॉक्टर धामापिया। Okay, I welcome you back once again to this hall. अभी जो हैं ये सेकेंड पोस्ट लॉन्च सेशन issues and challenges before the Sangha members and Buddhist communities, इसका ऊपर बहुत सारी चर्चा हुआ है and we got to know so many things which otherwise we were not informed. इसीलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। मे बी 1 or 2 क्वेश्चंस हो सकता है उसका बारे में। ये तो चैलेंजेस तो हमको सबको पता हो गया अभी क्या एकदम देयर आर लाइक हंड्रेड्स माउंटेन्स ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस बात करने से अच्छा हाँ पता है नहीं वो इसका नाम है इग्नोरेंस, अविद्या अविद्या पच्चय संखारा। ओके, मॉर्निंग का जो टॉपिक था ये भी इम्पोर्टेंट था। आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑन मॉर्निंग टॉपिक लिटिल बिट एज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, क्योंकि जो हमारे एंशियंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं, कोई हमारे उपासक ने बोले थे कि बहुत सारे हमारे एंशियंट हिस्टोरिकल साइट्स अभी बुद्धिस्ट नहीं रह गया, ये कुछ हो गया। क्या हो गया पता नहीं, यू पीपल नो बेटर, राइट। तो एज पर आवर रिकॉर्ड द ग्रेट एम्पायर अशोका हैज बिल्ट 84,000 of different kinds of worship places, pagodas, aramas, viharas, or some other things. अब देखिएगा 84,000 मतलब spread over the Jambudvipa और Indian subcontinent. तो इसका कुछ जो प्लेसेस हैं हमको अशोका रॉक एडिक्ट से प्रूफ मिलता है और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जो अशोका नहीं किया होगा, लेकिन बाद में लेटर ऑन द जनरेशंस उन लोग ने ये डेवलप किया है इन द फॉर्म ऑफ केव्स। जैसे हमारा वेल नोन केव्स हैं अजंता केव्स, इलोरा केव्स, कैनेरी केव्स, एलिफेंटा केव्स और बहुत सारे केव्स हैं जो महाराष्ट्र में हैं और दूसरा स्टेट में भी हैं। और इसी तरह अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, अभी तो हो गया है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश या अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में भी बहुत हिस्टोरिकल साइट्स हैं, बिग स्टूपास, रूइन स्टूपास, बहुत लाइक सांची स्टूपा जैसे मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है, ऑलमोस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ बिग स्टूपास। वन ऑफ द फेमस वन इज अमरावती स्टूपा, है ना।
अमरावती स्तूपा जो है, अमरावती स्तूपा का जैसे वहाँ पर भी और बहुत सारे स्तूपास हैं, वेरी वेरी बिग एंड रूइन कंडीशन। तो उस हिसाब से अभी हमारा एक जिम्मेदारी ये है और डिस्कशन में ये है कि ये दिल्ली एनसीआर आजू बाजू में कितना ऐसे हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स मॉन्यूमेंट्स है जो एक्सकावेट हो चुका है, वो प्रोटेक्टेड नहीं है या प्रोटेक्टेड हैं, और कितना साइट्स हैं जो अभी तक एक्सकावेट नहीं किया। जैसे सुबह प्रोफेसर पी.एल. धर, प्रोफेसर धर ने जो दिखाया उसमें, because I was sitting here, I could not hear properly. I found very interesting. तो इसमें आप लोगों का जो नॉलेज है आप थोड़ा बताइएगा। एक तो इसी में है जो सतिपत्थना सुत्ता जहाँ पर बुद्ध ने दिया, तो वही एक प्लेस इन एंड अराउंड दिल्ली इसे कहा जाता है। उसका नाम क्या नाम है? अभी कहाँ, कितना दूर है यहाँ से? अशोका रॉक। हाँ, कालकाजी टेम्पल। अच्छा, अभी जो यहाँ पर आस्था कुंज का बात हो रहा है वही है क्या? आस्था कुंज इसी के पास ना, वही है? अच्छा ठीक है, एक तो हो गया आस्था कुंज। नहीं, ये आस्था कुंज ना क्या पता नहीं, एज पर पाली सोर्स ये कहाँ दिया गया ये सतिपत्थना सुत्ता? हाँ हाँ, अच्छा बंदे जी, हाँ जी, ये हम लोग जैसे दिल्ली बाईपास से बाहर निकलते हैं, सिंगू बॉर्डर आता है, सिंगू बॉर्डर से आगे जो हम लोग सोनीपत में टच करते हैं, और मुरथल और बहालगढ़ के बीच में जो है कमासपुर है। सतीपठान सूत जो है तथागत बुद्ध ने वहां पर दिया था, और धरसर ने जो है कमाशपुर असंध में जिसकी बातचीत की थी, जो है जिसको जरासंध का किला बोलते थे, वो 93 में हमारे ग्रुप्स ने जो उस पर काम किया डॉक्टर लाल सिंह जी के माध्यम से जो है, और अभी तक जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्रोचमेंट हो चुका है जो है। अच्छा, अभी जो बोल रहे हैं आस्था कुंज वो अलग है, आप जो बोल रहे हैं अलग है? आस्था कुंज अलग है, सतीपठान सूत अलग है। हाँ वही है ना, आस्था कुंज दिल्ली में है, यस, सतीपठान सूत हरियाणा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट उसी में हाँ, है ना। जी, तो जी, मैं भी एक बार गया था, इसलिए मैं पूछ रहा था कि सतीपत्थना सूत्ता जो है इन ए स्पेसिफिक प्लेस था। जी, जी, और जी। यहाँ पर जो अशोकन रॉक एडिक्ट, इसमें क्या लिखा है? इसका व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रॉक एडिक्ट? हाँ माइक, जो आस्था कुंज में जो रॉक एडिक्ट हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फिर से सभी को बंदामी, हमारे भिक्षु संघ को। वहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 1962 में उसका एक्सकवेशन हुआ था, उसको फाइंड आउट किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और उसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक जो महान थे, उन्होंने ये लिखवाया वहाँ की धम्म और संघ के शरण में आने के बाद हमने प्रयास किया कि जो देवता और आम जनमानस है वो दोनों के बीच में कड़ी बने और सभी लोग एक साथ धम्म का लाभ उठाएं। इस तरह की बातें कुछ लिखी हुई हैं। चीज़ें ज़्यादातर मिट चुकी हैं, और वहाँ हम लोग पिछले 12 सालों से कार्यक्रम करते हैं धम्म विजय दिवस के दिन, और वहाँ से एक जुलूस भी 2 साल से हम लोग जुलूस भी निकालना शुरू किए हैं विजयदशमी के दिन, और वहाँ हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और वो अपना उसका प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। पहले आज से करीब 20 साल पहले वहाँ पे बाउंड्री वगैरह ठीक नहीं थी,
और कूड़ा वगैरह अंदर ही फेंकते थे लोग। फिर बाद में मोहम्मद के जब यहाँ पोस्टिंग आए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट थे, तो उनको हमने एप्लीकेशन दिया और फिर उन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिल करके उसकी सुंदरीकरण और बाउंड्री का काम कराया। लेकिन वहाँ का जो रख रखाव है, मुझे लगता है कि किसी अब जैसे भारत सरकार ने कई जगहों का रख रखाव ऑर्गेनाइजेशंस को देना शुरू किया है, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उस तरह से अगर हम लोगों को अगर वो जगह मिल जाए तो ज़्यादा ठीक से हो सकता है। क्योंकि एक आदमी की ड्यूटी होती है जो बहुत कमज़ोर है, शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है, और वो आदमी उन लोगों को भगा नहीं सकता। उसी में आकर के वहाँ पे लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और बहुत सारे गलत काम करते हैं वो लोग, और उनके साथ अगर वो व्यक्ति झगड़ा करता है तो वो मारपीट हो सकती है, उसके लिए भी खतरा हो सकता है। उसके ठीक सामने कूड़ा फेंका जाता है, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक लेटर बना करके अगर हम लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन आपके माध्यम से अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे कि वहाँ का कूड़ा रखने वाली जो जगह है उसको ट्रांसफ़र किया जाए कहीं और थोड़ा साफ सफाई रहे। बाहर विदेशी गाड़ियाँ बहुत सारी आती हैं, पर्यटक, मैंने हर साल धम्म विजय दिवस के दिन श्रीलंका के बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ओके, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग इसका पहल हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका अगर सहयोग मिल जाए, आपके माध्यम से अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जाएगा तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा उसका इम्पैक्ट अधिक बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आप जो बोल रहे हैं अबाउट दिस आस्ट्राकोन जो है ना, रॉक एडिक्ट है ना, तो इसका जो बैकग्राउंड है, आई डू नॉट हैव मच डिटेल्स, लेकिन जो चीज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अंदर में है, ये लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देता जो प्रोटेक्शन के लिए जो है, इट विल बी रिमेन्ड विथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ओनली, ASI। तो अभी जो है, आई थिंक इट इज़ विथ सम अदर अथॉरिटी, वो किसके पास है क्या है देख लेना पड़ेगा। और इसका आपका कहना यह है कि इसमें ठीक से देखभाल करने वाला नहीं है और इसे गंदगी पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ हैं। ओके, दैट विल सी, ये क्या कर सकता है उसका हम देख लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट जो बात बोले हैं ना, सती पतनस्पुत जहाँ पे दिया है उसका कंडीशन क्या है अभी? वहाँ पर कुछ रॉक एडिक्ट है ना, क्या है? जी विपස්සना सेंटर के उसी एरिया में बना है ना? जी विपස්සना सेंटर उसी एरिया के आसपास है, और वो दरअसल चिन्हित अभी जो है वहाँ हमारे जो क्या बोलते हैं गोयनका जी ने जो है वहाँ पर जो है वो बनाया हुआ है। जो अच्छा, गोयनका जी सेंटर जो है ये सतीपत थाना का जो अभी आप बोल रहे हैं, जी उसी प्रीमिसेस में है, उसी अंडर में ही है। जी जी, अच्छा ठीक है। वहाँ पर कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे का कोई इसमें कुछ नहीं है? नहीं, अभी नहीं है वहाँ। तो देन हाउ डू वी नो? ऐसे होने से ये अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे या कोई ऑथेंटिकेटेड कोई इसमें प्रूफ नहीं है तो हमको कैसे मालूम होगा कि ये जो प्लेस है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सतीपतन सूत्र दिया है वो ऐसे आएगा? रामा जी वो वर्ल्ड फेमस है, लिटरेरी रिसोर्स और आइडेंटिफाई ये स्पॉट करके ये हु हैज आइडेंटिफाई दिस इज द स्पॉट। जी जी, ऐसी हरियाणा में बहुत सारी जगह हैं। हाँ जी, जिसमें आप लोग जो है टीम बना के चाहेंगे तो हम लोग आपको विजिट करवाएंगे पूरे हरियाणा में। अच्छा वही है। और हरियाणा में बोले थे नियर न्यू दिल्ली बहुत कुछ बोले थे, कुरुक्षेत्र इसमें है ना? कुरुक्षेत्र में जो है जहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास में जो 2270 साल पुराना एक बौद्ध स्तूप है, जिसकी 97 में हम लोगों ने वहाँ से धम्म यात्रा शुरू की थी। जो है डॉक्टर लाल सिंह ने डॉक्टर हांडा के थ्रू जो है हरियाणा के जो है ASI के जो प्रेसिडेंट थे हरियाणा के जो है उनके थ्रू मार्फत वो काम हुआ है, लेकिन वो जगह बहुत कम है। सबसे बड़ी बात है वो जगह जो है वहाँ पर कम से कम अगर हम लोग माने 50 किले या 200 बीघे जो है वो इतनी जगह थी, लेकिन उसके अंदर जो उसकी खुदाई करके जो है
वो ब्रह्म सरोवर बना दिया गया है। और वो ब्रह्म सरोवर जो है आज के वो वर्ल्ड विख्यात है। कुरुक्षेत्र में जो है वो खट्टर साहब ने जो किया था प्रोग्राम, जो गीता जयंती महोत्सव जो वो वहीं होता है हर साल। जो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म सरोवर सरोवर ब्रह्म सरोवर जो है ब्रह्म सरोवर, और वहां पर से वहां तथागत बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं मिली थी। ऐसे ही हरियाणा दिल्ली में सॉरी जो है जहाँ से हम लोग आते हैं नरेला से जो है, नरेला में एक जगह है एमएल पवार पब्लिक एमएल स्कूल जो है, उसको एमएल स्कूल बोलते हैं। उसके साथ में जो है बहुत सारी जगह है, उसको खड्डे के रूप में, जैसे हमारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो चुका है, वहां से तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं जो डिस्ट्रॉय की जा चुकी हैं। और वहां पर जो है अब बाकायदा डीडीए का कब्जा है। जो है हम लोग उसको कह भी नहीं सकते भाई वो हमारी जगह है। लेकिन जो पुराने जो लोग हैं, जिन लोगों से हम लोग जिनके साथ धाम में काम करते हैं, वो पुराने बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई यहाँ रात में खुदाई हुई थी और बहुत सारी प्रतिमाएं जो है ना वो तोड़ी गई थी बुलडोजर वगैरह दूसरे तरीके से जो है। तो उसके ऊपर जो है ये हमें लगता है कि हम सब लोगों जो है अगर हम लोग चेन के रूप में काम करें तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो ठीक है जी, तो इसका मतलब वही है, हमें जैसे हमारा प्लान है टू फॉर्म ए वर्किंग ग्रुप ऑन दिस थीम। तो वर्किंग ग्रुप इसका ऊपर काम करना होगा कि कहाँ कहाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर में ये ऑलरेडी एक्सकावेटेड हुआ है और एक्सकावेट नहीं हुआ वो वाला भी है, और जो आप बोल रहे थे जैसे पहले थे और अभी नहीं है ऐसे वाला सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि इसका प्रोसेस में हमारा ये हो रहे थे कि फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड जो होगा रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन जो अभी एग्जिस्टिंग है उसका रेस्टोरेशन हो पाएगा, लेकिन जिसको टूटा गया और ख़त्म कर दिया उसको क्या करेंगे। कम से कम गवर्नमेंट से बात करना होगा कि यहाँ पर कुछ थे पहले, उसका अगर प्रूफ दिखा देने से आई थिंक वी कैन स्टिल क्लेम और वर्क ऑन दैट, दैट इज सी। और गुड़गांव और गाजियाबाद में कुछ बोल रहे थे ना, कुछ है इसे गाजियाबाद ना कुछ बोल रहे थे क्या उस मॉर्निंग में प्रोफेसर धर ने? Anybody knows anything in गाजियाबाद? जी फरीदाबाद जो है पता नहीं, मैं मुझे सुनाई दिया फरीदाबाद में है टोपरा फरीदाबाद जी। आप अच्छा ओके, आई हर्ड रॉन्ग। फरीदाबाद बात सुना है ना, मैं पलवल, रोहतक, हिसार। हाँ। हिसार वाले में तो एक्रोचमेंट हो चुका है। जो है महाराजा अग्रसेन महासभा ने जो है वहां पर मंदिर बना दिया है और अग्रसेन ट्रस्ट बना के जो है बाकायदा जो उस बौद्ध विहार को बहुत सुव्यवस्थित तरीके से तोड़ा जा रहा है। फरीदाबाद। अच्छा, एनी वॉलंटियर कैन यू ब्रिंग वन पेन? एक्चुअली आई लेफ्ट माय पेन देयर। फरीदाबाद ओके, मतलब डॉक्टर लाभ। ओके, फरीदाबाद में बहुत कोच है ना। फरीदाबाद में लामाजी डॉक्टर लाल सिंह जी रहते हैं। डॉक्टर लाल सिंह जी हाँ, उन्होंने एक बुक लिखी है बुद्ध भूमि हरियाणा जो है। हाँ जी, उससे पहले बुद्ध भूमि हरियाणा से पहले जो है हम सब लोगों ने जो है मिलके जो उस पर काम किया था, उसके बाद जो है वो किताब आई थी जो है। ओके, वेरी गुड। उसके बाद प्रोफेसर धर ने डिस्कस किए थे कि पंजाब में भी कुछ हैं। पंजाब में है? अच्छा, वो बोल लेते हैं ना पंजाब एंड हरियाणा इज एक्सटेंडेड एनसीआर है क्या? अच्छा अच्छा, होशियारपुर में भी है लमाजी और लुधियाना में भी जो है अभी जो है एक बौद्ध विहार बना है। जो है लुधियाना से जो है 10 किलोमीटर आगे जो है सम्राट अशोक जयंती थी, वो टॉक के लिए बुलाया था मुझे, तब मैं वहां पर गया था जो है। हाँ जी। अच्छा, अच्छा, ये वेयर इज माइक? पिछला 2 साल पहले हम राजस्थान में एक त्रिपेटा चांटिंग का प्रोग्राम के लिए कोशिश किया था, कोई कारण से हो नहीं पाया। तो वहाँ का वो प्रोग्राम इसलिए था, वहाँ पे एक स्थल है जहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ये है, बस जानकारी ये है,
अशोक ने कभी कभी वहाँ जाके रेस्ट करता था, मेडिटेशन करता था, वो थोड़ा हाईलाइट करने का एक लक्ष्य थे। और एक वहाँ पे बुद्ध विहार गवर्नमेंट का माध्यम से कोई लैंड कलेक्शन करके तो त्रिपिटक शांति का एक प्रोग्राम रखा था, कोई कारण से हो नहीं पाया। तो जिसका साथ वो कम्युनिकेशन होता है, मैं वो वहाँ रहते हैं, क्या कहता है वहाँ पे कैपिटल सिटी जो है ना, जयपुर में रहते हैं। मैं आपको उनको साथ आप कम्युनिकेशन कर देने से आप पता चलेगा वहाँ पर अशोक का क्या है। ओके अच्छा, ये हमारा टाइम भी हो रहा है, अनदर 10-15 मिनट्स वी कैन टेक। तो इसमें हमारा लामाजुत्पा जी का, वेनरेबल लामाजुत्पा जी का 3 पॉइंट थे, हमने चर्चा नहीं किया। नहीं तो लामा जी बंदे जी ये सोचेगा कि हमारा टॉपिक है और चर्चा नहीं किया, कैसे होगा, है ना। तो चर्चा करना पड़ेगा, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 3 पॉइंट जो दिया है वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले टॉपिक था शिक्षा, है ना, एजुकेशन, और दूसरा था व्यवस्था, है क्या, मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट। और तीसरा आपने बोले कि ये क्या, ये नेतृत्व बोले ना, नीति बोला ना, कि ये लीडिंग कुछ बोल रहे थे, लीडरशिप। ओके, ठीक है। हाँ, अब इनका कहना है कि हम डायरेक्टली डिफर नहीं करने से भी जितना हम लोग डिस्कस किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज इंक्लूडेड, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज इंक्लूडेड। तो शिक्षा जो है, अभी एजुकेशन, आपका कहना है कि ये एजुकेशन जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन, है ना, बुद्धिस्ट एजुकेशन, ये इसको देना होगा कि इसको नहीं मिल रहा है। प्लीज एजुकेशन जो है, हाँ जी, हाँ ऑन है। एजुकेशन बुद्धिस्ट कम्युनिटी सभी के लिए जरूरी है, संघा और लेमैन दोनों को। संघा को एजुकेशन ना होने के कारण इधर चर्चा बहुत हो रहा है, जैसे बनते ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन ना होने के कारण तो जो भिक्षु यानी बनते का थोड़ा चिवर पहना, थोड़ा बहुत व्यवस्था में इधर उधर गया, इस ढंग से होता है। तो इसलिए बेसिक एजुकेशन के साथ अगर बनते बनेगा वो सारा नहीं होगा। खासकर जो लेमैन है, जो हमारे जो अनुयायी लोग हैं, उनको भी शिक्षा का दिखे ना। अपना आप तो हर वॉलंटियर रूम में कहीं जाके शिक्षा लेते हैं, लेकिन दिल्ली में सार्वजनिक रूप से लोगों को यानी शिक्षा यानी ट्रेनिंग सेंटर ऐसा कोई नहीं है। ये सारा व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो इसलिए जितना हमारा ये जो सामने हमने चुनौतियां हैं उसको सुलझाने के लिए एक लीडरशिप का जरूरी है, एक के अंदर नहीं आता है। ये लीडरशिप के रूप में ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जरूर कर सकते हैं। ऐसा एक संस्था हो तब सबको एक कोऑर्डिनेट के रूप में कोऑर्डिनेट की कमेटी बनेगा, उसके साथ सबको जोड़ेगा, जितना संस्था है, जितना यानी लोग है, सब उसी के माध्यम से एकजुट होगा तो ये सारा समस्या को सुलझा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ आइडिया इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर। मतलब इनका कहना यह है कि दिल्ली एनसीआर, मेनली इन दिल्ली के अंदर में ऐसे एक सेंटर होना चाहिए जहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा भी रहेगा फॉर मॉन्क्स एज वेल एज ले पीपल, है ना। और इसमें मॉन्क्स लोगों का मोनास्टिक ट्रेनिंग के लिए भी अरेंजमेंट रहेगा, व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट रहेगा। तो अभी जो बात हो रहा है, बांती लोगों को ये नहीं आता, वो नहीं आता, तब यहाँ आके ट्रेनिंग देने से, ट्रेनिंग लेने से, तब जो भी आप हमारे जो भिक्षुनी पूर्णिमा जी ने जो बोल रहे थे कि ये बात नहीं है कि कोई शिक्षित है या अशिक्षित है, बात ये है कि अगर अपने पास झील है क्या नहीं है, व्हील है क्या नहीं है ना। अगर कोई अनपढ़ भी है, कुछ सिखा भी नहीं, कम से कम अगर व्हील है, इच्छा है, तो कम से कम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना और जो बेसिक चीज़ है वो तो सीख सकता है, ये बोल रहे थे। डेफिनेटली
ये इम्पोर्टेंट है। ये मॉन्क्स लोगों का ट्रेनिंग सेंटर इन दिल्ली एनसीआर इसी अंदर में एक होने का, और इट शुड बी हैविंग अरेंजमेंट बोथ फॉर ले पर्सन एज वेल एज फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, ये है ना, भिक्षुनी संघ भिक्षु संघ के लिए भी ये होना चाहिए। और इसीलिए क्या जरूरी है, आपने एकदम पॉइंट वाइज लाया इसमें, इसके लिए क्या जरूरी है, पैसा जरूरी है ना। कुछ करने के लिए हमारा पैसा तो मेन है अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ बनेगा नहीं है। तो पैसा अगर जरूरी है तो पैसा कौन लाएगा, बात ये आ रहा है। तो इसीलिए अभी आ रहा है इसमें द रोल ऑफ लीडरशिप। एक ऐसे लीडर जरूरी है जो इसको हमारा जो विजन है, जो ड्रीम है, जो प्रोजेक्ट है दिल्ली एनसीआर में, इसको मैटेरियलाइज कर सके। वही ना आपके बात। अभी आप बोलिएगा ना इसमें पैसा वाला लीडरशिप, लीडर कौन निकलेगा, हम ढूंढना पड़ेगा तो हमको, है ना। ओके, सजेशन ये आ रहा है, ये इंडिविजुअल लीडरशिप से नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर संस्था ऐसे एक हो, मजबूत हो, तो ये प्रोजेक्ट हो सकता है। वेरी गुड सजेशन। तो इसमें आई अंडरस्टैंड ये हमारा जो है ना नोट जो कर रहा है, काइंडली नोट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई पर्सनली फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिल्ली एनसीआर के अंदर में हमारा एक बुद्धिस्ट सेंटर ऐसे होना चाहिए, दैट शुड बी ए ट्रेनिंग सेंटर फॉर मोनास्टिक्स, monks and nuns, an education center for monks and nuns, and also training and education center for children, boys, girls, as well as laymen and laywomen, with all the facilities, residential, with all the facilities, good library, है ना बंती जी। हाँ हाँ, करेक्ट। तो ये अभी हम लोग दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। डेफिनेटली पहले तो आइडिया आना जरूरी है। अभी आइडिया तो आ गया, बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू गेट आइडिया, देन वी हैव टू वर्क ऑन द आइडिया in order to make it a reality. It's a very, very important point. I think all agree, है ना, आप लोग सब लोग सपोर्ट करते हैं ना, इसे एक होना चाहिए दिल्ली एनसीआर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा देखते हैं। अभी ये तो हमारा हाथ में नहीं है किसके पास है। अभी उपासक ने बोल रहे थे कि ये क्या एएसआई, तो मुझे लग रहा है एएसआई के पास नहीं है। अगर एएसआई के पास है तो हमको नहीं मिलेगा, अगर ये दूसरा अथॉरिटी के पास है तो हम देखेंगे डेफिनेटली। ओके, आस्था कुंज जो एक चीज़ है, इसका गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट भी हो सकता है, हम बात करेंगे, देखेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। बेस्ट विल बी आस्था कुंज, है ना। अगर आस्था कुंज नहीं होने से भी कहीं कुछ और जाएगा, हमको तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या दिया जाएगा, क्या है, हम बाद में देख लेंगे। बट इट शुड हैव द कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग सेंटर एंड प्रीचिंग हॉल और मेडिटेशन सेंटर, जो भी है ना। हमारा बुद्ध धम्म में 3 चीज जो स्टेप्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहले तो परियति जो है, एजुकेशन और थियोरेटिकल लर्निंग। उसे दूसरा में है प्रतिपत्ति और द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टीचिंग्स और द नॉलेज दैट वी गॉट थ्रू आवर थियोरेटिकल लर्निंग्स। ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड में जाके पतिवेदा जो है, जब प्रैक्टिस करता है, इसका रिजल्ट जो आता है, वट एवर वन एक्सपीरियंसेस, इट्स 3 स्टेप्स और 3 stages ऑफ द डेवलपमेंट in the on the path of the teachings of the Buddha, on the path of Dhamma, if we want to say. So ये तीनों चीज यहाँ पर रहें, ये तो बात है ना बंदे जी। Very good. This is well taken as a note. We'll be pursuing on this.
ठीक है, अभी तो हो रहा है। बांते जी आप कुछ बोलेंगे बोल रहे थे ना, प्लीज माइक। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं त्रिलोकपुरी में बुद्धि धम्मा भिक्खु है। त्रिलोकपुरी मयूर विहार फेज 1 से आया। एक्चुअली थोड़ा सा नर्वस है, इधर इतना इंटेलिजेंट एंड एडुकेटेड लोग यह है उपस्थित है, फिर भी कुछ बोलने के लिए मौका मिला। जो भांति जी, कचैन भांति जी और वो भांति जी बोला, एक्चुअली मैं उधर कुछ जोड़ना चाहता हूँ और कुछ नहीं। भांति जी जो बोला, एक इधर एक्चुअली मेरा एक सरकार चाहिए। सरकार डेट मीन्स एक संगठन चाहिए, ऐसा संगठन जिधर भिक्षु संघ तथा हम जे उपासक उपासिका सबको जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो सब करने के लिए उनका पास हम जाएंगे, उनका पास हम अप्लाई करेंगे। वो उधर जो संगठन का जो कर्मकर्ता है वो विवेचना करे, विचार करेगा। साथ में मैं जुड़ेंगे। दिल्ली में जितना बौद्ध विहार है, मेरा तो मालूम नहीं, फिर भी बोलेंगे जितना बौद्ध विहार है, उधर से एक भांति जी और उधर और एक उपासक जोड़ लीजिए इस संगठन में। तब क्या होगा, दिल्ली में जितना बौद्ध विहार है और जितना भांति जी है, सबको बारे में हमको मालूम हो जाएगा। और दिल्ली में बहुत सारा छोटो यह है संगठन है, बट एक साथ वो हम जब जुड़ेंगे तब हम के लिए बहुत फायदा होगा। हम कोई भी आंदोलन, कोई भी कार्यक्रम करने के लिए हमको ज़्यादा लोग मिलेगा। तो मैं ऐसा ही इतना ही बोलेंगे। तो जितना दिल्ली में बौद्ध विहार है, इतना एक सदस्य, एक उपासक और एक भिक्षु लेकर ऐसा एक संगठन, ऐसा एक संस्था, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए जिधर भिक्षु संघ तथा उपासक उपासिका को सुविधा मिल जाएगा। मैंने ज़्यादा बात नहीं बोलकर मेरा इधर खत्म करता हूँ। ओके, थैंक यू। आपका पॉइंट आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड। दैट इज द पॉइंट। अभी इंडिया में, जस्ट टू टेक एग्जाम्पल, हर स्टेट में जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट हैं, अपना अपना समस्याएं हैं। इंटरनल जो डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स है वो अलग बात है। एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, सपोज मेरा मंदिर विहारा को किसी ने आके जला दिया और तोड़ दिया, कुछ कर दिया, तो हम कहाँ जाके इसका रिपोर्ट करें? बात वही आ रहा है ना। Who is the authority to report and ask for some help? तो इसीलिए इनका कहना यह है कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके पास सब कुछ हो, all the power or authority or everything, so that any issue related to Buddhism or Buddhist people, Buddhist community can go and report and seek for help or suggestion or assistance, whatever it is. ये इनका कहना है। मेरा कहना भी वही था कब से, लेकिन अभी ऐसे वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा, बात ये हो रहा है ना। Some of you may know, some of you may not know. मैं भी नॉर्थ ईस्ट का हूँ, त्रिपुरा का हूँ। ये 2008 में
वहाँ पर जो मोनास्टिक एजुकेशन सेंटर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट एकेडमी करके हमने शुरू किया, उसमें बहुत सारे चुनौती, क्या बोल रहे हैं इसको, कठिनाई, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स आया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको जला दिया, क्या बोल रहे हैं इसको, it has been burned down, not 1 or 2, 3 times. तो उस समय मेरा दिमाग में ये आया जो बंटी बोल रहे थे, जो we are facing this kind of issues and problems, where to take this issue to for suggestion or support or advice जो है। तो उस समय हमारे लामा, वेनरेबल लामा जोतपा जी माइनॉरिटी कमीशन में मेंबर थे, कुछ है लग रहा था, हमने इनको इनवाइट किया, इन्होंने आए थे त्रिपुरा, तो आके बातचीत किया, वहाँ पर बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी और क्या सेक्रेटरी इसके साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ आपने मीटिंग किया है ना उस समय वहाँ जाके त्रिपुरा में। तो वी नीड समबडी समवेयर टू रिपोर्ट, राइट, इट्स नेसेसरी। तो इसीलिए अभी जो माइनॉरिटी कमीशन है, कोई उपासक सुबह वही पूछ रहे थे कि माइनॉरिटी कमीशन का, ये कमीशन में जो बुद्धिस्ट मेंबर हैं तो उसका क्या काम है। अगर इसके पास पावर नहीं है कुछ करने के लिए, देने के लिए और कुछ इनिशिएट करने के लिए, तो ये तो जस्ट हो गया लाइक ए पुतला, आप क्या बोलते हैं इसको, है ना, इट्स लाइक जस्ट फॉर शो, इसे हो रहा है। हाँ जी, डामी, हाँ, लाइक ए स्टैचू, डोल जैसे, पपेट जैसे हो रहा है। हाँ, देखिए तो ये हमने तो वही बोला था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ये एसटी कमीशन को जुडिशरी पावर है, उसी के मुताबिक मिनोरिटी कमीशन में भी होना चाहिए। नहीं तो 6 लोगों का बिल्कुल इधर जाना उधर जाना, थोड़ा बहुत टूर में जाने का है, और रिकमेंडेशन करने का सेवा कुछ काम कोई नहीं है, तो रिकमेंडेशन से कोई काम बनते नहीं है। तो हमने ऐसा करके लगभग पार्लियामेंट में भी ले गया था, पार्लियामेंट में रिजेक्ट हो गया। मैं हमें लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ये मिनोरिटी कमीशन को तो धीरे धीरे खत्म करने के शुरू में जो भी गवर्नमेंट आएगा वो सब एक जैसा ही है। अच्छा, अभी देखिए ये सब बात हमें पता नहीं है था, आपको पता होगा जो लीगल एस्पेक्ट में है कि एसटी कमीशन में कुछ पावर हैं, जुडिशरी पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो भी बोलेंगे ना, पावर है टू इम्प्लीमेंट सर्टेन प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन में वो नहीं है बोल रहे थे, ओनली द पावर इज टू रेकमेंड। तो रेकमेंड करने से हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस खत्म है, कैन नॉट असर्ट। तो इसीलिए उन्हें हमारे वेनरेबल लामा जी ने बोल रहे हैं कि ही ट्राइड टू गेट दिस जुडिशियल पावर फॉर माइनॉरिटी कमीशन मेंबर्स, ही हैज टेकन अप टू पार्लियामेंट, लेकिन हुआ नहीं बोल रहे थे। तो ये आज हमारे लिए न्यू एक इंफॉर्मेशन है दैट आई थिंक वी नीड टू थिंक एंड वर्क ऑन दिस। तो बात ये हो रहा है ना, अगर हमारे पास एक माइनॉरिटी कमीशन है, सबको एक उम्मीद है कि कुछ प्रॉब्लम हमारा पास है तो हम उनके पास जाएंगे, जैसे मैंने किया इनके पास, इन्होंने आके सिर्फ देखा और कुछ मीटिंग किया, उतना तक हो पाया, लेकिन पावर ऐसे जुडिशियल पावर नहीं थे तो कुछ नहीं कर पाए, एनीथिंग व्हाटएवर इट इज लाइक दैट। तो आई थिंक नाउ वी नीड टू हैव समथिंग an organization to work on this. The IBC जो है, it is something which can initiate, but by itself is not having this mandate. जो आप जो बोले ना जुडिशियल पावर, क्या पावर जो है, ये तो ये नहीं है। आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन जैसे है, IBC भी वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट हैविंग सम सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स, ये है। I think either with minority commission or with some other organization, national forum, national कोई organization के organization को हमको ऐसे करना पड़ेगा कि government allocate some fund and also to give some power, तो अभी हम उसके पास जा पाएगा, कुछ हो सकता है।
I think this also need to be noted. मंत्री जी 1 मिनट। हाँ जी। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी इतना पावर है कि वो डीएमओ एसएसपी को नोटिस करके दिल्ली में बुलाता है, उसको डायरेक्शन देता है, डांट डालता है। अभी कुशीनगर भिक्षु संघ का जो हमारे 85 ईयर भिक्षु बनते ज्ञानेश्वर का लैंड जो इलीगली भारत सरकार का पुरातत्व विभाग ने कब्जा कर लिया था, उसको डायरेक्शन देकर डीएमओ एसएसपी को पोजेशन ऑर्डर दे दिया है। और अभी उनका 40 एकड़ जमीन जो कब्जा हो गया था वो भी डायरेक्शन दिया है। और इस तरह से मैं चाहता हूं कि अभी 19 राज्यों में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन नहीं है, 17 राज्यों में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन है। स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को भी वो जो हम अभी बात कर रहे थे बनते जी, डीएम को बुलाना, अधिकारियों को बुलाना, एसएसपी को बुलाना, वहाँ के संबंधित डिपार्टमेंट को बुलाना। हमारे गाजियाबाद के बनते जी बैठे हैं, इनका भी प्रॉब्लम था गाजियाबाद के बनते जी का, इनका भी मेंबर माइनॉरिटी कमीशन जो सुलेखा ताई कुंभारे एडवोकेट नागपुर की थी, उन्होंने काफ़ी डीएम और एसएसपी को टाइट किया और काम हो रहा है, होता है। एक गवर्नमेंट बॉडी है। हाँ, ये जरूरी है कि एससी कमीशन को थोड़ा ज़्यादा पावर है। तो ये जो विधेयक है 103वां संविधान संशोधन विधेयक 2004 में आया था और इसके लिए संसदीय कमेटी बनी थी सुमित्रा महाजन के अध्यक्षता में, जो आजकल लोकसभा स्पीकर थी, लेकिन वो विधेयक उस समय रिजेक्ट हो गया, हो नहीं पाया। इसके लिए हमने भी मांग की, आपसे भी हम चाहते हैं 103वां संविधान संशोधन विधेयक 2004 जो है एंड निरसन विधेयक 2004 संसद में अभी तक जो विचाराधीन है, इसको अगर करा दिया जाता है तो माइनॉरिटी की समस्या हल हो जाएगी। और हम ये भी प्रयास करें, जिन राज्यों में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन नहीं है, 19 राज्यों में, सभी राज्यों में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन बनने चाहिए और एक बुद्धिस्ट मेंबर बनना चाहिए, क्योंकि जो कि मुस्लिम और सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी 6 के 6 अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में आते हैं, उसमें बुद्धिस्ट भी है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में अभी मेंबर नहीं है। मैंने केजरीवाल को 3 बार कहा, अभी मैं पीआईएल करने जा रहा हूं दिल्ली हाई कोर्ट में। इसी तरह नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में चेयरमैन का पद खाली है 4 महीने से, उसके लिए भी मैं हाई कोर्ट में पीआईएल करने जा रहा हूं। क्यों नहीं होता? हमारे लोग लिखते नहीं है। वाइस चेयरमैन सिख है, इसमें सरदार वहां मुस्लिम बना दिया, लेकिन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में सुलेखा ताई कुंभारे का पद खाली है, अभी तक नहीं है। हमारी काफी प्रॉब्लम यूपी की, बिहार की और उड़ीसा की, मैं खुद फाइट करता हूं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के थ्रू। लगातार काम हो रहे हैं, लगातार डायरेक्शन हो रहे हैं। अभी यूपीएससी के अधिकारी को, सेक्रेटरी को बुला लिया कमीशन में, उसको डांट पिलाई, क्या नाम, सुलेखा ताई कुंभारे ने। लेकिन मेंबर एक्टिव होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए लीगल, ये नहीं कि मेंबर ही उसको हिंदी और इंग्लिश बोलने का नहीं है। आईएएस को उससे वो डर रहा है। सुलेखा ताई कुंभारे एज ए मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी और एज ए एडवोकेट, अधिकारी पूरा कमीशन उनसे थर-थर कांपता था, चेयरमैन भी उनसे सोचता था क्या बोल रही। तो मैंने खुद देखा सुलेखा ताई कुंभारे मेंबर बुद्धिस्ट कि वहां जो आईएएस, आईपीएस, डीआईजी बनते जी, वो भी वो सोचता था कि ये मैडम क्या कहने वाली है। काम करवाने के लिए उसके अंदर भी प्रतिभाशाली होना चाहिए जो मेंबर बने। अब कोई ऐसा न्यूट्रल बैठा दिया जिसको कुछ आता ही नहीं है, लीगल रूल ही नहीं पता, तो क्या करेगा काम को। तो मैं चाहता हूं जो भी स्टेट, चाहे जो स्टेटों में नहीं है कमीशन, हमारी संस्थाएं, हमारे बौद्ध भिक्षु, हमारा संगठन उन स्टेटों में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का गठन करे, क्योंकि उसको स्टाफ होगा, लिखने पढ़ने के लिए टाइम होगा, डायरेक्शन देने के टाइम होगा, और हम उसके साथ मिलकर काम करें। हमारे स्टेटों में बैठे जो संगठन है, सरकार गधे को बुलाए, गधे से भी काम ले सकता है, लेकिन हमें एक्टिव होना चाहिए ना। ओके, सवाल ये है। राइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर अभी भी जो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन या माइनॉरिटी कमीशन बोलते हैं ना, क्या उसका नाम है स्टेट में जो है, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, हाँ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन अभी तक नहीं है। कितना स्टेट बोले हैं आपने? 19 स्टेट्स में अभी तक नहीं है। तो ये दिल्ली में भी नहीं है, बुद्धिस्ट मेंबर बुद्धिस्ट नहीं है, और यूपी में तो है, लेकिन यूपी में भी बुद्धिस्ट मेंबर नहीं से लग रहा है। हाँ, राइट, ठीक है। हाँ, ये सब जो चीज़ है इसको जानकारी लेना रखना जरूरी है। हमें तो पता नहीं था कि उसमें यूपी में 4 मुस्लिम माइनॉरिटी मेंबर्स हैं और बुद्धिस्ट नहीं है, देखिएगा। राइट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जहाँ जहाँ नहीं है उसको फॉलो अप करना और लागू करवाना, वी ऑल हैव टू वर्क डेफिनेटली। अच्छा, अभी आप जो बोल रहे थे ये
सुलेखा ताई कुंभार अभी उसका टाइम खत्म हो गया। अभी तो हमारा बुद्धिस्ट मेंबर का जो है ये खत्म है ना, ऑल मेंबर्स आर नॉट देयर। और दूसरा मेंबर्स है। अच्छा, इसका मतलब अभी बुद्धिस्ट का सीट जो खाली है, चेयरमैन भी खाली है, और कब फिलअप होगा मालूम नहीं है। तो बुद्धिस्ट प्रॉब्लम होने से अभी माइनॉरिटी कमीशन में जा नहीं पाएगा, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में, है ना। Right. Okay, now we are coming to a closing point. Maybe ज़्यादा से ज़्यादा और एक हम क्वेश्चन लेंगे, और if anything is there, otherwise we'll be winding up for today's session. हाँ, एक बंटी जी है, last question please, Mike. परम पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक उपासिका, पंडित जी मेरा एक क्वेश्चन है। जिस प्रकार से विदेशी या जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, क्या जो इंडियन मॉन्क हैं जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था है या IBC ऐसी कुछ व्यवस्था कर रही है जो इंडियन मॉन्क के लिए स्कॉलरशिप वगैरह दी जा रही हो? क्योंकि इंडियन मॉन्क जो है यहाँ काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि मॉन्क आगे स्टडी नहीं कर पाते हैं और धम्म का भी काम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उपासक लोग उतना यूनिवर्सिटी का जो खर्चा या कॉलेज का जो मॉन्क का जो खर्चा है वो सब लोग नहीं कोई कर पाता है। तो इसलिए कोई ऐसी या IBC की तरफ से कुछ ऐसा व्यवस्था है जो मॉन्क के लिए या जितना जो मॉन्क हैं इंडियन उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो स्कॉलरशिप का? ओके, प्लीज नोट दिस पॉइंट ऑल्सो। स्कॉलरशिप तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स देता है, वो अलग चीज़ है। बुद्धिस्ट के लिए स्पेशली ऐसे नहीं है, और इसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में BTI सेक्शन है, बुद्धिस्ट एंड टिबेटन इंस्टीट्यूशंस करके। तो उसके अंदर ऐसे कुछ उसमें एक प्रोविजन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहता है तो उसी में स्कॉलरशिप के लिए एक कॉलम है, तो स्कॉलरशिप वहाँ पे उसमें अप्लाई कर सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंदर में है। तो IBC स्कॉलरशिप जो है हमने सोचा कि इसको लॉन्च करेंगे, वर्क भी ऑलरेडी डन, बट यहाँ का जो सपोर्ट है इट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज स्टडिंग इन इंडिया। बाहर से जो फॉरेनर्स लोग इंडिया में पढ़ाई करने के लिए आता है बुद्धिस्ट स्टडीज़, उन लोग के लिए है। ये एक्चुअली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में है, जिससे उन लोग का स्टूडेंट्स हमारे पास आने से हम उनका खर्चा उठाएंगे, और हमारे इंडिया से बाहर जाने से लाइक श्रीलंका, म्यांमार, तो उन लोग उसका गवर्नमेंट के साथ बात करके, अभी तो हुआ नहीं है, होने से तो हमारा स्टूडेंट्स का खर्चा वो लोग उठाएगा। ऐसे कुछ हमारा लाइन ऑफ थॉट है। तो अभी तक ये अभी जो बोल रहे हैं आप इंडियन मॉन्क्स के लिए जो स्कॉलरशिप जरूरी है, ये बात इट हैज़ नॉट कम अप, अभी तक आया नहीं है तो IBC। डेफिनेटली IBC ऑल्सो नोस। तो इसके लिए विल बी नोटिंग द पॉइंट एंड विल डिस्कस एंड सी इन विच वे वी कैन हेल्प। अभी तक तो हमारे पास इसका स्कीम नहीं है। प्लीज लास्ट और एक। हाँ नहीं, इसमें जो इंडियन जो मॉन्क हैं जो नॉर्थ इंडियन, अधिकतर हिमालय मॉन्क तो उनको तो ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग सोसाइटी हैं, सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो नॉर्थ इंडियन मॉन्क हैं उनको अधिकतर सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और वो उनका जो स्टडी है आगे का या धम्म के स्टडी है या कॉलेज स्टडी वो नहीं हो पाती है। तो मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ, काफ़ी ऐसी समस्याएं सामने आती हैं फ़ी के लिए, या फिर ग्रंथ खरीदना है,
नोट्स वगैरह लेना है, उसकी काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो कुछ ऐसे व्यवस्था हो जैसे मॉन्क हम एजुकेटेड हों। राइट, वी हैव नोटेड इट। हमारे पास अभी स्कीम नहीं बना है, विल बी डिस्कसिंग, एंड हमारा जो है फाइनेंस कहाँ से आए कैसे आएगा हम देख लेते हैं। अगर हो सके डेफिनेटली वी शुड हैव सम वे आउट। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। और नहीं होगा इसके बाद, हमारे टाइम हो गया। भिक्खु संघ को बंदामी। भंते जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो आईबीसी है उसका प्रारूप क्या है, जो संगठन है उसकी संगठनात्मक संरचना है उसका प्रारूप क्या है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ना, क्या बोला इंग्लिश में, क्या होगा? प्रारूप क्या है? प्रारूप स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर, सेटअप क्या है? स्ट्रक्चर। दूसरा सवाल ये है कि जो 1954 में परम पूज्य बुद्धिस्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रंगून बुद्धिस्ट काउंसिल में जो भारत के अंदर बुद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए परिसंकल्पना प्रस्तुत की थी, तो आईबीसी उस पर क्यों नहीं विचार करती है? Anybody can translate into English? Param Puja Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar participated in Rangoon Buddhist Council, and he planned planning for the spreading of Buddhism in India. He has spoken in the Buddhist Council throughout on this point. Can I speak? I have. No, you tell, give your question. That's enough. Those points, I do not need those things. You tell what is your question. My question is, why don't this council is considering upon that planning of Param Puja Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar's points explained in the Buddhist Council in Rangoon in 1954. Okay, understood. Thank you. आपका 2 क्वेश्चन है। एक है कि आईबीसी का क्या स्ट्रक्चर है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप www.ibc.world.org में जाके देखिएगा, टोटल यहाँ पर है। राइट, दिस इज आंसर। और द स्प्रेडिंग ऑफ बुद्धिज्म, प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1954 बोले यहाँ है ना, रंगून में जब छत्ता संगायना, उसी में छत्ता संगायना में जाके बोले थे, या 6 बुद्धिस्ट काउंसिल रंगून में जब जो हुआ उसमें डेफिनेटली आईबीसी क्यों है, सब लोग तो अपना अपना लेवल में प्रोपगेशन के लिए काम कर रहा है, इसीलिए तो हम लोग अब हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन इसको सबके साथ जोड़ना, अब जो जैसे बोल रहे थे सुबह से लीडरशिप जरूरी है, तो बाबा साहब का जैसा लीडरशिप तो पैदा नहीं हुआ ना अभी तक हमारे बीच में, ये तो हमारे अंदर से आना पड़ेगा। राइट, आप या हम लोग सब किसी को तो कोई आना पड़ेगा, लेकिन बाबा साहब का जैसे और उसका थोड़ा कम जो भी है वैसे आया नहीं है। जो भी हम लोग कर रहे हैं, वी ऑल आर ट्राइंग टू प्रोपगेट द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध। आईबीसी डेफिनेटली कर रहा है, आईबीसी इसका लेवल में कर रहा है। और आईबीसी का जो फॉर्मेशन आपको पता है कि ये 8 इयर्स अभी है, पहले तो नहीं था आईबीसी, तो लामा लबजंग जी ने जैसे वैसे करके उसको बनाया, तो अभी मेरे पास आया, तो ये तो एक रोटेशन है, मैं अभी हूँ, कल कोई आएगा, जो भी है, तो ये चलते रहेगा। हमारा तरफ हमसे जितना पॉसिबल है हम उतना तक डेफिनेटली कर सकता है। यस, आईबीसी का इसे ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का वो काउंसिल का और किसी का ऐसे डिस्कशन में नहीं है, पर इन जनरल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, प्रिजर्वेशन ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज इन इंडिया, ये हमारा इसमें है। तो अभी आप पॉइंट उठाया, इट्स वेरी गुड, इट विल बी नोटेड। तो हम जैसे जैसे अभी आ रहे हैं ना, ये तो एक दिन का काम नहीं है, हमको तो बहुत साल तक काम करना है। जब जो पॉइंट आ जाता है उसको नोट करके हम उसके ऊपर काम करेंगे। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी नोटेड, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू एमसी प्लीज। Well, thank you, Venerable Dr. Dhammapiya. With that, we have come to an end of this session too.
और इसी के साथ हम ऑलमोस्ट अपने प्रोग्राम के आज अंत तक पहुंच गए हैं और मैं अब इनवाइट करूंगी श्री शक्ति सिन्हा, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईबीसी, ताकि वो आएँ और कुछ शब्दों में आज का जो प्रोग्राम है उसे एक तरह से सम अप करें और क्लोजिंग रिमार्क्स देते हुए आज की सेशन को क्लोज करें। भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ के प्रेसिडेंट मेंबर्स को मेरा सैल्यूटेशन, मेरा अभिवादन, सभी उपासक उपासिकाओं को, देवी सज्जनों। राउंड अप के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहा, बट एक दो डाउट खाली मैं बताना चाहता हूँ। पंडित जी ने, प्रिया जी ने अच्छा से आपको समझाया है। जैसे आईबीसी आज हम क्यों बैठे हैं, जैसे प्रिया समझाए थे हमें, 4 मकसद हमारा है: प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रमोशन और प्रोपगेशन। और उसको करने के लिए हमें क्या करना है? कॉन्टैक्ट, कनेक्टिंग, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। अब आईबीसी जो बना था, सुबह आपने लामा ऑप्शन को सुना है, ये बेसिकली बना था कि भारत के बौद्ध संघ और बौद्ध समुदाय और विश्व में अनेक देश में जहाँ जहाँ बौद्ध संघ है, बौद्ध समुदाय, उनको जोड़ने का काम है। उनको जोड़ा जाए, क्योंकि भारत बौद्ध का देश है, बौद्ध धर्म है तो यहाँ है, तो इसलिए उसको जोड़ने का काम था। कई कदमें हुई हैं, जरूर कुछ कमी रही है, और अब एक कमी पाई गई थी कि हम लोग अभी तक आपके साथ जुड़ नहीं पाए थे, कनेक्ट नहीं कर पाए थे। तो यही मौका था कि जैसे बताया कि एक आप यहाँ करें मीटिंग, दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में करेंगे, दक्षिण में करेंगे, पश्चिम में, हर जगह करेंगे, सो दैट हमारे जितने भिक्खु संघ हैं और समुदाय हैं, ले कम्युनिटीज़ है, उपासक उपासिका हैं, उनके तरफ से किस तरीके से एक संगठन बन पाए। संगठन नीड नॉट बी अ फॉर्मल संगठन, वो भी आवश्यक है तो वो बनाइए। कहने का मतलब हमारा काम है हम सबको जोड़ना, कोशिश करना, फैसिलिटेट करना हमारी मीटिंग, कि जो जो मुद्दे, जैसे हमने इस मीटिंग के लिए, और मैं बैठक कहूँगा, इसको प्रोग्राम नहीं कहूँगा, क्योंकि बैठक हम सब एक दूसरे को सुन रहे हैं। पहला था वो आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट। हमारी विरासत के बारे में आप सबने बताया क्या हाल में, दुविधा में है, लोग कब्जा कर रहे हैं, कोई पत्थर उठा के ले जा रहा है। संकीसा गए तो आसपास के गांव में जितने खड़ंजे थे सब वो संकीसा के स्तूप से निकाले गए थे, बिछाए गए थे। ये रियलिटी है, हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से अभी भी हम इस विरासत को बचा पाएँ, प्रोपगेट कर पाएँ, इसको प्रोटेक्ट कर पाएँ, और इसमें लोकल कम्युनिटी को कैसे इन्वॉल्व करें। अगर उन्हें लगे कि बहुत यहाँ पर्यटक आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो दुकान खुल जाएगी, छोटा होटल खुल जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो उन्हें भी इंटरेस्ट आ जाएगा, तो उनको लगेगा कि आप वहाँ घुस रहे हैं। तो वो किस तरीके से हमें वर्कआउट करना है, हर जगह के लिए अलग करना पड़ेगा। दूसरा था बहुत खास बात, काफ़ी बात हुई इस पर, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर। बहुत समस्याएं हैं, बहुत चुनौतियां हैं, आप सबों ने काफ़ी विस्तार में बात रखी है, सब हम नोट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा उस पर एक्शन करेंगे। मगर खास बात है कल के लिए, ऐसा मत समझिए कि आज बैठक खत्म हो गई है, ये विराम नहीं है, ये केवल क्वेश्चन वो है, कॉमा है केवल। कल दोबारा हम बैठेंगे, क्योंकि कल भी एजेंडा में हमारे पास बहुत बहुत खास बात है, और जिसमें हमें साथ जोड़ सकता है। कलेक्टिव सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिस्ट इवेंट्स। यहाँ 180 बौद्ध विहार हैं, बहुत लोग हैं, किस तरीके से मिलजुल के हम कार्यक्रम करें कि सबको लगे हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सब लोग संख्या देखते हैं। आपने यूपी माइनॉरिटीज कमीशन की बात की, लोग संख्या देखते हैं। अगर लगे कि संख्या है तो आप देखेगा व्यवस्था प्रणाली किस तरीके से बदलती है। वो हो गई लार्जर बात, बट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपस में हम किस तरीके से एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, किस तरीके से कोलैबोरेट करेंगे, तभी न जाके आगे बढ़ेंगे। तभी न, जो आपने चैलेंजेस कही है कि ज्ञान हमको नहीं है, मेडिटेशन हम नहीं करते हैं, केवल मुंह से बोल जाते हैं, उस सब की बातें होगी, डेवलप हम कर पाएंगे। किस तरह से हम एकेडमी बना सकते हैं ताकि सब की बात फैले। और लास्ट में होगा मेरे ख्याल से कल का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट, वो है एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन दिल्ली एनसीआर एंड इन कोलैबोरेशन विद बुद्धिस्ट कम्युनिटीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो आज की हमारी सीमा थी बेसिकली दिल्ली एनसीआर, बट हम अकेले नहीं रह सकते हैं, बाकी के साथ भी हमें जोड़ना है। बट बाकी के साथ जोड़ने के लिए आप सबको, हम केवल फैसिलिटेटर का काम कर सकते हैं। हमारा काम है आपको समर्थन देना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, मगर आइडियाज़ और नेतृत्व आपके यहाँ से निकलेगी,
आप में है, कई बात से दिख रही थी, काफ़ी आइडियाज़ है, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ है। किस तरीके से मिलजुल के हम काम करेंगे वो हमारा मकसद है। आज बहुत लोगों ने बहुत अच्छा हमें बात सुनाया है। लामा लॉक्सन को हम सुने ही हैं, वनरेबल लामा सतपा को सुने हैं, फिर पंटे जी को सुने हैं, कचन पंटे जी को सुने हैं, शांतुम सेठ को सुने हैं, और सबसे खास तो आप सबसे हम सुने हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी हमारे, मैं कहूँगा प्रोग्रेस हमारे लिए कि मिलजुल के हम बैठे हैं। मैं धन्यवाद तो कल दूंगा आपको, क्योंकि कल फॉर्मल औपचारिक रूप से धन्यवाद तो कल शाम को दिखाया हुआ है, मैं अभी नहीं दूंगा औपचारिक रूप से, बट अनौपचारिक रूप से आपको जरूर कहूँगा कि आज के आने से यहाँ मिलजुल के हम जो बैठे हैं, बात किए हैं, मेरे ख्याल से बहुत प्रोडक्टिव रहा है हम लोग के लिए, और साथ मिल के हम मेरे ख्याल से आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। कल आप अवश्य आएँ, संडे ज़रूर है, मगर मेरे ख्याल से धर्म के काम में संडे को नहीं रखना चाहिए। कल सुबह 9 बजे आपसे 9:15 फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Okay, before you disperse, kindly please, अभी हमने शुरू किया है the beginning of the day with Mangalacharan. The closing of the day also should be with the blessings. है ना? कचन बांधे अब आई बहुत सब मंगलम अब सबका मंगल के लिए अभी भिक्षु संघ से ब्लेसिंग्स होगा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधम्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सर्व प्राणी सुखी हो, सर्व प्राणी मंगल हो। May all beings be happy and peaceful. May all beings be protected. Thank you so much everyone. Hope to see you all tomorrow. हमारे वेनरेबल मंक्स लोग जाते समय ऑफिस स्टाफ से मिलके जाइए। नामोस, राइट? हाँ, नहीं, अभी बात ऐसे हुआ है कि अगर कोई नहीं आया तो आज दे देंगे।